Good morning, students. As promised, the Cavalier team is here with you to give you live solutions of all the tests that you're taking today. That is CDS, NDA, and also paper 1, 2, and 3 for CDS and paper 1 and 2 for the NDA. Now, presently, paper 1 of CDS, that is the English paper, has just got over. My team of English teachers, Goldie ma'am and Sumit sir are here. They will right away give you all the answers that are there and also give you the reasoning behind it as to why this answer is there and why the other is not there, right? And also, you can also go to our website where the PDF of all the answers is also posted. You can see it there also. So, Goldie ma'am, Sumit sir, please come here. You can take on from here onwards. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, students. Good morning to all of you. Hello, sir. Good morning. Okay, students. So we have the paper over here. Ma'am is here with us, and we'll be discussing each and everything. हर चीज को हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन के कौन सा आंसर हो सकता है हमारे हिसाब से. What we feel is the correct answer, right, ma'am? Shall we start? Okay, so students, since you've given the paper and you must be already knowing क्या क्या हम क्लास में already cover कर चुके हैं, and if you've seen the paper on a whole, तो बहुत ही easy paper आया है. All the synonyms, antonyms, parts of speech, यहाँ तक कि comprehension भी same आया. What you had done in the FLT, even that comprehension passage is exactly the same. So I am sure कि सबने बहुत अच्छा किया होगा, and I'll discuss it here with Sumit sir also. Some of the questions here, so that जिसमें आपको लगता है कि problematic area है, and क्यों वो answer होना चाहिए, and why the other answer should not be there. So let's get going with the word classes. है कुछ नहीं, ये parts of speech ही है, and Sumit sir is going to discuss here some of the questions here. First question. I like that boy. Now, ideally अगर देखें तो that is a demonstrative pronoun, right? So हमारा दिमाग सीधे पहले जाता है कि demonstrative pronoun है. Answer is right. Okay. So we can mark our answer. The first question is B. As students, I would like to bring you to notice. Please do not go with the black marks. Okay. I'm marking it with red. That's the correct answer. Okay, sir. Second का answer क्या है? Second answer, ma'am. Without health, there is no happiness. What do you feel is the correct answer to it? Why do you think that the answer has been marked by a student as adjective, and why do you think it is not adjective, and what is the correct answer? He simply must have thought happy, खुशी. हाँ. उसने सोचा कि happy है. हाँ. जबकि ये happy नहीं है, ये happiness. Happiness. Right? So happiness will be a noun and not an adjective. Right? So that is the correct answer. So noun is the correct one. Let us move to the next question. You have no sense. What do you feel? No, I'm not saying you people don't have any sense. The exam paper says so. Right? You have no sense. Noun, determiner, adverb, preposition. Sense के पहले no आ रहा है. What do you feel is the answer? So अब क्योंकि I have taught you 100 times कि हम method of elimination से जाएंगे तो हमारे पास बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा. तो then we know कि हमारे पास noun नहीं है option. When I am looking at this, I do not have noun as here. Secondly, preposition भी नहीं है. Now what am I left with? I am left with a determiner or an adverb. और जैसे सुमित सर ने कहा, क्योंकि हम सेंस की बात कर रहे हैं तो एडवर्ब भी नहीं हो सकता because sense is a noun. So the correct answer is going to be determiner. Fabulous explanation by ma'am. Very nice. Going forward, none of these cars is. We have different types of pronouns over here: reflexive pronoun, definite pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun. Right? All of us have studied that words like none they come in the section of indefinite pronouns. They're not definite, okay? They're not replacing a definite noun. Ma'am, I hope. हाँ जी sir, बिल्कुल सही. Let's move on to the next question. Ma'am, we shall now begin to work. Now, when we are talking about we shall now begin to work, like I said again and again, try the process of elimination and you will come to the answer. अब obviously आपको मालूम है कि ये conjunction नहीं है because ये कुछ भी चीज connect नहीं कर रहा. Secondly, noun can never be a pronoun also. So what are we left with? We are left with an adverb or an adjective. It cannot be an adjective also because हम काम की बात कर रहे हैं. We are talking about an action. So the correct option is going to be adverb.
question is here. Owing to. So what is the answer, sir? Owing to his ill health, he retired from business. As it is owing to, so the correct answer will be, it's a conjunction. Right. Very true. Now the next question says, my sister is just 16 and therefore not eligible to vote. So what is going to be the answer? Then again, when we are talking about here, the options that are there, we are going to eliminate gerund, adverb and adjective. So the correct answer is going to be conjunction. At the same point of time, when we are talking about the next question, we say they try to find fault with us. क्या आंसर है सुमित सर इसका? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों. टू जब भी किसी वर्ब के पहले लगता है, what is it called? It is called an infinitive. So the correct answer is an infinitive. Okay, sir. Which is the next question? Which way shall we go? So, which way shall we go? And when we are talking about which way shall we go, so the answer here is going to be adjective because it cannot be a noun, gerund or a conjunction. So that is how you are getting the answer. Let us move to the last question of these word clauses, parts of speech. I don't think you'll find a more simpler question in this section. You very well know, or both of us must have taught you this. It's the easiest way to identify an interjection is an exclamation mark. We have an exclamation mark, hence it is an interjection. तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा कि आपने कितने आराम से क्वेश्चंस करे एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट और एटलीस्ट 90% करेक्ट. Now let us move to the next part and let us see what is it. So we have the fill in the blanks, and when we saw the fill in the blanks, both Sumit sir and me, we thought that it could not have been much easier when we are talking about fill in the blank. So अगर first question की बात करें तो he was dash speaker that I had ever heard. So you obviously know that you will not have these three options here. So it is going to be in the superlative only. So he was the most eloquent speaker that I had ever heard. And the 12th question was, what was the name of the person? To dash you spoke. And like Sumit sir and I have told you enough number of times who, whom और whose के बीच में different. So the correct answer is who. Yes sir. Okay guys, going forward, have you seen Mohan yesterday, lastly, lately? Guys, we need to understand that we are referring to time in most of the options given, but we need to understand which is the correct reference of time. A lot of students will mark it as yesterday, but that is not the correct answer as the student marked it over here. But sir, why should they not understand since the word is have, they cannot mark it as yesterday there? Because ma'am, the more appropriate option to this question is lately. Right. As lately means recently. There is no clear specification that the question is being asked about a time reference with today, tomorrow or yesterday. They are talking about a general question where the person is asking about, has he seen Mohan recently? That's what we normally ask. I hope that's correct. Right. Okay, going forward. What is the next question, sir? We live in dash an old house. Rather an old house, fairly an old house, pretty an old house, quite an old house. According to me, according to ma'am, the correct answer to this question is quite. What is the reason that I feel is quite is the correct answer? Rather is not used with a noun, rather is used with a situation. Fairly is used with a positive adjective. It's used with a positive situation. Pretty is used to define something that is beautiful. Now something that is old can be beautiful, but the sentence is not inferring that we are talking about a beautiful house. Hence, we believe that the answer is quite. Right, sir. Now the next question says, I'm playing tennis tomorrow unless dash. Now all of you know when we were talking about unless के साथ we cannot use a negative word. So we obviously remove this here. And since it is talking about present tense, I cannot use rain. So the correct answer will be unless it rains. Let us move to the next question and see what is the next question talking about. The dash of the car is unknown.
Now, if I'm talking about this, then it cannot be obviously when we are talking about making, made up, or the correct answer will be made and not make up also, because we are not talking about how we are trying to make up for whatever has been lost or as a make up as a noun. Absolutely. Sir, Sumit sir, what's the next question? The next question is a little confusing. The students might have got a little confused. He paid his debts down or he paid his debts over. Well, if you check properly, if ma'am and me must have taught you this in class, we pay our debts down. We don't pay our debts over, right? Full and fully to nahi aa sakta. It is but obvious. It is inferred that full and fully cannot be an option. So the correct answer to this is he paid his debts down, right? Moving forward, developing dash in a diverse country requires detailed planning. Growth cannot be developed. Growth can be achieved, right? Scarcity, we are not developed. No country in this world would like to develop scarcity or poverty, right? So 3 options get eliminated. We are left with 1 option, which is infrastructure. ये तो आंसर उनको elimination method से ही automatically आ गया, even if they are not knowing the meaning of the word infrastructure for that matter. अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो इस पेपर में ये चीज है, बहुत सारे सेक्शन में हुआ है that if students properly eliminated the options, they could have easily given the correct answer. Right, sir. Moving forward, provisions have been made to support agriculture. Now we are talking about provisions. Procurement cannot be an option because procurement is buying of goods, getting stuff, right? Subsidized provisions cannot be subsidized, right? Subsidized is used with something related to money. Subsidized is used with something related to payments. Capital provisions doesn't make any sense at all. Capital means पूंजी. पूंजी और provisions का कोई लेना देना आपस में नहीं है. So according to us, the correct answer to this question is adequate. Adequate मतलब enough. Okay, so when we come to the last question here of fill in the blank, the dash growth in the Indian financial markets can be attributed to a number of reforms. Again, जब हम growth की बात कर रहे हैं, so we cannot use the word catastrophe because that itself is referring to a large number. Meteor तो obviously out of context है. We are left with efficiency and phenomenal. Efficiency के साथ growth नहीं हो सकती. So again, we have come to the elimination method and we have seen phenomenal growth. Now, before we move on to the next part, I just want to remind each one of you that our new batches for online and offline are starting from 18. So for the online batch, you can go to the Cavalier online, and for the offline one, you can visit the center. Please enroll as soon as possible. So, Sumit sir, can we move on forward? Ma'am, with your due permission, I would like to bring something to notice to students. Students, you always feel that all the options are absolutely correct, all the options are absolutely fine. I told this that the UPSC will try and confuse you with anything, right? अगर ये word यहाँ use होना भी था, तो यहाँ meteoric होना चाहिए था, right? Right, sir. As an adjective, not as a noun. This is exactly what I was thinking when we were doing this question. Right. So if they had to use the correct word, it should have been meteoric, right? So they are not focusing on giving you correct options. They are focusing on giving you difficult options, right? You must understand that not all the options are going to be relevant to the sentence that has been given. Moving forward. I think we will send the answer key itself. Absolutely. Sections that need a lot of discussion, sections that need proper elaboration will be uploaded in the answer key, and we will be recording a proper explanation to that. As this is a live session, we are only going to go with the objective questions. Let us go to the next section now. Idioms and phrases. How do you feel the idioms and phrases were? Very easy. Very easy. Frankly speaking, I'm quite sure you must have taught these in classes. Right. And I have also taught, barring a few, one or two maybe. Right. All of them have been discussed properly in class. Right. If this is something that I teach in every batch of mine. Every batch. I even give them a very good example. I tell them कि भाई मान लो अगर मेरा आज पढ़ाने का मूड नहीं है और मैं तुम लोगों को बोलूं कि आज हम लोग 15 मिनट क्लास में ध्यान करेंगे. So what am I doing? I have an axe to grind. Right? To have a selfish aim or motive, right? So, ma'am, going by my knowledge, I feel
Definitely, this is a right That's thing. the first. That's the selfish aim or motive that we are talking about. Yes. So when we are moving to the next question, we are saying bite the bullet. And मैंने आपको हर बार ये बोला that whenever you are doing idioms and phrases, try and work out by the word and find out. Now, bite the bullet means to start doing something in a very keen way, to be angry and unhappy, to accept something unpleasant and difficult. Now, since the word here is bite, so the correct answer is going to be to accept something unpleasant and difficult. Am I right, Sumit sir? Absolutely, ma'am. And I will tell you the etymology of this idiom. I'll tell you where does this idiom come from. हम सब के लिए ये idiom बहुत important है. जिंदगी में कभी भी भारतीय होने के नाते इस idiom को मत भूलना. ये idiom बना है 1857 के रिवोल्ट से. What were they told? Why did the Civil Mutiny take place? It took place because they had to bite a bullet which was covered with the grease of the fat of cows and pigs, right? Which the soldiers had objected, and then we had started the Civil Mutiny, which was led by Mangal Pandey in 1857. That is where this term comes from, to bite the bullet. To bite the dust is to face defeat. To bite the bullet, they were doing something that was unacceptable and unpleasant to them, right? Just to add on to something that Sumit sir said, अभी आपके just to bite the bullet is giving you the etymology, and उसी से related there was a question in ordering of sentences about Mahatma Gandhi and the salt and why did he consider salt to be so important. तो दोनों चीजें मैंने relate करी हैं and talked about the independence. Yes sir. लाफिंग स्टॉक, आई थिंक इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है. ये हम न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, आम डिस्कशन में इस चीज़ को यूज़ करते हैं. We pay attention to this idiom a lot. Laughing stock is not to avoid conflict, is not to laugh at someone secretly, and it's not a jovial or a respected person. It is someone who does something very stupid and is made fun of, right? Going forward, pay over the odds. Yes, sir. So pay over the odds. And whenever we are talking about odds, what are we referring to here? To get dividends for investments? No, definitely not. To work hard to make payments, to treat someone in the bad way, to pay more for something than it is worth. So if something is worth for 500 rupees, you're paying much more than it is the actual value. So the correct answer is to pay for sport for something than it is worth. अब अगर हम आगे चलते हैं and we move on to place with the gallery, तो ये चीज I have discussed and I'm sure Sumit sir might also have discussed in the class again and again. Now we were talking about the gallery when there were no multiplexes. We were talking about the cinema halls. So to do something, definitely gallery है, the word alone तो हो ही नहीं सकता. To say things that will make people admire you, to behave in a very annoying way, to take big risk in business. So the correct answer will be to say things that will make people admire you. Right, sir? Right. Okay, we come to question number 36. Yes, sir. Question number 36. Be in the soup. To be in the soup, I discussed it very recently in the class. To be in the soup means to be in trouble. That's what the correct answer is. Being in a soup, no one wants to be in a hot boiling soup, right? So if you are put in a situation that is like a hot boiling soup, you will not feel healthy, you will not feel good, it's not connected to honesty, right? So according to me, to be in the soup means to be in trouble, right? So the next question says a turn of the screw. Now this could be a little bit confusing that we are talking about. To begin to behave in a more positive way, to change people's opinion in your favor, to become unpopular, an action which makes a bad situation worse. If you are already in trouble and somebody is adding on to it, जैसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना. So that is what is exactly here, and we refer to an action which makes a bad situation worse. Now again, I'm sure a white elephant might have been discussed 100 times in the class with Sumit sir and me with the students. So sir, what is the answer for a white elephant? A white elephant, एक सफेद हाथी. आज के जमाने में ये कहावत हमने हिंदी में सुनी है. हम सब ने ये कहावत हिंदी में सुनी है. हाथी खरीदना मुश्किल नहीं होता है, हाथी पालना मुश्किल है. और सफेद हाथी को खरीद के पालना और मुश्किल है. So what's the answer? That's what it relates to.
It's not someone who is completely good and honest. It is something that has cost a lot of money but has no useful purpose. क्या करोगे आज के ज़माने में हाथी खरीद के, right? When we are flying in sports cars, what will you do of an elephant, Right. So, B is the correct answer. A hot potato. Like I discussed some of the idioms, whether it is walking on eggshells or a hot potato, you will not be able to handle a hot potato for that matter. So someone who's very angry, something that is difficult to deal with, something who's holier than appears to be, or to be unable to decide. So the correct answer here is definitely going to be something that is difficult to deal with. Like you can't deal with a hot potato, garam garam haath chalega, usi tarike se. The last question says apples and oranges, and we had discussed these are two completely different things. So the correct answer will be people who are different and thus incomparable. And before we move on to the next topic, we have to remind you that when we are talking about idioms and phrases, these सबके सब, barring one or two, have been discussed in the class time and again. So all those students of the Cavalier will be definitely be able to ace the paper as far as idioms and phrases are concerned. Right, Sumit sir? Absolutely not. Okay, sir. That is if they have. If they have. And if they remembered it during the exam time, Absolutely. that's the That's if they are a- not nervous during the exam time. Absolutely. That's a very important prerequisite कि हमने पढ़ा तो दिया, क्या आपने कितना पढ़ा? रिटेन हुआ उनके पास और एग्जाम में कितना आउटपुट वॉमिट आउट हो गया उनका. Exactly. Okay, so we come to the most let's say threatening part of the paper जो बच्चों को लगता है क्योंकि spotting errors उनको लगता है कि कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे. So let's discuss, sir. Absolutely. So first question, 41st question is, guest is unwelcome when he stays too long. Now, I'm sure adverb पढ़ाते वक्त मैम ने और मैंने हम दोनों ने आप लोगों को ये बताया होगा कि to TOO शब्द जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, and it is used with a preposition called to, right? So here it is not being used with the word to, hence the correct option is C according to us. We were just having a discussion on this question. My friend and benefactor has come. We believe that we are referring to a single person, right? A benefactor cannot be a different individual. So we are believing that we are referring to a single person, and hence we feel that it's no error because there will be a singular verb used, right? Going forward, either he or I am mistaken. मैम कोई गलती लग रही है आपको इसमें? सर ये तो बार बार डिस्कस हुआ था कि जब आइदर और की बात हो रही है, so we are going to use the second subject, the verb according to the second subject. और क्योंकि I है और am है, तो obviously answer would be no error. No. हाँ. And when we move on to this question, I told you write one day before the exam also कि आपसे each, every, either, neither पे question पूछा जाएगा. So each of these substances are found in India, and everybody should remember कि each के साथ singular लगना है. So the error is here. It should be is and not are. So the error is in C part. Yes, sir. Moving forward, guys, who do you wish to see is not the correct answer. The correct answer is whom do you wish to see, right, ma'am? Right, sir. Okay. It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. Ma'am, according to me, I think there is an error in the B part. Okay, sir. Do you agree And with why that? do you feel it is in the B part? Because this is in past tense, so I would agree. Right. This sentence, So this part of has the needs sentence to be replaced with had. Had. Right. had ever Okay. been made in the parliament. Right. So the answer to this is Okay, children, we are discussing set A, if I'm not wrong. Yeah. Yeah, we are discussing set A. The questions are the same. If you have B, C, or D, please cross-check your papers and get back to us if you have any doubts. absolutely. What is the next question? I played with same bag that he used. कंजंक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि दैट और विच में क्या फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दैट और विच का नहीं पूछा. यहाँ पे उससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा है. पढ़ाते वक्त मैंने ये पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, आई एम श्योर मैम ने भी पढ़ाया होगा, कि विथ एडजेक्टिव फ्रेजेस लाइक द, से, राइट? Right.
So same से पहले आपके हिसाब से द लगना द चाहिए. लगना Right, चाहिए. right, very true. So the answer is In B part. Right. Okay. Moving forward, his written statement differs in several important respects from his oral statement. We can relate this to a very hot case that is going on right now in the country, right? A gangster giving statements, right? So unfortunately, he's no more. Yeah. So differs के बाद in नहीं लगता है. The preposition that is used is differs to rather than differs in, right, ma'am? Right, That's what I sir. feel. Right, sir. So the answer is in B part. Okay. Okay. Going forward, it's a clear-cut case of wrong use of preposition. In fact, no use of preposition, right? It is a very important section of preposition where we learn कि English language में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद preposition का इस्तेमाल नहीं होता है. And ma'am, you would not believe it. This is exactly The the same replica sentence of the example that I gave in that the you gave in the class. Absolutely. So you see, children, if you are attending the classes regularly, because I'm sure many of the students who are not from Cavalier and have given the serious paper this time would also be seeing this live session. So I just want you to be reminded that whatever has been asked in the paper has been done in some form or the other in the paper. So you can join as soon as possible. So sir, what's the answer? So the answer is order के बाद preposition का इस्तेमाल नहीं होगा. A is the answer. Right. जिस भी बच्चे ने हमारी क्लासेस को अच्छे से किया है वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं आएगा. क्योंकि मैं हर बच्चे को ये पढ़ाता हूँ कि यूपीएससी ये करने वाली है. They might reverse these once and one. I have taught it in pronoun that the possessive pronoun of one will always be one's and never his or her. So according to us, this sentence is absolutely Right. 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 So I'm sure कि spotting errors में कोई भी problem नहीं होगी if you have attended the classes and we have repeated that these are the questions which are asked again and again. जैसे वन वाला सर ने बोला या ordered for का. तो अगर आपने उस चीजों को दोबारा रिवाइज किया है तो I'm sure you would have done it correctly. Let's get to the synonyms now. Synonyms. Another headache for the students to get very scared. Vocabulary से तो थोड़ा सा डर रहता ही है. पर काफी आसान है in Right. comparison to other papers of CDS that I have seen earlier. Right. So much easier. Much section. easier. So anxious बहुत ज्यादा यूज होने वाला शब्द है. सिर्फ क्लास में नहीं, आम जिंदगी में भी ये शब्द हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. When do you get anxious? Right? You get jittery, you get nervous, you get eager, उत्सुक. तो मेरे हिसाब से the answer is eager. Right? Right. Moving forward. 52. Okay. The power of the monarchy was circumscribed by the new law. अगर आप सेंटेंस को ही ध्यान से पढ़ो तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा. What do we do by law? Right? लॉ है, पावर है, मोनार्की की बात की जा रही है. मोनार्की क्या होती है? मोनार्की में लॉ वो होता है जो मोनार्क ने बोल दिया. राइट? अगर पावर, मोनार्की और लॉ की बात की जा रही है तो ये शब्द डेफिनेटली उस पावर को कम करने के बारे में भी बात की जा रही होगी. तो circumscribed means constrained. Constrained means to be put under a leash, to be put under a control. Let's go forward. Okay, now this is a very nice word that we have here. We caught him eavesdropping outside the window. Even if you do not know the meaning of this word and you know eavesdropping and somebody is standing outside the window, so he obviously is not wandering aimlessly. He is not talking loudly because वो window के बाहर खड़ा है, तो किसी की चुप के बातें सुन रहा है, and he is not reflecting calmly. So what is the correct answer? The answer is listening secretly, listening to the conversation. Let us move to the next question. The party leader exhorted his members to start preparing. Now, if you've attended again and again, we come to the same point where Sumit sir and I have attended all the classes, done the classes. Exhorted means where you are pleading, where you are requesting, where you are urging. So the word itself, the answer is going to be urged and not expected, facilitated or discouraged.
because we are saying the party leader to start preparing for the formation of the government. So it cannot be discouraged. Obviously, party leader will never do this. Facilitated and expected, definitely not. Right. Let us move to the next question and see what we are talking about. The local people are hospitable to strangers. Now, how many times have we heard this word? And I've told you time and again, the hospitable word comes from the word hospital. So the answer is not going to be surly, distant, or frosty, because frosty is again cold like snow, very emotionless. So the correct answer is going to be cordial. So let's such traditional methods seem incongruous in our technical age. Now, incongruous, if you've done the root words, in is not, and congruous is in harmony. So anything which is not in harmony, unswerving, constant, unwearing, or inappropriate. So what is the answer? The answer is going to be unwearing. Let's move on, sir, to the next question. Moving forward, what do we have? Known as a mercurial temperament. Temperament की बात हो रही है, mercurial है, right? If you are talking about temperament, it is something that would be calm or would be something that would not be very calm. So mercurial word means volatile. So the correct answer is volatile. We are taking it from the mercury in the thermometer. Absolutely. So that is volatile. Something that goes up and down very quickly. Okay. That's where this word comes from. Moving forward, it is obligatory for all employees to wear protective clothing. Obligatory, sense of obligation, a sense of duty is being inferred. So if the word obligatory is being used, it is not optional, it is not voluntary, it is not elective, it is not optional, just as I used this word. It is essential for everyone to wear protective clothing, right? Moving forward, ma'am, we have the next question. Predisposition to liver disease. I'll take that question. See, she has a genetic predisposition to liver disease. Predisposition means vulnerability. Okay, predisposition has two meanings. It is ideally, theoretically, it also means lacking or being inclined towards something, being inclined towards someone. But here, the predisposition is towards a disease. Now, no one will have an inclination towards a disease, right? Anyone will have a vulnerability towards a disease. So the correct answer is vulnerability. What's the last question we have? The last question we have is, she wore a sardonic smile on her face. Sardonic, may I take that question? Right, sir. Sardonic means जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन जब किसी के मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है, उसको हम sardonic बोलते हैं. It is an adjective, right? So the word sardonic here is going to mean mocking. Right. Respectful, reverential, and deferential, all of the three mean giving respect to someone. So we are not giving respect in this sense, we are mocking someone. Right, ma'am? Yes, sir. Going forward to the next question, next section. Ordering of sentences, you can check it from the answer key because you just have to check the answers. Yeah. And let's move on forward. What's the next portion that we have? So we come to the antonyms. Now we've done synonyms and idioms and phrases. Let's come to the antonyms. And like Sumit sir said, I'll reword that the synonyms, antonyms, and idioms and phrases were very easy. Those words which you have already heard time and again in the class and even in your daily language, daily speech. So let's come to the first question. It says brevity is the soul of wit. Now the word itself, brevity, means brief. So it cannot be economy, it cannot be terseness, which you had done time and again in your paper, which again means brief. And verbosity means speaking in large number. So the antonym of brief will obviously be exaggerated, blurred. So the answer is going to be verbosity. The next question says blend the grains to make a smooth paste. Now since we are using the word paste, even if you don't know the meaning of blend, we all have a blender at home, a mixer at home. तो मम्मी को देखा होगा बहुत बारी बनाते हुए. तो blend का मतलब हो गया where you are mixing up two things. So the correct answer will not be mingle, coalesce or amalgamate. The answer would be separate. अब अगर हम next question पे जाते हैं, so the project wasted a considerable amount of time and money.
तो वो जब पहले ही कह रहा है वेस्टेड, सो यू नो कि बहुत सारा टाइम और मनी जा चुका है. सो व्हेन यू हैव टू लुक एट द एंटोनिम, सो सब्सटैंशियल नहीं होगा, प्लेंटिफुल भी नहीं होगा, and abundant भी नहीं होगा. So the correct answer would be thrifty. Now, if we move on to question number 74, she says she has always been distasteful of people who haven't been to college. Now, I'm sure ये word सुमित सर ने भी बहुत बड़ी क्लास में कराया होगा. And disdainful means whom you are not appreciating. So the correct answer would be obviously when we are talking about respectful. I'll move on to the last question and then I'll give it to Sumit sir so that he can move across. Now the question is, he had a frugal lunch. Now frugal is where you are having it in limit. So the option is going to be obviously not sparing, not meager, not delicious. So the answer is going to be extravagant because meager would be the synonym of frugal and not the antonym. So I hand over to Sumit sir so that he can move across. I'll just join you. Sure. Right, guys. So the next word that we have is, he is forced to lead an itinerant life. Itinerant, related to itinerary, right? What is an itinerary related to? Itinerary is related to traveling, right? So if someone is leading an itinerant life, what is he not leading? He is not leading a sedentary life. That's the correct answer to this question, right? Moving forward, we have his malicious intentions were aborted. Aborted means thwarted. Thwarted and aborted means किसी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को जो कोई अनहोनी कर सकती थी, कोई परेशानी कर सकती थी, उसको अगर हम रोकते हैं तो उसके लिए अबॉर्टेड या थॉटेड यूज करते हैं. Malicious, malicious क्या होता है? Malicious is a negative word. Malicious is wrongdoing, wrong intentions, something that is not correct. So the correct answer to this question would be benevolent. What does benevolent mean? Benevolent means kind, right? Moving forward. Comics tend to perpetuate several myths. Perpetuate, right? What do we mean by perpetuate? Perpetuate means to bring together, to elaborate, to distribute. So according to me, the correct answer to this question is seize. Right, ma'am? Yes, sir. Definitely. Okay. The next word. Krishna is a redoubtable person. इसका synonym option में दिया हुआ है. The synonym to this word is given in the option. Formidable. This word is used in the sense of an opponent and an enemy. Okay. When an opponent is very strong, when an enemy is very heavy, then we use the word formidable or redoubtable, right? The antonym to this would be unimpressive, because all the other three words mean something that would put you in trouble. Awe-inspiring is जिससे आप बहुत ज़्यादा impress होते हैं. Fearsome is जिससे आप डरते हैं. Formidable अभी बताया, redoubtable दोनों का मतलब बहुत strong होता है. तो इनका जो antonym होगा वो होगा unimpressive. The movie is about fusion of old and contemporary ideas. I don't think you would get an easier question to become an officer in this country. Fusion का उल्टा separation. It's a no-brainer. ऐसे questions को no-brainer कहते हैं, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. Right. Okay. What is the next question we have, sir? So close composition, again, I think we'll discuss it in the answer key itself. Absolutely. And the close composition was also very easy. And again, if you would have seen, you would have used your method of elimination and used your rule of tenses, you would have got the answer. So again, like sir said, it's a no-brainer. Huh. We discussed this, prepositions and determiners. Scary part, हाँ? Identification of part of speech. सर ये पढ़ा देना, सर ये पढ़ा देना. Students मेरी जान खा गए थे, सर ये जरूर पढ़ा देना. ये जरूर करा देना. And I had to tell them that until and unless I teach all the parts of speech, you will not be able to understand you will not be able to understand. Until your basics were so off track that first you had to understand what is a noun, what is a conjunction, what is an adverb. After that, we were able to learn the identification of part of speech. Now, God willing, I'm sure कि जिस तरह से हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, जिस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा,
इस सेक्शन को आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन आया नहीं है। The first question says, Steve has gone away, he will be away. Ma'am. So now when we are looking at this question, Steve, he will be away. He has already gone. He will be away on Monday, by Monday, until Monday. So it doesn't make any sense to talk about on, by and until. So the correct option has to be from Monday. He's already gone away. Now if I look at the next question, and before I talk to you about the next question, बच्ची प्रॉब्लम क्या होती है कि then when you are attending the classes you forget some of the rules, but I'm sure कि हमने इतनी बारी आपको feedback दिया, इतनी बारी आपको repeat किया that you would not have had a problem. So I would request whoever is watching this video right now live, I would request you to give in the comments as to how your paper went about, so that we can see what is it that is requiring more preparation for the next time, and we can work on it together so that you can complete your aim and goal of becoming a defense officer. Now I'll see you dash Friday morning. इससे simple sentence तो शायद NDA के पेपर में भी नहीं आ सकता सुमित सर. So the correct answer is in Friday morning, along Friday morning, at Friday morning. So the correct answer is on Friday morning. Write your name dash the top of the page. अभी आप OMR sheet पे अपना करने गए हैं and you are going to give the exam. So what is happening there? You know very specifically. Specific के लिए हम क्या use कर रहे हैं? We are always using at. We are not using anything else but at itself. So the correct answer is at. When we are talking about next, this could be a little bit confusing to somebody who is not talking about prepositions here. So because in or at में आपको confusion create हो सकता था, and Sohan is studying in the university or at the university. But अगर हमने class के अंदर आपको पता है कि university के साथ we will always use at and not in, on and from. Now if we move on to the next question, we say is indebted. Indebted means you are always grateful. तो indebted के साथ आप क्या लगाओगे? You will always use the word to and not by, with and from. क्योंकि आप grateful किसी चीज के लिए हो, for physical health, for financial health, for emotional health, anything, etc. Yes, sir. So shall we move on to question number 96? Can I be held responsible dash my spouse's debts? You are held responsible not to, by or with. Right. You are not held responsible to, by or with. You are held responsible for something, right? Next question. It was fun to hang out dash the fire. What do? You hang out down someone, you hang out in someone, you hang out beneath someone? No. You hang out with someone. That's the correct answer to this question. The next question, can you pass sugar please? We will not put an article over here because we are not talking about anything specific. So the answer according to us is D, no article. Why can't we not use the? We cannot use a and because we are talking about countable, but why can't we use the sugar? Because we just had a discussion that we are not talking about something specific, right, and right. It is uncountable. Right. Moving forward, our train leaves from dash platform number 5. स्टेशन पे अनाउंसमेंट तो सुना होगा, इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, मान लिया मेरे से, मैम से या किसी से नहीं पढ़ा होगा। स्टेशन पे अनाउंसमेंट तो सुना होगा, अगर उस अनाउंसमेंट को ठीक से सुना होगा तो ये क्वेश्चन सही करके आए होगे, राइट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज no article. You do not use any article before the word platform. The last question in this section, children learn very quickly. As we are talking about children, so we are not going to use a, any or much. We are going to use some. Indefinite pronoun is going to be used over here. Some children learn very quickly. Okay, so we'll quickly move on to the rest of the questions and finish it off as soon as possible so that we can quickly move ahead and give time for the others also.
We have the next is the completion of sentence. We'll quickly discuss the answers without going into the detail here. They were informed that the inaugural version of the scheme, so because the word here is were, so we are going to use here, the correct answer is going to be had parts. The next question says, what would you do? We are talking about a conditional sentence. So the answer would be, because would is already there, so the correct answer would be if you won a lot of money. Now again, the next question that we are talking about is a conditional sentence, and it says if it stopped raining, then we could go out and not we should go out, because we are talking about the conditional sentence. Now the next question says, let me know. Let me know. Now let me know says if you have any further news, if you had any further news, if you has any further news, and if you had that. So the correct answer would be if you have any further news. Okay, sir. Let's hand it over to you. Moving forward, we state, what do we discuss here? We stayed at the cheap hotel in the town, and the cheaper hotel in the town, at the cheapest hotel in the town, at a cheapest hotel in the town. एडजेक्टिव पढ़ते वक्त हमने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। या तो आर्टिकल में या तो एडजेक्टिव में हमने ये रूल जरूर पढ़ा होगा कि चीपेस्ट के पहले द लगता है। तो अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चराइजेशन को देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, एंड दैट इज एट द चीपेस्ट होटल। Moving on, we have our next question. Julia got married as she was 22, when she was 22, because she was 22, since she was 22. You don't get married as, because, or since, right? You get married when. I hope that's correct, ma'am. Yes, sir, definitely. Right. The next question. What time does this train get at London? Does this train get in London? Does this train get into London? Does this train get to London? When we are talking about a specific destination, the preposition that will be used before that destination is to, and not any other preposition. So if you look at the use of the prepositions, this is a wrong use of preposition. So is this one, so is this one. This is the correct option, as this is the correct use of preposition over here, right? How are you getting on in your new job? Getting off, getting along, getting off. सिंगल एफ वाला ऑफ और डबल एफ वाले ऑफ में हमने डिस्कस किया है कि क्या डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन में। गेटिंग अलोंग नहीं हो सकता है बिकॉज यू गेट अलोंग विथ अ पर्सन, सो व्हाट डू यू डू, यू गेट ऑन विथ योर जॉब, राइट? So the correct answer will be option A, sir. A, right? Option A, absolutely. Moving forward, I'm trying to shut down on coffee, cut down on coffee, break down on coffee, turn down on coffee. Breaking down the coffee is something that your body will do, right? Whatever food we consume is broken into enzymes and proteins by our body, not by us. We don't shut down on coffee, we don't shut down on something that we consume. We do not turn down on coffee, we do not turn down our daily consumables. We turn down an offer, right? And here the coffee is not being offered. It is being referred to as a consumable that we are consuming on daily basis. So what do we do with our consumables? We cut down on it. जो लोग डाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं, you can relate to this. But if you're thinking about dieting, you don't need to cut down on coffee, right? Okay. Many accidents cause careless driving. Well, that is a horrendous sentence. Okay, if you make that sentence, it's a horrendous sentence. कि accidents की वजह से careless driving होता है. That's what this sentence means, which is absolutely wrong. Many accidents have caused careless driving. I don't know what are they trying to infer. कैसा sentence बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे बच्चों के लिए काम आसान कर इतना सिंपल ऑप्शन दे रहे हैं इतना सिंपल ऑप्शन आ रहा है। Realistically speaking, अगर standard 10th के बच्चे को भी ये questions ऐसे questions दिए जाएं, तो he will give the right answers. So many accidents are caused by careless driving, right? What is the next section in store for us? Comprehension.
Now, although we're not going to discuss comprehension, I just wanted to highlight this comprehension. अब जितने भी यहाँ के students हैं need to understand, and even all those students who are live with us right now, कि comprehension, English is such a subject जहाँ पे comprehension का passage कभी भी repeat नहीं होगा. But as soon as I read this passage, I found it very familiar, and I kept on going on in my mind कि मैंने कहीं ना कहीं तो सुमित सर पढ़ा है उसको. And the first thing that I realized was कि जब इनका FLT हुआ full length test, तो उसके अंदर exactly same passage मैंने दिया था. So all the students must have found it extremely easy. उनको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा होगा because comprehension में उनको बहुत time लगता है otherwise करने में. So if they would have remembered this, they would have quickly got down to the answers and moved ahead. Okay, sir. Let's move on. Are we left with any more section? I really don't think so. We are left with any question. Anybody has any kind of doubts, please, you can get with us. You can come back to us. I'll just repeat certain things. I think we can tell them this question. They're very concerned with this. Okay, right. We can discuss this. Right. So the general tone of the passage is critical, descriptive, demonstrative, informational. What are we discussing about? We are discussing about machines. How the machines have taken over mankind. How are they controlling us rather than us controlling them? We are all bound by the machines that are around us. We made the machines, so we are the people who should master them. But it's not happening. It's very evident in mobile phones. We have become slaves of the mobile phones and the latest technologies. That is what the passage is criticizing. The passage is not describing, demonstrating, or informing about how we have become the slaves of technology. The passage is criticizing how we have become the slaves of technology. So the tone of the passage is critical and not descriptive, demonstrative, or informational. The next question also very clearly says, अगर आपको पता चल गया कि the general tone of the passage is there. So the use of machines has failed to bring us spiritual freedom, more leisure and more energy. Slavery and destruction, so obviously not the answer because we are talking about something. So it mentions very clearly here about civilization. Yes. And since it is talking about civilized here, when we are saying the word civilized, so when we are moving here, we obviously know the answer that is there here is culture and civilization that we are referring to here. So the answer is going to be culture and civilization. Let's just move to the next question, sir. अब करा ही रहे हाँ, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे, परेशान ना हो. हाँ. Okay, according to the passage, our civilization would be greater if man devotes his time to make more beautiful things. I don't think so. If man looks after machine and waits upon machines, if machines are made man's servant, if man discovers how to prevent poverty. The B option is a correct option, but in general tone, not according to the tone of the relevance of the passage. According to the relevance of the passage, the correct answer is C option. If machines are made man's servant rather than the other way. I think the correct answer is option A because we are questioning our civilization would be made greater. Okay. And not if machines are made man's servant because यहाँ पे if I had read the passage, I could have seen here that we are talking about that we are making and linking beautiful things, thinking freely, and living brightly. So that is why I picked up on this. Absolutely. If you agree with me. Absolutely. In complete agreement with you. So people, you can go by the option given by ma'am. So the answer would be A part of 113. Let's just move to the 14th question, sir. Ma'am, please take the question. According to the passage, which one of the following descriptions about machines is true? They already rule us like we rule animals. They wait upon us attentively. And when we are talking about they are inexorable masters and they have made man more civilized. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर. The answer will obviously be here that they are inexorable masters. Like we are trying to master over them. They are already mastering us. जैसे सर ने अभी phones के example दिए, cell phone के example दिए. Sir, you would like to take the next question? Absolutely. Inexorable means someone who does not leave you, someone who is very strict, someone who is not lenient. Not like me and Sumit sir, but somebody who is a very strict taskmaster for that matter. Absolutely. Now you can find who was that teacher.
According to the passage, how do we use the powers bestowed upon us by science? Should we use it temperamentally, divinely, irrationally? Divinely is something we cannot do. Divinely is something that God can do. So we eradicate the first option, we eliminate the C option. Irrationally का कोई सेंस नहीं बनता है. टेक्नोलॉजी को irrationally यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. Temperamentally भी यूज नहीं करेंगे. Temperamental means not being in an able, calm state of mind while doing something. So according to me, the correct answer to this question is judiciously. Judiciously मतलब समझदारी के साथ. I hope you agree, ma'am. But are we using it? Because वो तो पूछ रहा है कि passage के हिसाब से how are we using it? No. According to the passage, how do we use the powers bestowed upon us? Absolutely right. I missed that point. Right. I was not looking at. And this is a mistake that a lot of students would also make, right? Which we were telling you time and again in the class कि आप question को बार-बार पढ़ें so that you don't make the mistake. What will be the answer then, sir? So then the answer would obviously be irrationally and not temperamentally or divinely. So the answer would be option D. Right. Okay, sir. Let's move on further. We are done with passage 1. Passage 1. Passage 2, we can see it's talking about plastic. Plastic and the disadvantages of plastic. So let's quickly discuss these questions also so that children can move ahead and see. Plastic has distressing effects on only humans, only marine life, both humans and marine life. Plastic is a problem for everyone in the society, in the mankind, in the organizational setup. So it is not just for humans, not only for marine life. I would feel C. Right, now. Right, sir. Plastic and plastic particles, sir. Particles can be found in the oceanic depths, on mountain tops, in metals and minerals, all of the above. I think we find it everywhere. Everywhere. There's not a place where we don't find plastics, right? So the answer would be option D. All of you. Plastic pollution appears to be an epidemic, a pandemic, a small menace, or a temporal health issue. Now, option C and D are definitely eliminated because it's a big problem. So would the answer be B or would the answer be A, sir? An epidemic is something that affects a lot of people. And a pandemic is something that affects a lot of people by the mode of a virus, right? So I would feel the answer to this is an epidemic and not a pandemic. Okay. I would slightly like to disagree here in the sense we would just like to discuss here because we would like to give you the Temporal. the temporal health issue. Okay, so we are talking about right, which continues to affect us for a large period of time. So the answer would be a temporal health issue and not a small menace, a pandemic or an epidemic. Let's move on to question number 119. Plastic is considered an essential commodity because it has made our lives easier, causes health hazard, clogs natural ecosystem. It has multiple uses in our everyday lives. Again, when we are looking at this question, so option B and C are definitely not there because we are saying it is considered an essential commodity. So the answer would be it has multiple uses in our everyday lives. Okay, so what's the last question that is there? So going forward, it's a very simple question that often comes, that you are asked a meaning of a word that has been given in a passage. The word clogging in the passage, well, अक्सर क्या होता है जो word का actual meaning होता है passage में उसको उस sense में use नहीं किया जाता है. But thankfully for you, the word clogging actually जो उसका meaning है और जो यहाँ use किया गया है दोनों उसका same है, which is obstruction. Right, ma'am? Right, sir. So we've discussed the comprehension passage also with you, and you can check the answer key also. But how do you feel the paper was on the whole, sir? Ma'am, on the whole, I strongly believe that if a student would have put in the hard yards, if they would have burned the midnight oil, if they would have worked hard, it's a very easy paper to crack. So thank you, Sumit sir and Goldie ma'am. Thank you. And इधर आ जाइए. I mean, I've been attending your classes and you with the students, and I think most of the things have been covered. Yes, sir. And besides that, the paper happens to be fairly easy. Fairly So easy. what do you think?
Cavalier students would be getting what I'm kind of sure marks? that the success rate would be very high. Very high. I'm keeping my fingers crossed and waiting for the children to give me the feedback I right believe now. a lot of questions. Lot have of been the discussed questions. Absolutely. in the Even class. the examples are saying that we gave in the class. Even We've the been taking examples, even the comprehension, even the synonyms And that was true in AFCAT paper also. Yes, sir. It We've was true in done. AFCAT paper as well. So I'm very proud of both of you. Thank you so that much, you've been sir. doing a wonderful work with the students. Thank And you. I'm sure all the Cavalier students would definitely I'm be sure most of the scoring students about, would be. if nothing else, 70% marks. If Right. That's nothing the else. bare minimum. That's the bare minimum, That's- right? And students, if you have done what we are telling you here, then let me assure you, you can't be failing in a merit. English is the one which actually makes your merit. And if you've done this kind of a thing and paper being fairly easy, and of course things have been covered in the class, I'm very, very happy for everybody, and especially the Cavalier students, because I know for sure that both of them have covered all these things in the class on a very regular basis, and they've appeared in the test also. So thank you, sir. Thank you, sir. ma'am. Thank you so much, sir. We wish the students all the best. Thank you so much, sir. Okay, students, we've seen that the English paper has been, already finished, and the serious students would be now doing their the GS paper. And I'm sure the moment the GS paper arrives, our faculty will be there with you to sort these things out. And to tell you now, already the NDA paper is with us. NDA maths paper is with us. Our teachers are working on it, and very soon the NDA things will also come live. Now, while we have time with us, uh, I want to tell you that the Cavalier batches are going to start. The first batch is going to start on the 18th of April, and we're going to have multiple batches for 5 months and 3 months. The target being your September exam. It's in the first week. So those people who want to join can join immediately on the 18th and thereafter also. And especially for the students of class 11th and 12th who have just finished 12th or you've gone into 12th, all those people, and especially people who have summer vacations with them. During the summer vacations, we are going to have special crash courses, which are going to be for 45 days basically. We are also going to give you options wherein some students who can do a 30 or 45 days summer vacation batch and then have weekend classes, or maybe we can even go online on a daily basis depending on what kind of response we get. So we at the Cavalier are giving you option firstly of offline courses which are regular, and especially during the summer vacation because you have the time. Then that course can be extended to going offline on a regular basis, or maybe 1.5 to 2 hours in the evening on a daily basis. And the third option is where you can combine this summer vacation batch with the batch which goes on onto the weekends, right? And for those people, for the students who want to join the batches which are there in September and for the next April exam, we are going to have regular classes on weekends. That is about 5 hours a day on Saturday and Sunday. So we have various options are there. And once you give us a call, we'll be able to tell you as to what all is available with us. Now, remember that any amount of hard work put in by you for your exam is an important aspect. A lot of students, what they do is that they go look in the net for whatever the cutoff is. And when they go and look at the cutoff, which seems to be low for reasons I don't know, and then they start thinking of getting somewhere about 35% marks. And when you start working on 35% marks, you land up with, say, maybe 25 or 30. And eventually you don't come out into the merit, the final merit. That is 400 people that are going to be students that are going to go to join the NDA or the serious exam. So our suggestion to the students who are in Cavalier or otherwise is that we always tell you, set your aim higher. Go for higher marks so that you're assured your merit.
Imagine going through everything, clearing your SSB, passing your medical, and after that not coming in the merit. It is very heartbreaking. So in your written exam, what I want you to do is make sure that you get very high marks. And it is very much possible in CDS and NDA exam to exceed 60% marks. Now imagine how the mechanics works. Now, the target with you is not to pass the UPSC exam. The target is to come in the final merit. And final merit comprises of two things. They take the marks of the UPSC exam, that is ND or CDS, and then they take your marks of SSB, right? 50% of each. Now, when they're put together, then they draw the merit. So let's see how things can be managed by a student that he falls into merit. Now, if you have taken this exam or you're going to take this exam, you know that when you get this test paper, you are marking, it is MCQs, you're marking everything on the OMR sheet, right? And who's doing the assessment? It is a machine which is reading these OMR sheets and giving you the marks. So, firstly, the assessor or somebody who's seeing your booklet of the answers has got no control over giving you marks or not giving you the marks. You either get all the marks or you don't get marks or you get negative marks, right? Secondly, when you're preparing and you're taking this exam in the UPSC, the people who are sitting around you cannot make any difference to your performance. Firstly, they are pretty away from you, they can't see you, plus their personality doesn't affect you at all. So while you're taking the exam, it is in your absolute control. Whatever you want to do, you can do. There is no person who can hinder you or who can stop you. So it is in your absolute control. Like now, let's see the variation that happens in SSB. Firstly, in the SSB, we are very, very strict because we need to be strict. There is an onus lying on us, entrusted to us by the government of India, that we pick the best. If you're going to be picking the best, we can't be loose in giving you marks. So we are very stringent. We are very, very careful how to give you marks. So people who pass the SSB interview land up with almost approximately similar marks. There is not much of a variation, right? So now let's take the scenario here that there is a person who, as per the cutoff that you keep seeing on the net, has cleared the UPSC paper with say maybe 30, 32, 33, 34% marks. But there is somebody who has set high targets and that person has secured maybe 60 plus marks. Now the gap this person is going to create between him and the person who's going for cutoff marks is almost about 25 to 30%, which is a big number, right? And that 25 to 30% gap is never available in the SSB results. In the SSB results, the marks are narrowly poised. They're very close to each other for the people who pass. Maybe there's a band of maybe only 12%. So a person who clears his UPSC with higher marks as compared to the person who's clearing his SSB with higher marks for NDA CDS, the person who secures higher marks in the UPSC exam is the one who's going to get into merit, right? And that is something which you people forget. And you just go by the cutoff and see that, right? In that also, now you are taking this exam today. NDA, CDS, everybody's taking these exams today. Now ask yourself this question. Now, if you have to secure high marks, we are talking of the aggregate here, right? If you're talking of aggregate out of 900 marks for NDA and 300 marks for CDS, if you were to secure high marks, how do you manage it? Like for NDA, first paper is 300 marks, you're already aware of it. Second paper is CN 600 marks, which is your GAT. 200 marks for English, 200 marks for your general studies, and 200 marks for science. Now, in that kind of a scenario, now if you look into the paper that you have, as you've been seeing today, you just finished your maths paper. Now, in a maths paper, the syllabus is pretty wide, 11th and 12th maths. The level of difficulty is reasonably high. A lot of things have to be done. And you get nervous because you just got a minute and a quarter or max maybe a minute and a half to solve these questions, right? So maximizing marks, getting extra marks in maths is a real tough ask. It doesn't happen easily with everybody, right? So, but remember, there are 300 marks for maths for each way, which you have to slog a lot. Now compare this to the GAT paper where you got 200 marks for English. Now, English is a very limited portion of study.
It is basic grammar. You've been studying this grammar since class 1, and the grammar doesn't change from class 1 to a senior level. Grammar remains to be the same, whereas maths changes, right? So you've been studying grammar since a very long time. So now to sit down, revise, and work on your grammar with the limited syllabus that you have of pure grammar, it's easier to secure high marks, and that is 200 marks compared to 300 of your maths. So in an English paper, like today, we've had this, the CDS paper solved now. Here also you saw it was not very difficult to solve this paper. Similarly, in the NDA, the level is even lower, right? So in that case, what will happen is that you can really secure very high marks in English. And most of the students, when they attempt the paper, they go by the English of the ear. What may sound pleasing to me, what may sound right to me, may not be grammatically correct. When we speak in English, or while I'm speaking English now also, we tend to take grammar for granted. We mess up with various things, but which cannot be done in a paper. So if you have a limited syllabus which is there and you can really work on it, then you'll find that you will be able to secure really high marks. So remember, if you were to secure really high marks in English in the GAT paper, it's really not difficult out of 200 to get 150 marks in the NDA exam. And similarly, as you just now saw in the CDS English paper, getting 70% marks is really not difficult, especially the today's paper that happened. Now imagine those people who secure these kind of marks getting out of 300, 150, 160 marks in maths is a real tough ask. But in English, it is very easy to do, and it has a limited syllabus. You don't have to work on. So you got to learn how to be smart with your, with your papers. How to be smart with how you deal with your entire exam. So that is one of the ways to do it, right? So while I'm talking to you, you see this the NDA. I told you the NDA maths paper is already over. We've just received the paper a short while back. Our teachers are at it, and very soon you'll find them giving you live answers to the tricky questions to begin with, and also to other questions. And remember, in the maths paper also, they're going to again reiterate to you that is the shortcut techniques which pushes you through, which takes you into a realm of getting more marks, right? And we discussed earlier also. I discussed this with you in the previous video that even in a maths paper, you have to work intelligently. You have to do things in a manner that you get more and more marks, right? Now, to get more marks in NDA paper, in the NDA maths paper, you have to be intelligent to understand yourself, right? What are my strengths and what are my weaknesses? I am good in trigonometry, right? Fine. So I work harder on that and get more marks rather than a subject, maybe algebra, I'm not too good. There I'll end up attempting a question which I don't know really, and I'll end up getting a negative mark. So there is no student who has ever cleared in this entire history of NDA exams the entire maths paper. It is not possible. Some of you will leave a number of questions. Some of you may leave less questions. So you should be smart which questions to leave, right? That is what practice is all about. That is why we have given our students a large number of full-length tests, various class tests, so they recognize which are the subjects on which you can do better as compared to the other. Which are the topics which you can deal quickly. The ones that you can't deal quickly are the ones that you have to leave away, right? So now, so that is what we are looking at. In your next, some of you will be taking the next exam also, the ND and CDs. Most of the people do that if your age permits. Why? Because it is a long process. After your written exam, you've got to go for interview. After interview, you've got to have the medical, and from the medical, you've got to have the merit list. So by the time the merit list is out, your next exam is due or it is round the corner. So any student who's taking the NDA CDS exam would at least attempt twice, or at times twice also. So all those people who have attempted today, whatever be your, we of course wish you all the best, but whatever be your performance today, you must not let loose. If you really want to become an officer, start preparing for the next paper also. Of course, not today onwards, but very soon batches are going to start, right? So Cavalier is available to you online, it is available to offline, it is available to you
as a combination on offline or online. It is also available to you weekends. And there's one more news that I want to share with you, that in Delhi, in the Delhi NCR region, we have a branch in Rajouri Garden, from where I'm addressing you. We have a branch in Mukherjee Nagar. Now we are shortly going to open another branch in Gurgaon, because we've been getting a lot of requests from students of especially Haryana and Gurgaon and the area thereabouts, wherein they find difficult to come to Delhi, because from Gurgaon they can reduce the time. So we are opening in Sector 14 Gurgaon a branch which is going to start on the 1st of May, and the batches there are going to start from 18th of May onwards. And there also we're going to be offering you all kinds of combinations, as I told you. It is online, offline, weekends, and so on. So all those students who've been requesting us that we must have something going in Gurgaon, we've done that, and you'll be able to reach us there also. Remember, it is Sector 14, Gurgaon. Right. So, sir, is the maths something ready? Can we take on, or how much time are we going to take? So we can start with some this thing, and then okay, right. So it is taking a little more time. Don't worry, we'll be there with you. So in the meantime, all of you, you've taken this one test already, and CDS now, the GS paper should be, is going to be over very soon. So we'll be on air with you in no time. And till that time, all of you, remember that we are live with you through and through. We are going to be there with you till late in the evening today. And the endeavor is not to just give you the solutions, to give you how the solution can be worked out. Why are we doing that? What happens is that when you get a solution, when you get an answer from any key that is given by anybody, at times you have doubts. Okay, was that key right or not? Or were the answers given by X institute correct or not? But when we are solving it in front of you, then you have the surety. You have the surety that, look, whatever they are telling, it is justified, and it is not just kind of an answer key given in a jiffy or something hurriedly given to you, right? So one of the sets of the CDS English paper, I think it is set A. It has already been put on the PDF, and most of you, it is put up in a manner that you can see the entire question paper. Those people who are not having set A can match the questions from there and get the answers. So that has already been put. And similarly, we're going to be doing the same thing with the maths and the GS paper also. Right. So after today, all those people, all the students who have taken the CDS or the NDA exam, by this evening, you will really know where you stand. You will be absolutely sure as to how much marks you're getting, because not only are we providing you the key to the answers, we are giving you the method of having worked the answer. So very sure as to what marks you're going to get, and there may be just a little variation here or there. So you will be exactly able to make out that what is your standing as of now, right? And you really don't have to wait for the results. The last time the results of NDA CDS exam came in a month or so, and now if you don't have the results with you, keep getting worried, pass honge, nahi honge, kya hoga. So with this kind of a thing that we have given you, you're sure what you're going to get. So in case you feel that you're getting good marks in all the 3 papers of CDS or all the 2 papers of NDA, now don't relax. Get on with your SSB preparation right away. Because if the results are going to come in about a month's time, then you're going to be getting your SSB calls after the result, say another 2, 3, 4 weeks. And then quickly the SSBs will start. Now, the major problem that we've seen over the last 20 years of coaching NDA, CDS, and SSB, and AFCAT and other things is that when the results come out, people start reacting thereafter. They waste their 1.5 to 2 months of the result. They sit idly. They do not do anything constructive towards their SSB, and they keep waiting for the result. Why should you be doing that? By this year, you will exactly know what has happened, right? So in case you feel that you are going to be clearing this paper or this exam or the ND or the CDS,
Get on with your SSB straight away. And if you do study, it's not going to be get wasted. So get on to it right away. Now, what is this SSB all about? Now, SSB has been turned into a kind of a enigma by a number of people. And today on the YouTube, anybody and everybody is giving you gyan. They're telling you what is to be done. And I get amazed when I see that people who are teaching you SSB have themselves not clear SSB. The qualification that they list out for you and which you follow them is that I went to SSB 6 times, I couldn't pass, but here I am with that experience. I'm going to be making you pass. I'm going to make you pass in the SSB. I find it very ridiculous. I find it very humorous, but I don't know why that kind of a pattern is there. So those people, they may be well-meaning for you, but if they really knew how to pass SSB, then they would have done it themselves, right? So now there is a lot of stuff available on the YouTube by various institutes, by various instructors, by everybody. What you really need to do in SSB, SSB is all about your personality, right? And when you prepare for SSB, it cannot be done while sitting at home. You all know in the SSB on day one, you're going to have a screening test, of course. OIR, that reasoning test is something, yes, you can do from your home, but a lot of you are complacent in it, right? They think that I know, but when we conduct classes here, I find to my amazement that people who claim that they are very good in reasoning, when we start teaching them, they say, okay, no, sir, I did not know this way. Remember, the OIR or the reasoning questions are not very tough, but then there's a time problem. Generally, you will end up with about 28, 29 seconds to answer, and especially CAPF, even in the Coast Guard, the questions are coming with different kind of time frames. So you got to be quick at it. Now you got to be quick at it. You have to learn the shortcut methods or the method by which you can quickly find an answer. So that is one thing. Now the second thing in a screening test is your PPDT, right? And that is all physical stuff. You got to be writing the stories, write the story in the right manner, understanding what the nuances of the story are. How do you do that? Then comes the narration of the story, and then there's a group discussion, right? We find people who land up there in the SSB and they are not totally even prepared for the PPDT. Like, leave that alone. When the results come out and when the call letters are there, out of the 100 people that we would get here, at least 35 to 40 people land up here saying and come there with the parents, the बच्चे को या बालक को आता नहीं है English बुलवा दो. How can you really do it? In a matter of 2 or 3 weeks, nobody can be made to start speaking in English. So the students who are with us in the Cavalier, who have been studying NDA series with us, we start working on their English from day one that they land up here. That means they're working on their English for 4, 5, 6 months. And by the time they come to SSB, they are there. At least they can stand and speak and deliver something. Their legs don't shake. Their mouth doesn't run dry, right? So if that be the case, get down to your practicing of speaking in English. That is something you can't do from the cozy bedroom that you have, right? That is something that is practical experience. So that cannot be done online. Even if we were to give you something online, I cannot make you really practice. But when you're here, when you're doing an offline course, then you're with your friends. There's a batch of 30, 40 people. You're with them. There is a peer pressure. There's a peer learning. There are ways by which each one helps everybody. That is the kind of culture we have here. You start speaking in English in that manner, right? So when you are doing this PPDT practice, the actual practice to get the real feel of how to speak, or how to deliver your story or how to behave in the group discussion, that only can be done physically. It cannot be done by reading books, right? And a lot of people who come to us, sadly, the large number of people who come to us, they say, sir, I've attempted SSB once, twice, thrice, 5 times, 6 times. Have you taken any guidance? No, sir, I have not taken much. What was the problem that you had last SSB? Sir, I really did not fathom it out. Can you speak in English? No, sir, I've been to SSB 3, 4 times. I've always been screened out and still I cannot speak in English. Now that sounds terrible. Why? Because you keep procrastinating. I will speak in English. I want to speak in English. I will do something about it. That doesn't work. But when you are in an institute, when you're under tutelage, then you have no choice. You have to speak, right? So you can't learn swimming by watching a YouTube. You got to get into the water. So same way,
If you want to pick up your English, if you want to do something concrete, then you have to land up somewhere where you can collectively learn from people. So speaking in English is an important aspect, right? A lot of people take their NDA or CBS exam in Hindi. That's okay. No, nothing wrong with it. But then that Hindi is not going to help you in SSB because that is all in English. So the advantage which students of the Cavalier have here is that if they're doing a 6 months, 5 months, or a 3 months course, we are at it. We are with them. We ensure that they speak in English during this time. And once they do it, by the time they come to SSB, they become better. So the message that I want to give you is just do not sit back. Don't think that I've done something very great and I want to relax. If you have got good marks, get down to your SSB preparation straight away, right? And the first and foremost is getting to speak in English, right? And that also you can do only when you're collecting. A lot of people who come to us, they say, sir, I will wait for my call letter. Then just before the SSB, I will take coaching and then I will go there. No, what happens in this case? Remember, any education when given to you does not fall stale. Right? Education cannot go stale. So if you learn today, it is not going to go vanish somewhere after three weeks or 4 weeks or a month or 2 months. Right? The earlier you, the better it is. Those students who come to us at a good time, immediately after the exam is over, okay, we give them guidance for our three weeks package or a 2 week package. Then they go home. They work on whatever has been told to them. They work on the difficulties. They work on the problems that they have. And then before going for the actual SSB interview, we call them back, right? We call them back and we give them another 3-4 days of guidance and putting them back into the track. So what happens in this case? An early bird, a person who comes early, gets to know about the SSB in quick time from the people who really know what SSB is all about, right? Then they go home, they practice on it, work on their things that they need to work on, and then they come back here before the SSB. So the person is much better prepared. Consider this and consider the person who comes to us, okay, sir, I've landed up here today. Within 3 weeks or 3.5 weeks, my SSB is there. Or in some cases, they say within 10 days, our SSB is there. So whatever we teach them, obviously we point them out, okay, these are your difficulties. These are the areas that you need to work on. They do not even have the time to do it because they've just finished their SSB coaching in the last very attempt, just few days before the actual SSB. They have no time to prepare themselves or correct themselves thereafter. I find it to be pretty surprising that why should you be doing it? So those people who come early have an advantage. I'm not saying that those people who come late will be at a great disadvantage, but the ones who come early will have this advantage of having more time with them, right? And then you do not know your schedules. It is, there are so many improbabilities. Like today, in some state, there has been a curfew or whatever. People are not able to take this exam. Any imponderables can happen, and you keep waiting till the end. You don't have the time. Then eventually, you miss your chance, or you go there, you get screened out, and you are missed out. Your hard work of passing the NDA or CDS exam goes waste, and you get disheartened. So all those people who are getting good marks should go in for it straight away. Like here at the Cavalier, we have a team of officers, 6 to 7 officers who are going to be teaching you. Officers who have done their tenures in at least one SSB center or maybe more. They're officers who are lieutenant generals, commandants, they're brigadier level officers, they're colonels. All the senior officers are there who have firstly served in one or more SSB centers and who have been with us for the last 8-10 years. So not only are they assessors, now they've also become trainers. Now have putting their experience of SSB with them and then having this ability to teach. Now a good assessor may not be a good teacher. So here you have assessors who have been teaching for a very long period of time, they've become very good teachers also. So with this kind of atmosphere that you get here, this kind of interviewing officers, GTOs and psychologists you have here, you have a stronger chance of firstly getting the right kind of education. We get a number of people here who come after seeing various YouTubes and they're all muddled up. The message which is given to them is not very clear. They have some idea and it clogs their mind. It is totally cluttered. They don't know how to handle things.
and they have vague ideas. They do not know how to deal with things. So when they come to us, we have to first kind of, reboot them. We have to tell them, okay, whatever you've learned, whatever little thing that you've got your head messed up, and now we got to teach, go afresh with you. So it takes a lot of effort to reboot them or to get them into the mode of learning in the SSB in the right manner. So all those people who feel that they are done well should somehow try to get into the SSB very fast. So as I told you earlier, SSB is all about personality, right? And personality is something that a person may have or may not have the way that we are looking at. You heard of all those things which called officer-like qualities. It is not that the person will not have those qualities. Some people will have them a particular quality on a very higher note, something on. So what do we see? That we do not say everybody who's at 9, 10 level out of 10 in every little OLQ that we are talking of. It's like a music system, where the bass or the treble has to be adjusted. So when we see people, when we see students, there may be something on a very high level, something not on a very high level, something at an average level. So averages are drawn. So personality is all about the way you think, the way you talk, the way you stand, the way you perform, right? So working on that takes a little time. Okay, so there are small things that people, especially in our NDA batches and CTS batches, when they are there with us for 6 to 3 months or 5 months, we tell them that, look, start working on SSB right away. And one of the major things we tell them is to start improving the way of thinking, get the negativity out of your system so that it helps you, right? So how does that help? Now, what happens is that we tell them, okay, right, open a page or open something where you start doing small good things to others, right? One small good thing to be done to your peers, one small good thing to be done at home, one small good to be done. So we give them this one good deed a day. Now, when they start working on it, by the time they leave from here, they have so much material with them that they have done the small good thing for others. It not only improves their personality, it gives them a very big height. They start feeling good about themselves. And imagine if you've been doing small good things to others, are they not your TAT stories? What is TAT all about? TAT is not about the ability to write a story. We are not looking for J.K. Rowling's or Mukherjee Premchand or somebody who's good at writing stories. No. A person who's been given a picture to write a TAT story on, if the person is not an author, what would he do or she do? The inspiration to write a story will come from the experience that the person has. And that experience is contributing to the personality that the person will eventually develop, right? So the experiences that you are gathering gradually, slowly keep forming your personality. The kind of people you meet, the kind of environment you are in also shapes your personality. So when you write these stories, you reflect on what you've already done. And if you put that into a story, that becomes a realistic story. That story belongs to you. That story is something in which the nuances are known to you. That story is something which you don't have to search for words. They come to you automatically. So this aspect of doing one good deed a day is actually building up your number of stories that you can work on, right? Because when you are doing good things, when you're doing around things with each other, you are always trying to shape your personality. You're always striving to become better. So all those things become your TAT stories. So really don't have to look around if you've been doing these things. So as I told you, the students who come to us firstly for the NDA CDS exam, we always teach them in English. That is the first thing because it helps them to crack their SSB. Second is we start working on their personality from the time they are here. Third, we start telling them to become part of the group. In Cavalier, a large number of students stay back after the classes. They help each other. If there's somebody good in trigonometry, he even comes to the board and starts, solving problems for the people who are there around him. So there is a lot of peer learning that we encourage here, and that amounts to good results because everybody helps everybody, and then that becomes the part of personality. That becomes part of you. That you have the attitude of helping people. You have an attitude of doing things in the manner that you are part of the group. So army is not about one person. Army is all about group activity. The chief cannot go by himself and go and fight a war. He has to take the entire army. And if the army is not cohesive and the army is not made of people who are looking after each other, who are taking care of each other,
then the army will fail, right? So what happens is that when you are doing this peer learning in Cavalier here, after the classes, students stay back for 1, 2, 3 hours and they help teach each other. That shapes their personality. All of them learn from each other. Their results start becoming better. So that's the way we go about doing things with you, right? So when you come for SSB again, doing SSB online is very questionable, because if you have to do a group discussion, you got to do it in a manner that you can perform. You got to do your lecturate. It has to be in person. Your interview has to be in person. When you do your psychology, whether you write a TS story, good, bad, or ugly, nobody knows. You're making the same kind of mistakes. So when you're here, you show it to the psychologist. The psychologist works on you, tells you, no, this is not the way to write. This is the way to write. So when you're here in the institute, when when you are there with the people here who are guiding you constantly, then you are being corrected at every stage. There's a phrase that all of us have heard from childhood, that practice makes a person perfect, right? And all of us believe in that. I believe that it is not a very good proverb, or it's not a very good idiom. Practice. So we have coined a different. We say that perfect practice makes a person perfect. Now, perfect practice will only happen if you practice something. There is somebody who knows what to do. That person guides you, corrects you, and then you start revising your practice, and you keep improving on your practice on a daily basis. Vis-a-vis, you're practicing on the same way that you're repeating the same mistakes over and over again, and you practice something which is not good for you, and you perfected it so much that you'll end up into trouble. So learning is a dynamic thing. You do something, somebody corrects you, you start working on it, then you do something, again somebody corrects you. So the dynamic is that way, and that dynamics can only happen in person. If you have written a story and the psychologist works on it, tells you, no, this is the way you're supposed to deal with, you're learning. Then you produce something more. Again, he feels, no, this is still a little short. You have to do something. So it starts working that way. Same way, when you take a lecture here, you deliver once. In Cavalier, when we are taking lectures, now it is not that only one person takes lecture. The person who's there, he takes a lecture or she takes a lecture, the entire class comments on it. The entire class contributes to it, right? So everybody is attentive, everybody understands. So now, once that is done, then what happens? Then you are correcting yourself with the help of your friends, right? And then everybody is working. So now, if you practice lecture in a manner that I have told you, which can only be done in a group, then if you've done that once sincerely, let that lecture come to you in your SSB. You will be able to take it on very, very easily, right? So now that is the kind of thing that we are looking at, right? So don't just settle down for something which is halfway through, and don't wait till the last to come for a SSB, right? So do it at the earliest possible, do it in the sincere manner, do it in a manner that you're physically involved. And similarly, physical activity, all your GTO activities, especially outdoors, are meant to be done physically, experienced physically. And we at the Cavalier in Delhi have the biggest and the best training ground available. And there you will be doing your individual obstacle, PGT, HGT, command task. Everything is being going to be done with you practically. So once you've done that practically, it'll give you immense confidence. You'll be able to do things in the right manner, right? So as I was telling you, the NDA 1 2023 maths paper has already been done. It has been with us for some time. So here we have a team of our teachers here who have solved most of these questions. And they're going to tell you, and they're going to especially be working on the tricky part of the paper. And sir, how do you think was the paper? Was it tough, easy, or it was mediocre? What kind of a paper did we get today? So feedback what I got from the students is damn easy. वो कह रहे हैं कि उनके लिए क्वेश्चन पेपर इजी था, and most of them have done around 60 to 70 questions. That's good. Yes. That's good. Right. So we are very happy. There's the feedback which students have given us in the break is that they found it. Right. So Shekhar sir is here with you to begin with. Other teachers will also join in, and they're not going to tell you that what the answers are. They're not only going to tell you what the answers are. They're going to tell you how you could have done it. Right. So again, as I told you, at the end of it, you're very, very sure when you listen to this video that the answer key that has been given to you is a perfect answer key.
and you have your result of NDA CDS with you in your hands by this evening. So Shekhar sir, please come over and let's see how the maths paper can be done. Right. So you have given these students who are there with us in the Cavalier for a 6 months batch and a 3 months batch. I think you gave them almost daily papers. Yes, this time we have changed because of the 6 months program. हमारा 6 months का जो प्रोग्राम था वो इस बार लॉन्च हुआ था बिकॉज ऑफ दैट की बहुत ज्यादा गैप आ गया था. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज अभी लास्ट 2 टाइम से क्या हो रहा है कि एनडीए सीडीएस के पेपर साथ में होने लग गए. तो देयर इज अ सफिशिएंट गैप. तो वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑफ 6 months. तो 6 months का प्रोग्राम को हम लोगों ने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए ही लॉन्च किया था जो अपने आप को मैथ्स में उतना बढ़िया नहीं समझते. एंड देन स्टिल वी हैव गॉट लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनको ये कंप्लेन रहता है कि घर में बैठ के पढ़ाई होती नहीं है. तो अगर हम इंस्टीट्यूट के साथ में एनरोल रहेंगे तो कम से कम डेली बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस होगी. तो इन सबको नजर में रखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम बनाया था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इनको क्लास के अलावा डेली बेसिस पे मैथ्स का पेपर हो. तो पेपर जो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते थे वो क्लास के लास्ट 15 to 20 मिनट्स में कंडक्ट करते थे. तो उनको डेली इवैल्यूएटेड किया जाता था कि आज के डे पे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. और उसी का नतीजा है कि आज जब अभी मैंने बच्चों को फीडबैक के लिए बोला था 4-5 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे लास्ट के समय में एग्जाम से 1 month पहले ही हमने ये फुल लेंथ प्रोग्राम स्टार्ट कर ही दिया था क्योंकि उस समय थोड़ा कोर्स रहता था. लेकिन हमने सोचा कि चलो बच्चों को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो मंथ पहले हमारा वैसे तो 15 डेज पहले होता है लेकिन हमने 1 month पहले ही टोटल 5 मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे कंडक्ट किए थे. और बच्चों के फीडबैक्स में ये चीज साफ आ रही है कि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं यूजुअली सब आए हुए हैं ये उसके जैसे आ रहे हैं. सो सर आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम. स्टूडेंट्स विल बी वेरी एंग्शियस आफ्टर. ठीक है. ओके देन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ये पूरा पेपर तो अभी रेडी नहीं है बिकॉज हमें पेपर थोड़ा सा लेट मिला था. ये बच्चे मुझे ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा टाइम लगा रहे थे. बट स्टिल वी हैव डन 60 to 70% ऑफ द पेपर. इनका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है यहाँ पे और एक एक करके उनके आंसर्स देते चले जाऊंगा. मैं साइड बाय साइड उनको थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते रह जाएंगे. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं थोड़ा सा स्किप भी करूंगा बिकॉज दे आर वेरी डैम इजी. और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़ा करने वाले होंगे जो तुम्हें भी लग रहा हो कि सर ऐसा तो क्या है. और फिर क्वेश्चन अभी है जो मुझे भी करना है. मैं भी कर रहा था बीच में अभी आ गया हूँ. तो बाय इवनिंग यू विल बी गेटिंग द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. अभी फिलहाल हमने 70% पेपर कर लिया है. तो उनके आंसर्स प्लस जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट और नेचर है उनके भी डिस्कशन हम लोग करते हुए जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सेट बी है. ये सेट बी है मेरे पास में तो तुम अपने आप अकॉर्डिंगली देख लेना. सेट बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी के ऊपर में पहले बात करेंगे. यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है. एफ को log x बता के इंक्रीजिंग बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to infinity. तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जब हम लोग को देखना होता है तो सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है वो यही होता है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे. log x का डेरिवेटिव सबको मालूम है 1/x. और उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था कि इंटरवल अगर गिवन होता है तो इंटरवल के अंदर से कोई भी एक वैल्यू पिक करना. अब 0 को नहीं ले सकते, स्टार्ट कर दो 1 से. अब तुम यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यू तो ही लोगे और f' अगर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट इज एन इंक्रीज. उसके बाद वाले में उसको थोड़ा खेल कर दिया है. e की पावर x अगर लिखा होता सिर्फ तब तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग मान लेते, लेकिन साथ में उसने क्या किया e की पावर 1/x लगा दिया. अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि थोड़ी वैल्यू पुटिंग चल जाएगी. तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया. e की पावर x सबसे प्रेजेंट वाला होता है, e की पावर x ही आएगा. अच्छा e की पावर 1/x करोगे तो e की पावर 1/x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस का 1/x². तो इन टोटल जो तुम्हारा आंसर आया अभी ये आ गया है कुछ ऐसा. अब इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से स्टार्ट कर दो. एक चीज याद रखना e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.23 के लगभग होती है. तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो ये तो हो गया e, यहाँ पे हो गया e/1 तो ये 0 टच कर जा रहा है. उसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 को तो उसने इंक्लूड किया भी नहीं. तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे स्टार्ट कर दो. तो e² लिखोगे तो e² लिखोगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये 2.23 का स्क्वायर हो गया मतलब 4.84 टच कर जाएगा. ये 1/2 है, ये 1/4 है, मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती. अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कह रहा हूं कि डिक्रीजिंग है मतलब वो चाह रहा है कि नेगेटिव हो जाए तो मुझे नहीं लगता है डिक्रीजिंग होगा. तो इसका जो सही आंसर निकल के आया है वो आया है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन. ए फर्स्ट ऑप्शन ओनली आएगा इसका आंसर. उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन था हमारा. सेकंड क्वेश्चन कैसे आते हैं?
ओके, सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट बुकलेट का है, मैं इवन क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूँ। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है तुम्हें किसके साथ में, cos स्क्वायर x के साथ में। तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव सबको मालूम है 2 sin x cos x, और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है -2 cos x sin x। साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, वैसे तो हमने किया नहीं था लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। y = x और y = mx, तो इन दोनों लाइंस को तुम्हें इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना है कि x = 2 = 3 पे ये क्या होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेशन से, तो इसका आंसर आया था फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज -1/2। तो मैं उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, -1/2। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा cos x डिग्री, ये इसको जीरो मत समझ लेना, ये किसी बच्चे ने ये डाला हुआ है, गलत हो जाएगा। ये x डिग्री का मतलब होता है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो रेडियन वाला काम स्टार्ट कर दो, 180 डिग्री = पाई रेडियन, 1 डिग्री = पाई/180 रेडियन, और यहाँ पे है x डिग्री, तो x डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई x डिग्री/180। इसका मतलब है तुम्हें cos x के साथ में जो वैल्यू दिख रही है वो कौन सी है, पाई x डिग्री/180, जिसका डेरिवेटिव करना है। अब cos x का डेरिवेटिव सबको मालूम है, माइनस cos x cot x होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास में कांस्टेंट भी है, तो इस कांस्टेंट को आगे फेंक दो, माइनस का साइन आ गया, जो बच गया उसको cos x और cot के साथ लगा दो, b इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में जाने के लिए हम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर से नीचे की तरफ। पांचवा क्वेश्चन था अपना, क्या था आधा भाई, हाँ, सॉल्यूशन बताना। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, तुम यहाँ पे ऑप्शंस की मदद लो, मैं भी यही कर रहा था, मैं तो सॉल्व कर नहीं रहा था, बहुत मेहनत की। अभी आने से जस्ट 2 सेकंड पहले मुझे ये आंसर दिखा कि भैया ये होगा। कैसे होगा एक बार दिखा देता हूँ। इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करते समय 1/2 को साइड कर लो, x² - 2x, x² - 2 का हो जाएगा 2x। अच्छा, dy/dx का होल स्क्वायर करना है, कर देते हैं -x। अच्छा, dy/dx तुमने अभी जस्ट लिखा हुआ है, तो इसको सिर्फ लिखना है, स्क्वायर नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, अगर dy/dx लिख रहे हैं तो ये सिर्फ बचेगा तुम्हारा हाफ × 2x, मतलब x ही रहेगा। अब इसको काटेंगे जरा, अरे जीरो आने लगे, ये x² हो गया, x², अच्छा एक x और है ना, तो x², हाँ, ये कट के तुम्हारा 0 बन जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। FOG का क्वेश्चन है, जाने से एक दिन पहले ही किया था, मैंने बता दिया था कि रैंडम कर लो, तो लोग तैयार नहीं हो रहे थे कि सर लास्ट मोमेंट में कुछ मत पढ़ाओ, मैंने बोला था पढ़ लो इसको। तो FOG1 तो चिपका के लिखा है, इसका मतलब है FOGX1 पे देखना है। तो पहले FOGX निकाल लो, ये निकाला हुआ है, अच्छा किया किसी बच्चे ने, चलो बता देता हूं कभी। तो f(2x), बहुत बढ़िया किया किसी बच्चे ने, इसका भी सेंड किया, उसने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। हां, तो यही देख लो ना, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये 3 आ रहा है, हां, क्या किया उसने, 2x - 3 का होल स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, 2x - 3 का होल स्क्वायर +2, खोलते हुए गया, लास्ट स्टेप में 1 डाल दिया, आंसर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। रेंज, ये भी वही टॉपिक है जो मैंने बोला था कि करके चले जाओ, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। रेंज डोमेन के लिए मैंने तुमको एक चीज सिर्फ समझाई थी कि भैया ऑप्शन की मदद से डोमेन में तुम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल सकते थे, उसने इसलिए पहले ही लिख दिया कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तुमको रेंज निकालना है ना, तो तुम ये सोचो, सिर्फ इस बात पे फिल्टर है कि 0 आएगा या नहीं, क्योंकि 1 तो यहाँ पे अगर तुम 0 डाल दो, तो सोच के देखो, अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो 0 + mod of 0, स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तुम्हारा कट हो गया है, ये ऑप्शन भी कट करना पड़ेगा। इन दोनों में से फिल्टर है। अब तुमको ये सोचना है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। अब ये सबसे मेन फिल्टर एरिया है, तो सोचो तुम एक नेगेटिव वैल्यू लेके -1 डालो, -1 डाला तो उसका जब मॉडुलस लोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है, खत्म हो गई बात, नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, तो 0 से इंफिनिटी, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, भैया फार्मूला ही दे दिया, तो sin थीटा पुट कर दो x के जगह में, क्या बनेगा, sin थीटा ब्रैकेट के अंदर में, और फार्मूला तो दिख ही गया होगा, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं इसको, 4 sin स्क्वायर थीटा -3, ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे बन जाएगा 4 sin थीटा -3 sin थीटा। फार्मूला अच्छे से याद किए होंगे तो ये बात मालूम होगी कि ये sin 3 थीटा का फार्मूला नहीं होता, sin 3 थीटा का फार्मूला है 3 sin थीटा -4 sin थीटा होता है, तो ये -sin 3 थीटा का है। बढ़िया किया बच्चे ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए वाला मॉडुलस वाले क्वेश्चन का बताया था तुम लोगों को। तुमको जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, LHL और RHL को जरूर चेक करना होता है। LHL का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो 5 से बड़ी है, नहीं, LHL का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो क्या हुआ भाई, LHL का मतलब हो गया एक ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो 5 से छोटी है, और यहाँ डाल दो, 5 से छोटी वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या लिख के निकालोगे, सोचो, नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू मतलब 5 - 6, इसको काटोगे ये 1 आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे 5 से बड़ी,
5 से बड़ी अगर वैल्यू लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर 5 - x था, नीचे आ गया x - 5। इस बार आंसर हो गया कट के -1। LHL और RHL तुम्हारा अलग अलग वैल्यू ले रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला एल हॉस्पिटल रूल बता के तो भेजा था तुम लोगों को। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू डाल के चेक कर लो। लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही डाला साला 0/0 फॉर्म में चला गया, डिटरमिनेंट फॉर्म है। मारो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का 9x की पावर में 1, नीचे वाले का 3x², लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 डाल के यहां पे सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, उड़ा दो इसको, 9/3, बिल्कुल सही आंसर। हां, उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सड़ा हुआ क्वेश्चन, उसको मैं करूंगा तो ही बताऊंगा, बस मुझे टाइम दो, उसको सॉल्व करके बताऊंगा। यहां पे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे एक लाइन से। क्या हो गया बच्चों, 8, 9, 10, आगे बढ़ते जाओ। 11, इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। ये क्वेश्चन असाइनमेंट बुकलेट का है 14, 15 असाइनमेंट बुकलेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 30, मुझे याद भी है। उसमें ऑर्डर निकालना था, यहाँ पे डिग्री ऑर्डर दोनों पूछा है। सीधी सी बात है, ऑर्डर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है c, तो इसका तुमको ऑर्डर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, 1 होगा। डिग्री के लिए तुम उसको थोड़ा सॉल्व करके देख लो, सॉल्व कैसे करता है ये बता देता हूँ, देखो। तो और जो भी हाँ, इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसका डेरिवेटिव मान लो है, इसका डेरिवेटिव मान लो क्या बन जाएगा, 2y dy/dx, 2y dy/dx इज इक्वल टू 2c। चाहो तो सीधा पुट कर लो या फिर 2 कट करके c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। जैसे ही c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा y² इक्वल टू 2y dy/dx इनटू x dx, और यहाँ डालोगे तो ये बन जाएगा 2y dy/dx, लेकिन साथ में एक रूट वाला टर्म आ रहा है। ध्यान रखना, रूट वाला टर्म अगर आ रहा है तो हम लोग को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, dy/dx का होल स्क्वायर और ये dy/dx एक और आ जाएगा, तो dy/dx का स्क्वायर और ये रूट घटेगा तो 3 बन गया। डिग्री क्या बन गया, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो आंसर बना देगा 3। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, वो लंबा क्वेश्चन जाएगा, सॉल्व करना बाकी है अभी मेरा। नहीं, ये कर लेंगे शायद। अबे इसमें तो f0 डाल ही दो ना सीधा, 0 क्या बनेगा, 0 डाल दो, पहला वाला सॉल्व हो जाएगा। 0 देखो 0 1 होता है, ये 0 हो गया 1 हो गया, यहाँ 0 0 0 आ गया, ये 0 0 1 हो गया। अरे इसको सोचने की जरूरत नहीं, इसका आंसर भी आएगा क्योंकि f0 पे तो वो तुम्हारा एक रो को पूरा 0 बनाना है। fx/x निकालने के लिए तुमको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैंने किया नहीं था, टाइम का थोड़ा किल्लत था इसलिए नहीं किया, इसलिए उसको करके मैं बता दूंगा इसका आंसर सही से क्या आने वाला है। वो मैंने अभी नोट डाउन यहाँ पे नहीं किया होगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा थोड़ा। उसके बाद ये गया तुम्हारा 19 20, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आते हैं क्या, इसी का पार्ट है fx/x²। उसके बाद ये आते हैं 19 और 20 में, इसमें तुमको अभी वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा क्या है। वैसे इतना क्लियर हो रहा है, π² है तो पॉजिटिव ही बनेगा, और cos में नेगेटिव वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो f π/2 की वैल्यू डाल के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं इसके बाद कंफर्म करके बता दूंगा क्या है। आगे बढ़ते हैं, ये सब थोड़े से लंबे वाले क्वेश्चन है। इधर सीधा आ जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 25 और 26। इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं, x0 y0, ये सब दिया हुआ है तुम्हें, x0 y0 x + y = 1, 6x + y = 3। तो x0 y0 का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बना, इसको नाम दे दो x = 0 का, इसको नाम दे दो y = 0 का, इसको नाम दे दो x + y = 1 का, और इसको नाम दे दो 6x + y = 3 का। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि तुम्हारा ये वाला जो है ये 0 0 हो गया। इसी तरह से बाकी चारों कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल सकते हो, जैसे ये वाला बहुत इजी है, x + y = 1 और y = 0, मतलब ये हो जाएगा 1, 0। ये x = 0, 6x + y = 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 3। बच गया, इन दोनों को सॉल्व करके d निकाल लेते हैं, 6x + y = 3 और एक हो गया x + y = 1, माइनस मार देगा एक बार, हां, तो ये हो गया 5x = 2, x की वैल्यू आ गई 2/5, मतलब इस डी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया है तुम्हारे पास में 2/5। इसको उठा के फर्स्ट सेकंड वाले में चलो डाल दो, x + 2/5 = 1, x की वैल्यू हो गई 1 - 2/5, मतलब ये हो गया 3/5। अब तुमको क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है वो डायगोनल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब बीडी की बात कर रहा है, और यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म तुम लगा सकते हो आराम से। क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1, और ये 5 उड़ जाएगा, 2y = 3x है क्या किसी ऑप्शन में, अरे है ना, सी 3x - 2y = 0। आई डोंट थिंक इसको बताने की और जरूरत है, यहाँ 0 3 है 1 0 है, तुम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्या है, अरे भैया ये आ गया एलिप्स की प्रॉपर्टी के ऊपर में क्वेश्चन है। एलिप्स की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, पहले वो याद कर लो कि अगर एलिप्स के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट रखते हो और उनकी दूरी नापते हो दोनों फोकस से और बाद में उसको ऐड कर देते हो, तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल होता है 2a। लेकिन उसके लिए तुम्हारा एलिप्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ मत करो, 1 तो पहले ही इसको नीचे फेंक के बना दो 1/4 इक्वल्स टू 1। अब PE प्लस PF 2A के बराबर होता है, A क्या है तुम्हारा 1, तो आंसर 2 बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मस्ती उसने कर दिया है, वो चाहता है कि तुमको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता है। आधे बच्चों को ये तो पता है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो होती है वो एलिप्स के केस में 2b² होती है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम का जो एंड पॉइंट होता है वो आज से जान के रखो क्या होता है, ताकि तुम इसको आराम से चेक कर सको। मैंने चेक किया था, चारों पॉइंट्स तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे। देखो ये होता है ना एलिप्स द्वारा। अबे यार ये फालतू बोर्ड है, तो मजा नहीं आ रहा है, मतलब हाथ थोड़ा सा स्क्रैच मारना पड़ रहा है, तो जस्ट ऑपरेट विद अस। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, ये आ गया तुम्हारा एलिप्स है ऐसा करके, ठीक है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है L L', यहां से पकड़ेंगे AE, B²/A, इसी AE को हम लोग CD बोलते हैं, और C इस केस में होता है √A² - B²। यहां से लिखेंगे तो यही बन जाएगा AE, -B²/A², ठीक है ना भाई। हाँ चलो, अब यहां देखेंगे तो -AE, B²/A, और सबसे लास्ट वाले में -AE, -B²/A। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि AE को हम लोग CD लिख सकते हैं, तो CC लगाते हैं। तो अब अगर मैं C की वैल्यू निकालता हूं इस क्वेश्चन के लिए और B²/A निकालता हूं, तो B²/A निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम सोचो कि ये पूरा ही तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम है, ये पूरा ही तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम है, तो B²/A की जो वैल्यू आ रही है वो 1/4 आ रही है, और C अगर तुम कैलकुलेट कर लिए होगे तो वो √3/2 आ रहा होगा, ठीक है ना। यहां से हो गया √3/2 1/4, यहां से एक पॉइंट हो जाएगा √3/2, 0, यहां से आ जाएगा √3/2, -1/4, -√3/2, 1/4, और यहां से जाओगे तो -√3/2, -1/4, और एक पॉइंट और ले लेना, ये -√3/2, 0। आई थिंक ये जितने भी ऑप्शन में दिए हुए ना, ये सारे के सारे अवेलेबल है। कहां गया? हाँ, पहला वाला है, अरे पहला बोल रहे हैं, अरे हाँ, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इसका आंसर तुम्हारा कौन सा होगा खुद ही समझ गए होंगे अभी। ये तुम्हारा बना देगा ऑप्शन को, कहां पे है, ये डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कहां तक गए, 28। हाँ, ये करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, सर्कल वाला है, तो एरिया का क्वेश्चन होता है, पहले करना पड़ेगा इसको, सर्कल वाला वैसे भी एरिया वाले क्वेश्चन है। अबे मीडियन तुम लोग निकाल लेना, मेरे ख्याल से सही निकाला है बच्चे ने। मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोग को, L + n/2 वाला है, पहले इसका फॉर्म कर लेना, मीडियन क्लास फाइंड आउट करके आंसर को तुम फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, लेकिन ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन मीडियन की बात कर रहा है तो तुमको सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। जरा छकाने के लिए क्या किया, पहला दो को तो असेंडिंग में रखा, बाकी सब डूबा हुआ रख दिया, तो पहले ठीक करो। ये बच्चे ने सही किया, इसको पहले कर लेते हैं। हां, इस बच्चे ने बढ़िया लगाया। -1 1 3 4 एक बार चेक कर लेता हूं, 8 9 11 12 17 19 11 12 17 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने भी काउंट किया था। M बोलता है मीडियन ऑफ फर्स्ट 5, M बोलता है मीडियन ऑफ फर्स्ट 5, ये तुम्हारे फर्स्ट 5 है, सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गया 3, ठीक है, बहुत बढ़िया, M3 है। पीछे से मतलब पीछे से 5, लास्ट 5 कौन से है, ये रहा लास्ट 5, इसका मीडियन कितना है, नहीं यहां से लास्ट 5 ये है, यहां से यहां तक 9 11 12 17 12 होगा, n का वैल्यू हो गया 12। तुमको क्या पूछा है, 4m - n, अबे 0 हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कर तो रहा था, लेकिन इसको मैं अंजाम तक पहुंचा नहीं पाया। एक बार तुम लोग के साथ करके देखो, क्या ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, छोड़ो, इसका कर तो रहा था मैं। देखो हम लोग को क्या पता है, इसके बीच में रिलेशन होता है मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, तो मीन को उसने ले लिया p से, ओहो मीन को ले लिया p 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, की एक रिलेशन है ऑलरेडी, और एक ये वाला रिलेशन है, तो तुम पहले ये सिलेक्ट कर लोगे तुमको किसके टर्म्स में रखना है। मैंने क्या किया था, पूरे क्वेश्चन को r के टर्म्स में कर लिया था, करीब करीब 1/7 या 2/9 था, वो मैं एक बार क्लियर करके तुम लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इन्हीं को यहां पे पुट करके आंसर तक पहुंचना है। उसके बाद अपना क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पे आ रहे हैं इस तरह के ज्योमेट्रिक मीन निकालने के क्वेश्चन में तुमको इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है, तो उससे तुमको g मिल जाएगा 1 + 2 log base 2g, ये सॉल्व करके तुमको पता चलेगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आई वाज जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, का टाइम हो गया तुम्हारा। उसके बाद hn का भी वही है, hn के फॉर्मूले में क्या होने वाला है तुम्हारा, कि सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है और अपॉन में रख देना है, उससे भी एक आंसर तुमको मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल। उसके बाद ये मीडियन वाला क्वेश्चन सब वही है। अच्छा, ये आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तुमको केसेस बना के करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं हल्का सा क्वेश्चन में हुआ क्या है। तुम्हारे पास में 2 बैग है, पहले बैग के अंदर में 3 व्हाइट है 2 ब्लैक बॉल, और दूसरे बैग के अंदर में 2 व्हाइट है 3 ब्लैक बॉल। अब तुमको क्या करना है,
दो बॉल निकालने हैं फर्स्ट बैग से। अभी देखो दो बॉल निकालने हैं तो यहाँ पे तुमको केसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, और फिर ये दो बॉल को निकाल के तुम क्या कर रहे हो, सेकंड बैग में डाल रहे हो, और बाद में एक बॉल तुमने सेकंड बैग से निकालना है जो कि व्हाइट कलर का होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन असाइनमेंट बुकलेट में था। ओनली डिफरेंस वाज कि उस समय एक बॉल निकाला जा रहा था तो हमारे पास में एक ही केस था, यहाँ पे दो बॉल निकालने। तो दो बॉल के केसेस हम बना लेंगे। जैसे मान लो अगर हमें दो बॉल निकालने हैं, यहाँ पे मैं बैग थोड़ा सा बना देता हूं, पहला बैग और ये ले लो दूसरा बैग। तो इसके अंदर में 3 व्हाइट है, 2 ब्लैक है, इसके अंदर में 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक है। तो इसके अंदर से क्या क्या हो सकता है, एक ब्लैक एक व्हाइट, दोनों ब्लैक या फिर दोनों व्हाइट। अब इसको जरा सा हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में केसेस बनाएंगे। तो एक ब्लैक बॉल कितने में से निकल रहा है, 3 में से, और टोटल क्या है 5 है। तो यहाँ पे आ गया 3/5, ये हो गया 2/5। इसका बन जाएगा 3/5 इंटू, रिप्लेसमेंट की बात कही नहीं है तो जैसा 2/5 इंटू 2/5, और ये 3/5 इंटू 3/5। अब इसके बाद फिर सेकंड बैग के लिए देखेंगे। सेकंड बैग में जब तुमने बॉल डाला तो वहां से व्हाइट निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ बन के निकल जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 dice are thrown, what is the probability? ये तो केसेस लिख के देखने पड़ेंगे, पता चल जाएगा। इस बच्चे ने किया है 1/27 निकाला है आंसर, बेस थ्योरम का क्वेश्चन उसने बना दिया है इसको, तो उससे वो बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वाला क्लास में डिस्कस किया हुआ। इसका आंसर लिखने से गलत डाला हुआ है क्योंकि दिसंबर के मंथ में 5 संडेज चाहिए होते हैं। तो दिसंबर के मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं। अगर हम लोग 5 संडेज ढूंढ रहे हैं तो इतना तो पहले देख लें कि 1 से 28 के अंदर में 4 संडे तो वैसे ही आ गए। अब तुमको क्या देखना है कि पांचवा दिन भी संडे हो, तो 28 के बाद जो 3 डेज बचेंगे वो है 29, 30 एंड 31। तो इसके अंदर में तुम संडे की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो। तो पहला केस संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करते करते 7 केस बनेंगे। उसमें से संडे वाला केस 3 जगह आएगा, एक ये वाला में, एक वहां नीचे फ्राइडे सैटरडे संडे, और एक सैटरडे संडे मंडे। तो आंसर इसका होगा 3/7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक नेचुरल नंबर को चूज करना है। इसका आंसर मैंने ढूंढ के निकाला था, उससे कुछ केसेस मुझे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ा था। तो 47 केसेस निकले थे। मतलब तुमको पहले 50 नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो 50 में पहले बात तो 50 कर लो नीचे, क्योंकि 50 नेचुरल नंबर्स में से ही लेना है। अच्छा, तुमको पहले 1 डालना पड़ेगा। 1 डालने से क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 50। तो वो तो ग्रेटर देन 50 है, तो 1 तो हम ले ही नहीं सकते। 2 डालेंगे तो 2 प्लस कितना बन गया, ये देखना 2 + 25। अब यहां से तुम्हारा 47 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। पीछे की तरफ चले एक बार, 50 + 50/50, ये भी ज्यादा हो गया। अब अगर मैं लेता हूं 49 + 50/49, ये भी 1 से ज्यादा होगा। इसको छोड़ के मैं 3 केसेस हैं जो हट जा रहे हैं, और बाकी सब केसेस में वो क्या करेगा, लेस देन 50 वैल्यू ही देगा। तो इसका आंसर हो गया 47/50। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 41 क्या है, इसके अंदर में कितने रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके केसेस पहले बना लो। सबसे पहले तो x - 4 + x - 7 को 15 के इक्वल करना है। तो x - 4 + x - 7 15 के इक्वल होने के लिए तुम 15 के पॉसिबल सम सोच के देख लो क्या क्या हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मूव करो। जैसे 15 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, 0 15 हो सकता है, उसके बाद 1 14 हो सकता है, 2 13 हो सकता है, 4 11 हो सकता है, 5 10 हो सकता है, 6 9 हो सकता है, 7 8 हो सकता है। लेकिन इसमें से कुछ रिपीट भी करेंगे। आई थिंक इसके बाद जो भी तुम लिखोगे रिपीट करेगा। 0 वाले केस को हम हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, और उसके बाद तुम्हारे बचते हैं 5 6 केसेस। अब इसमें से हमें कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें रियल वैल्यूज पे काम करना है। तो हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूज तुमको रियल वैल्यूज ना दे, तो वो देख के जो मैंने इसका आंसर अभी निकाला नहीं है, इसको सॉल्व करके मैं देखूंगा कितना निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन तुम ऑप्शन से कर लो। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो किसी वैल्यू की वजह से 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बी, ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को रियल नंबर में से उन कैटेगरी को हटाना पड़ेगा जो -5/3 कंटेन करते हैं। तो हमारे पास -5/3 वाले दो ऑप्शन है। मतलब ए को हम लोग कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, बी को सारे रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन -5/3 नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि अल्फा + बीटा = 0, मतलब ऐसे दो रूट्स
जिनका सम 0 हो जाए। तो ऐसे दो रूट्स जिनका सम 0 हो जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें से एक रूट दूसरे का नेगेटिव हो, मतलब वैल्यू वाइज दे आर इक्वल बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट काफी होगा इसको प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसका आंसर मार दिया था फर्स्ट ऑप्शन 1 ऑनली। उसके बाद मूव करते हैं 43 का यही आएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 44। ये थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा क्योंकि 6 टर्म है, फॉर्मूला तो मुझे मालूम है बट तो थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कहां पे पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो tr प्लस 6 टर्म को उसने बोल दिया तो t5 प्लस 1। फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ncr मतलब 8c5, उसके बाद x के पावर में -8/3 है और इसके पावर में आएगा तुम्हारा 5 8 - 5 दैट इज 3। उसके बाद नेक्स्ट वाले में x² log x बेस 10 के पावर में 5। इसको सॉल्व करके तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगला वाला ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले आया था तो इसका पेयरिंग होके ये फॉर्मूला बन जा रहा था, इसका फॉर्मूला बन नहीं रहा। तो हम लोग को सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इनको मिक्स कर देना पड़ेगा। 3x - y into x + 3y whole raised to the power of 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने टर्म्स बनते हैं। तो पहला बन गया 3x², फिर बन गया 9xy, फिर आ गया -xy और फिर आ गया -3y² और फिर पूरे के पावर में है 4। तो टोटल ये बन गया 3 टर्म्स पे रिड्यूस हो रहा है। देखो 3x² + 8xy - 3y² पूरे के पावर में 4। इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला होता है n + r - 1 cr - 1। तो n हमारा है 4, ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 टर्म्स है, 4 + 3 - 1 c3 - 1। तो टोटल ये कितना बन गया 6c2। 6c2 को सॉल्व करने पे 15 आ जाएगा, खत्म है कहानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। उसने बोला है PQRS are in AP such that P + S is 8 QR is 15। गेस करने की अगर कोशिश करो तो ये क्वेश्चन गेसिंग से हो तो सकता है। मैंने इसको गेस किया था 1357, आई थिंक 1357 AP भी कंस्टिट्यूट कर दे रहा है। सोच के देखो 1357, उसमें से ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। P और S का जो सम देखेंगे तो वो 8 बन रहा है, Q और R का प्रोडक्ट है 15। कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का क्या चाहिए अपने को, डिफरेंस चाहिए ना। तो 7 - 1 कर लो, 6 आ रहा है, खत्म है कहानी। अच्छा ये तो करके वैल्यूज लेके कर लेना, इससे पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, अपना क्वेश्चन है, हाँ ये शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया हुआ है, इसमें मैंने वैल्यू पुटिंग की थी। n पैरेलल लाइंस को अगर n पैरेलल लाइंस कट करते हैं तो टोटल पैरेललोग्राम्स फॉर्म होते हैं MC2 * NC। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने बता दिया, तुमको उल्टा काम करवा दिया। उसने तुमको ये बोल दिया कि तुम्हारे टोटल पैरेललोग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं 60। तो तुमको यहाँ पे अपना m और n का वैल्यू को क्लियर करना है। तो मैंने उसको चेक किया था, तो 4 और 3 5 और 4 पे बन रहा था। तो n को अगर मैं 5 और n को 4 दे दूं तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है और उसने m + n मांगा है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 48 का डी ऑप्शन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये अभी मैंने सॉल्व करके देख लिया था, ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम लोगों को बस फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या करते हैं। परम्यूटेशन के टोटल फैक्टोरियल, इस बच्चे ने अच्छा किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या बना है इसका, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और y की वैल्यू है 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 बार 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई होता है, क्लास में बताया हुआ है जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। परम्यूटेशन वर्ड के अंदर में t 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसमें o 2 बार हो रहा है, n 2 बार हो रहा है और एक और i भी 2 बार हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो सीधी सी बात है कि मेरा जो x है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई। इस बच्चे ने गलत मार दिया है, उसने किया तो सारा मेहनत सही है लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया है। x की वैल्यू तब मिलेगी जब इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल नलीफाई करने के लिए इसका आंसर सी होगा। अच्छा ये क्वेश्चन असाइनमेंट बुकलेट का है, बस उसमें एक वर्ड जो एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया हुआ है परसेंटेज। तो पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे 5 डिजिट के, वो नंबर्स जिनको तुम बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 5। डिजिट प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमने किए थे क्लास के अंदर में, तो अभी इसको ध्यान रखना। 0 1 2 4 5 को लेके टोटल नंबर्स कितने बना सकते हो वो आ जाएगा नीचे। परसेंटेज के क्वेश्चन में इनटू 100 तुमको करना ही पड़ेगा। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि 0 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो इसमें से कोई भी 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक नंबर कट कर दिया, 0 को लेते हो अगला 4, फिर एक और कट कर दो, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, करो मल्टीप्लाई सबको 60 96। इतने नंबर तुम्हारे बन सकते हैं इनको लेके 5 डिजिट के विदाउट रिपीटेशन। उसमें से उसने क्या बोला है कि कितने नंबर 50,000 से ग्रेटर होने चाहिए। 50,000 से ग्रेटर जहां उसने बोला तो हमारा जो 10,000 केस उसने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भैया यहाँ पे तो तुमको 5 को छोड़ के कुछ डालना अलाउड ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दो चुपचाप 1। अब फिर से एक बार 0 1 2
4 5 लिख के इसमें से 5 को कट कर दो, क्योंकि आपने 5 को तो यूज कर लिया है। अच्छा, अगले प्लेस के लिए इनमें से कोई भी आ सकता है, तो 4 0 को उड़ा दो, फिर 3 फिर 2 फिर 1 करो मल्टीप्लाई, 24 बन रहा है, तो 24/25% इसका आंसर होगा। बढ़िया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 51 में क्या बोल रहा है? अरे भैया ये तो शॉर्टकट का क्वेश्चन है। मैंने इसमें तुम्हें क्या बताया था कि अगर एक रूट है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो दूसरा रूट उसका हमेशा कंजुगेट आएगा, दैट इज a माइनस आयोटा b। तो उसने जब स्टार्ट किया तो तुमको उसने एक रूट पकड़ा दिया 2 माइनस आयोटा रूट 3, तो ऑफ कोर्स ही बात है जो दूसरा रूट होगा वो 2 प्लस रूट 3 आयोटा होगा। इन दोनों को अपना अल्फा बीटा बना के इक्वेशन में डालो इसको आराम से, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x। इन दोनों रूट को अगर मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं तो प्लस रूट 3 आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 1। तो a की वैल्यू हो गई -4, b की वैल्यू हो गई 1, a -4 b 1। अबे ये तो गलत कर दिया तुमने, a -4 है और b 1 है, तो इसका आंसर b आएगा, 51 का b होगा। 51 का ये क्या डाला हुआ है, -a प्लस b है ना, हाँ, तो -1 x। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, 2 माइनस रूट 3 आयोटा और 2 प्लस रूट 3 आयोटा दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस रूट 3 आयोटा प्लस रूट 3 आयोटा कैंसिल हो गया, 4x, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया। अब ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई -4, b की 1 -3 होगा, चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन को। ठीक है, चलो आर्गुमेंट निकालने का क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। क्या करोगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको रेशनलाइज बहुत बढ़िया किया है, देखो ये कर लेने के बाद रेशनलाइज कैसे करते हैं मालूम है ना, इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बड़ी मेहनत से बच्चे ने यहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दिया। इसके बाद उसको आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, याद करो मैंने बताया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v बाई a करोगे। इसके लिए पहले क्या करो, cos थीटा की वैल्यू लिख लो। cos थीटा होता है a बाई r, जो कि यहां पे बनेगा -1/2। देखो एक बार चेक करो क्योंकि इसका जब तुम r निकालेगा तो 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया, तो -1/2 cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, sin थीटा पॉजिटिव आ रहा है। cos थीटा नेगेटिव और sin थीटा पॉजिटिव होने पर हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव वाले से एंगल निकाल लेंगे, π/3 आएगा, और cos थीटा नेगेटिव है तो इसको π से माइनस कर देंगे, तो π माइनस π/3 कितना हो गया तुम्हारा 2π/3, इसका आंसर 2π/3 होगा। नेक्स्ट वाले को तो वैल्यू पुटिंग से कर सकता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है +2 का। तुम a b यहां पे जो भी दिया हुआ है a b c r in ap है ना, तो यहाँ पे परिवर्तन स्प्लिट है, यहाँ पे c यहाँ पे होगा, यहाँ पे c होना चाहिए। तो इसके अंदर में तुम abc को कोई भी वैल्यू दे दो, 1 2 3 दे दो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों को सेम हो जाएंगे और आंसर इसका हो जाएगा जी। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। क्वेश्चन मान लें कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं 53 54 कौन सा है 54 में। 54 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो पहली बार जीपी की बात कर दी है। जीपी के हिसाब से अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को लेट कर देता हूं मेरा एबीसी, तो जीपी का जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये मेरा एबीसी में लेट कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर मतलब a के पावर में x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a into c, और a into c अगर तुम यहां पे करेगा तो log a के बेस पे x into log x के बेस पे b, ये सब कट कुटा के तुम्हारा पास में बन जाएगा log a बेस b, और इसको खोल देगा तो ये क्या बन गया a के पावर में 2x। अब तुम्हारा पूरा कहानी जो है इसी के आगे घूम रहा है, क्योंकि तुमको x का वैल्यू निकालना है। तो भैया x का वैल्यू निकालने के लिए तुमको log लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही तुम log लगाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, a के पावर में 2x, 2x बाद क्या आ जाएगा सामने, मतलब अगले स्टेप में हो गया 2x log a is equals to log a by log b। तो ये आंसर जो है, जो मुझे लग रहा है ये बी ऑप्शन की तरफ भाग रहा है, 54 का ए ऑप्शन की तरफ भाग रहा है, ये ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे बेस a यहां पे दिख रहा है। log a बेस b पहले से था, ये log a इसके नीचे आकर रुक जाए, एक सेकंड रुक जाओ, ये 2 भी तो था ना यहां पे, तो अगर ये 2 है तो फिर ये नहीं होगा, ये तुम्हारा सी ऑप्शन पे 1/2 भी नीचे लगेगा। ये 2x का 2 निकला ना वहां से, log a से नीचे गया है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/2। हां, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करेंगे। हां, ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न में है बिल्कुल, फिर से वही काम करना है। तीनों वैल्यूज जीपी में है तुम्हारा, तो तीनों वैल्यूज जीपी में है तो क्या करोगे, बीच वाले वैल्यू का स्क्वायर पकड़ लो, इस वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो ये क्या बन गया 2 के पावर में p/ac पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के पावर में पावर ऐड कर देते हैं 1/c प्लस 1/a। अब बेस 2 को उड़ाओ, तो p²/ac, और यहाँ पे क्या आ गया 1/c प्लस 1/a। एलसीएम ले लो इसका, b²/ac इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन ac, ac अच्छा b²/1/c प्लस 1/a है ना, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 2b नहीं,
2b हो, 2b इक्वल्स टू a प्लस c। हाँ, ये दोनों कट गया, 2b इक्वल्स टू a प्लस c, मतलब a b c are in ac। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेबुनियाद सा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो दे दिया है, nth टर्म को लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म बोल रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। n की वैल्यू ऐसे बिना तो पता चलेगा नहीं, इसका आंसर जो मैंने मारा था वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार दिया था। अच्छा, 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उसने पूछा है फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 where k is an integer has real roots and both of them lie in the interval 0 to 5। अच्छा, इसका मोटा-मोटा मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पे k की कितनी वैल्यूज रख सकते हो जिससे कि तुम्हारे दोनों रूट्स जो है वो रियल भी हो और दोनों रूट्स जो है वो लाई करने चाहिए 0 से 5 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटिंग का सहारा नहीं लिया था थोड़ा सा। वैल्यू पुटिंग का सहारा मतलब क्या, तुम यहाँ पे सोचो, बेसिक सा इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे 0 के बाद वाली वैल्यू रखता हूँ k के लिए तो 1 होता है, तो 1 को लेके तुमको इक्वेशन ढंग से फॉर्म कर नहीं पाओगे वहां पे, जो कि लाई करना चाहिए 0 से 5 के बीच में, तो 2 पे भी नहीं होगा। तो अगला जो वैल्यू बनेगा वो 4 पे है और एक 3 पे। इन दोनों वैल्यूज को अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो k के जगह, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये बनेगा फॉर्मूला x - 2 का होल स्क्वायर का, जहां से तुमको x का एक वैल्यू मिल गया 2, मतलब ये एक रूट हो गया। और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज बन जाएंगी 1 और 3। तो 1, 2 और 3 ये तीन वैल्यूज हैं जो 0 से 5 के बीच में लाई करती है, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 57, 58। हां, ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इस बच्चे ने बहुत बढ़िया किया हुआ है। सबसे पहले उसने क्या किया, mth टर्म का सम लिख दिया, क्योंकि mth टर्म का सम का फार्मूला क्या होता है, m/2 * 2x + m - 1 * t। अब उसने यहाँ पे देखो दिमाग लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको बता चुका है कि फर्स्ट टर्म जो है वो x है, तो x के जगह पर तुमने अपना x, a के जगह x लिख दिया, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 0। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज अगर 0 कर दोगे तो पीछे की तरफ से सारे टर्म्स जो हैं n से पहले वो 0 हो गए, तो तुम्हारा जो आंसर 58 का निकल के आ रहा है इसमें, वो बी ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो थोड़ा सा गलत किया हुआ है, क्योंकि 1 - n करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25 फैक्टोरियल प्लस 1, अरे ये नंबर 36 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि 25 फैक्टोरियल प्लस 1 एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो कि तुमको एक और नंबर देगी, और ये 26 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल बाय 7, इसका आंसर 2 ओनली होगा। उसके बाद 60, यहाँ पे तुम z की वैल्यू रख के कर लो, z की वैल्यू रख के कर लो, मतलब z को x + α y रख देना। इसका जो सही तरीका है उसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे रख लो, x + α y - 1 और यहाँ पे x + α y + इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालना है, और साथ में उसने क्या बोल दिया है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो बाद में तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये नेट टोटल जो तुम्हारा वैल्यू है 1 पकड़ लेना, तो कोई मतलब ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 61 क्या है अपना, ये सेम पैटर्न में है। ओमेगा के क्यूब रूट्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग सबको मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऑलरेडी बता चुका है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा अपॉन में -1 पूरे का मॉडुलस। अब ये माइनस ऊपर भागेगा तो ये बन जाएगा -1 प्लस ओमेगा पूरे का मॉडुलस। अच्छा, इसको थोड़ा सा तोड़ दो, ओमेगा की वैल्यू मेरे ख्याल से सबको याद होनी चाहिए, -1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मॉडुलस लेना है, एलसीएम ले लो, ये तुम्हारा टोटल बन गया -3 प्लस √3 आयोटा बाय 2 पूरे का मॉडुलस। 9/4 प्लस 3/4 सॉल्व करके देख लेना, आंसर कुछ ना कुछ निकल आएगा। यहाँ पे 61 का आंसर हमारा है। चलो सॉल्व करके देख लेना, वहां से मिल जाएगा। आई थिंक 4/√3 बन रहा है आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर निकाला था मैंने, ए आ रहा है इसका आंसर। कितने 6 डिजिट के नंबर हैं दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली वंस एंड डिविजिबल बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी तुम्हें पता होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए तुमको पहले ये देखना पड़ेगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 को तुम कितने तरीके से सजा सकते हो। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ध्यान रखना। 6 डिजिट का नंबर बनाने के लिए तुम्हारा यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, सोच के देखो। सिर्फ इवन नंबर दैट इज 0, 2 और 4, तो दैट मींस कि इस प्लेस को तुम 3 में से ऑक्युपाई कर सकता है। सोच लो कि तुमने 0 यूज कर लिया, तो अब कितने बच गए, 5 और, तो यहां से स्टार्ट करो 5, 4, 3, 2, 1। अब मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, 5, 4 हो गया 20, 30, 60, 360। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, 3 की डिविजिबिलिटी पे जब काम करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबको लेने पे 2 नंबर है जिसको तुम छोड़ सकता है, वो है एक 0 और एक 3। ये क्वेश्चन हमने किया था तो उसका आंसर आया था हमारा निकल के 216। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका आंसर आया था 120 + 96 216। तो 216 से तो ज्यादा ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, डी ऑप्शन बनेगा 312।
1011 को सॉल्व करना है तुम लोग को। 1011 को डेसिमल से, ये बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि 1011 सब देख के सोच रहे होंगे भैया डेसिमल तो पहले ही आ गया। नहीं, वो तुम्हारा जो नंबर है ये 1011 जो है ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, तरीका पता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये नीचे की तरफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्वेश्चन सब है उनको अभी स्किप करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, ओमेगा वाला खेल है इसके अंदर में भी। ओमेगा के पावर में 100 प्लस बीटा ओमेगा के पावर में 100। इस इक्वेशन को देख लो पहले अच्छे से, क्योंकि जब तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो ये सीधा सीधा तुमको ले जाएगा इस कांसेप्ट की तरफ। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जब होता है तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और तुम्हारा इक्वेशन जो है वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा को बना लो माइनस ओमेगा, बीटा को बना लो माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते रह जाओ, तो ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन है, इस अभी भी इतने किया नहीं है, करके बताऊंगा, देख लेता हूं यहाँ पे पहले। ये तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, इसमें एबीसी की वैल्यू डाल के कर लेना। अच्छा, आगे की तरफ, अच्छा ये आ जाओ 3D का क्वेश्चन है, बेहतरीन, इन्होंने किया हुआ, क्लास में भी किया था। अच्छा, स्फीयर के बारे में और सर्कल के बारे में एक चीज तो कॉमन है तुम्हारे पास में कि अगर तुम्हारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स तुमको मालूम है तो तुम सेंटर आराम से निकाल सकता है। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्फीयर की इक्वेशन, ये देखो पहले ध्यान से, ये सेंटर होता है। तो इसके अंदर सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। एक काम करते हैं, एक हल्का सा स्फीयर बना ही लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सेंटर पकड़ लो, माइनस यू माइनस बी एंड माइनस डब्ल्यू। अब तुमको क्या करना है, एक एंड पॉइंट तुमको दिया हुआ है 1 माइनस 1 2, दूसरा एंड पॉइंट तुमको दिया हुआ है 2 1 माइनस 1, ले लो भाई 2 1 माइनस 1, दो बढ़िया। तो मिड पॉइंट समझा लगाओ, फिर 2 प्लस 1 3 3/2, मतलब u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3/2, ऐड करते हुए निकल जाते हैं माइनस 3/2 10। v जो बनेगा 1 तो 0 हो गया 0। w जो है 2 माइनस 1 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1/2 है ऑप्शन में, देखें जरा माइनस 3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करने पे ये तुम्हारा बन रहा है माइनस 1 के आसपास आंसर बन रहा है तुम्हारा, माइनस 1 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, pxyz इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, व्हाट इज pa² + pb²? pa² + pb² तो r², मतलब एक तरह से वो तुमको क्या बोल रहा है, pa² + pb², मतलब फिगर के हिसाब से उसने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया p और एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हमको दिया हुआ है a और b, तो वो चाहता है कि pa² + pb² निकालो। सीधी सी बात है कि एंगल जो निकालते हैं स्फीयर के अंदर में, अगर तुम डायमीटर के साथ एंड पॉइंट मान के ज्वाइन कर रहे हो किसी भी पॉइंट को स्फीयर के सर्कमफ्रेंस से, तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो pa² + pb² होगा वो ab² के इक्वल होगा, और ab क्या है, तुम्हारा डायमीटर है, तो स्क्वायर के रेडियस को निकाल लो, पहले स्फीयर का रेडियस निकालो और उसका डबल करके स्क्वायर कर दो, वो तुमको अपने आप आंसर तक पहुंच जाएगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो तुम लोग का होता है रेडियस का अंडर रूट का u² + v² + w² - d। ये हम लोग ऑलरेडी u v w वहां पे निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। या ये असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन आया नेक्स्ट। इसमें तुमको दिया हुआ है दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहले ही पकड़ा दिया है, और साथ में ये भी बोल दिया है कि दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो π/4 है। दो पार्ट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर में, एक में उसको चाहिए तुमसे k की वैल्यू और दूसरे में चाहिए उसको एक ऐसा लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो कि इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम तो ये करो कि तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसको देखो, एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए cos θ = थीटा में तुमको पहले ही दिया हुआ है π/4 के इक्वल है। अब फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, करते जाओ यहाँ पे 2k, उसके बाद -3 + 10 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 अंडर रूट का 34 + x। अगर मुझे वैल्यू याद है तो इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तुमको, k² - 56k + 2080 + 2। यहां से k के दो वैल्यूज आएंगे 4 एंड 52, ऑप्शन में 52 है नहीं, 4 के साथ चल लो। और बाकी दूसरा पार्ट करने के लिए तुम ऑप्शन की मदद ले सकते हो, मैंने चेक कर लिया था। 11 2 और -10 को जब तुम इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो वो 0 बनता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होना चाहिए। और k की वैल्यू तुमने अभी चूंकि 4 निकाल ली है तो ये भी चेक करके देख लो, ये भी 0 बन रहा है, तो सीधा सीधा आंसर इसका बी ऑप्शन हो गया। और ये बढ़ जाते हैं कौन सा नेक्स्ट 75। ये एंगल निकालने वाले क्वेश्चन खुद कर लिया करो। a डॉट b 27 चाहिए तुमको, राइट। a का तुमको दिया ही हुआ है, a दिया हुआ है 3i + 3j + 3k,
तो अब तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि ऑप्शन में वो कौन कौन से आंसर है जिसको B1 की अगर मैं डॉट करूं ए के साथ तो 27 आना चाहिए। पहले फर्स्ट को चेक करना, 9 12 6, 9 12 6, 12 9 की 4 बन तो रहा है, ये तो बन रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला देखें, 5 3 15, 6 21, बड़ी चालाकी, ये भी सही बन रहा है। इसका मतलब इसको भी चेक कर लेते हैं, 15 - 6 9, 15 - 6 9 और ये 18 ये नहीं बनता, ये गलत है। डी को चेक करें, 9 9 18 12, 9 सही कर रहा हूं ना, 9 9 18 ये भी नहीं। ए और बी में से अब तुमको डिसाइड करना है कौन सा सही है। तो उसके लिए फिर तुमको एक कंडीशन और दिया हुआ है, वो क्या है कि ए क्रॉस बी करने पे 9 टाइम्स ऑफ सी होना चाहिए और सी वेक्टर तुम्हारे पास में ऑलरेडी है। तो तुम जब ऑप्शन को लेके करोगे तो भी ऑप्शन तुम्हारा सही बैठेगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कुछ ज्यादा विशेष काम तो करना नहीं है, तुमको ए प्लस बी और सी के बीच का एंगल चाहिए। ए और बी वेक्टर तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, सी अभी निकाले थे, सी तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है ना तुमको, जे माइनस के, और ए प्लस बी, ए ये रहा बी ये रहा, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बना, एक बार यही कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। 8i प्लस 6j कैसे, 5j प्लस 5। अब इसको क्या करना है, तुमको डॉट प्रोडक्ट करना है, चेक करना है j माइनस k के साथ, तो डॉट करने पे मेरे ख्याल से ये एंगल 0 देना होगा, तभी इसका आंसर 5/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो कर लिया ना, हाँ ये आ गया तुम्हारा फिर से, अरे वेक्टर है ना, ठीक है। वेक्टर क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y और z एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। ये मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था। cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा होता है a/√a² + b² + c²। ये जो 4 - 8 और 1 है, यही तो तुम्हारा एबीसी है ना। तो सीधा स्टार्ट कर दो, ऊपर बैठा दो 4 को, नीचे सबको स्क्वायरिंग कर दो, 16 + 64 + 1 पूरे का अंडर रूट, आंसर आ गया आपको 5 सही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इसी का कुछ एक्सटेंशन पूछा गया था, cos 2 बीटा + cos 2 गामा। ऐसा करते हैं, हाँ तो ये करना ज्यादा सही है। cos 2 बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर बीटा -1 और ये 2 cos स्क्वायर गामा -1। cos बीटा निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, दैट इज b बाय जो भी था, कितना निकाला था हमने, 9 निकाला था ना, और cos गामा कितना होता है, c/9। b और c की वैल्यू तुम ऊपर से देख सकते हो, कितना कितना एक बार चेक कर लेते हैं। तो b कितना, अरे यार -8/9 एंड 1/9, -8/9 एंड 1/9, तो -8/9 2 * 64/81 -1 और एक कुछ और था, तो सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा आंसर, सही है कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके बाद कौन सा है तुम्हारा, ये गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स दे दिया। हाँ ये ठीक है ज्यादा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स a and b, i - j and j - k, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हिच ऑफ द अबव पॉइंट, अरे नहीं जम रहा ना, उससे वो क्या हो जाता है, खिंचा जाता है। हाँ सबसे पहली चीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट को दे दिया i - j and j + k, और तुमको बोला है कि इन सब में से कौन सा पॉइंट लाई करेगा तो द लाइन जॉइनिंग a and b। तो ठीक है ना, लाइन जॉइनिंग a and b, इसका मतलब है कि हाँ ये इक्वेशन पहले बना लो, बहुत बढ़िया, इसने भी किया बहुत बढ़िया किया। इसका x y z कंपोनेंट खींच लो, 1 - 1 और 0 0 1 1, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, और जब पॉइंट पुट करोगे तो इसके हिसाब से भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी 2 and 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 and 3 इसका सही आंसर। और मैग्नीट्यूड निकालना है ab वेक्टर का, ab वेक्टर जब तुम बनाओगे, ab वेक्टर कैसे बनाते हैं तो मालूम होना चाहिए, जैसे i - j और यहाँ पे है j + k, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो j माइनस पोजीशन वेक्टर इसका बन गया तुम्हारा 1 - 1 0 और इसका बन जाएगा 0 0 1। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ab वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बनाओगे। क्या बना है ab वेक्टर देख लो, -i + j + k। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका रूट ले लेते हैं, √3 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, देखो ऑप्शन में, हां √3 है ना, हां डी ऑप्शन है, √3 सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे की तरफ चलते हैं वहीं पे। मीन एंड वेरिएंस, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको मीन और वेरिएंस दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है जितनी वैल्यूज दी हुई है उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि हम लोग को 14 दिया हुआ है। स्टार्ट कर दो, 3 वैल्यूज 11 16 20 ऐड कर दो, 16 11 27 47 प्लस जो भी दो वैल्यूज है उनको a और b लेट कर लेते हैं, अपॉन में 5 क्या लिखेंगे, 16 × 5 सीधा कर लेते हैं, 80 आ गया, नहीं 40 लेगा, 70 आ गया। तो
तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 23। अब उसने चालाकी क्या की है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में सम जो है वो मेंटेन कर दिया 23 का। तो इससे तो पकड़ पाओगे नहीं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एक बार बता देता हूं। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुटिंग करना ही पड़ेगा तुमको। वेरिएंस का वैल्यू तुमको रखा है, दे रखा है 13.2, ये गंदा वैल्यू है। 13.2 जो है ना वो गंदा वैल्यू आता है, क्योंकि उस पे फिर क्या होगा, पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13. अब जितने भी वैल्यूज अपने पास में अवेलेबल हैं उन्हीं को लेकर तुमको करना पड़ेगा कि a प्लस b डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाओगे। तो x बार का स्क्वायर करते हैं, एक बार x बार कितना है 16 है, 16 में 14 का स्क्वायर हो गया 196 अपॉन में 5, और एक इक्वेशन a प्लस b 23 का है, समेशन xi स्क्वायर एक बार कर लेते हैं। तो समेशन xi स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या था, 11 स्क्वायर 121, 256 और 400, इनको ऐड करके 777 और भी अंदर होगा 777 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, a प्लस b इक्वल्स 23, आंसर दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन pa बार दिया हुआ है, pb बार दिया है, pa यूनियन b दिया है, k निकाल। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी तो दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए। जब हम लोग इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं इवेंट्स को, इसका मतलब क्या हुआ कि pa इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी pa इनटू pb, राइट। तो अभी तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस कांसेप्ट को लगा के तुमको अपना pa निकाल दो। pa बार दिया हुआ है, pa की वैल्यू हो गई 0.3, कॉम्प्लीमेंट्री pb बार हो जाएगा 1 माइनस p। तो तुमको एक तरह से रफली pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू नहीं है। आप फॉर्मूला में चले जाओ, pa यूनियन b प्लस pa इंटरसेक्शन b, उसके जगह मैं ये वैल्यू लिख दो पूरा का पूरा। क्या आया तुम्हारा 0.3 इनटू 1 माइनस, और फिर इज इक्वल्स टू pa प्लस pb, तो ये हो गया 0.3 प्लस 1 माइनस। तो सॉल्व करके लोगे क्या वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट, a biased coin with probability of getting head equal to 1/4 is tossed 5 times। अच्छा ये बार नॉलेज चाइल्ड का क्वेश्चन हो गया। n की वैल्यू हो गई 5, कोई डाउट ही नहीं है, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। p हो गया 1/4, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी q दैट इज 3/4। उसको क्या चाहिए, 4 बार हेड चाहिए, मतलब उसके लिए सक्सेस जो है वो 4 है, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सीधा। 5c4 फॉर्मूला क्या होता है, NCR, p के पावर में r, q के पावर में n माइनस r। तो 5c4 1/4 के पावर में 4, 3/4 के पावर में 1 ही आएगा। 5c4 की वैल्यू हो गई 5, 1/4 का पावर में 4 करेंगे तो 1 अपॉन टोटल 10256 आ। 5/256 वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो एक वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा हमें उसके अंदर में। इसका ऑप्शन है 51। हाँ ये है तुम्हारा, उसमें उसने एक और केस भी ऐड किया मेरे ख्याल से, तभी जाके वो आंसर बना होगा। 1/4 3/4 है, इसको फिर से कर सकता हूँ। ऑल द 4 क्रॉसेस, फर्स्ट 4 क्रॉसेस में हेड आना चाहिए ना। तो 5c4 ये हो गया 1/4 के पावर में 4, और ये हो गया 3/4 के पावर में 1। तो 5c4 की वैल्यू हो गई 5 into 3, और ये 102, 3/102 ऑप्शन में 27। इसका मतलब है कि उसने एक और ये हेड वाले को लिया होगा, तब जाके उसका आंसर जो बना होगा वो 27 वाला बना होगा। 27/102। A coin is biased so that head comes up thrice as likely as 10 in 4 individual। ठीक है, p की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ q है, p प्लस q 1 होता है, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 1/4, p हो जाएगा 3/4। फिर से वही चला गया क्वेश्चन, 4 बार तुमने फेंका है, n की वैल्यू हो गई 4, एग्जैक्टली 3 चाहिए हेड, तो r हो गया तुम्हारा 3। फॉर्मूला में जाएंगे, सेम फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। 4c3 ये हो गया तुम्हारा 3/4 के पावर में 3 और 1/4 के पावर में 1। सॉल्व किया जा सकता है इसको। 4c3 की वैल्यू हो गई 4, 27/4 की पावर 364 into 4, 256। 256 इसको काट दें 27/64। अगला क्वेश्चन भी उसी का ही है। लेट x and y be two random variables such that x plus y is equals to 100 if x follows this and p। वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है अपने पास में। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। तुमको n वालों में 100 दिया होगा, 100 लिख दो, p की वैल्यू है 4/5, q हो जाएगा 1/5। तो सीधा सीधा तो आंसर आएगा इसका मेरे ख्याल से 16 रहेगा। मेरा खत्म, कोई फेल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा।
रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू मांगा है y माइनस 3, यहाँ डाला था मैंने लेकिन इससे हुआ नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ y की वैल्यू -3 तो ये हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि अगले स्टेप में x की वैल्यू 11 देगा ऑप्शन के लिए। दूसरी लाइन को पकड़ लो, 4x माइनस 27 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 4x का वैल्यू यहाँ से आ गया 20x हो गया 5 है क्या, खत्म कहानी। 90 इक्वल्स टू 3 क्या, चारों सेक्टर मिला के 360 डिग्री। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहली बार में नहीं समझ में आ रहा था, मोबाइल से बना रहा था ना, नहीं बन रहा था इसलिए। चार सेक्टर बनाएंगे PQRS, सर्कल के अंदर में पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है कि PQRS ये चारों एंगल का जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के बराबर, और हमारे पास में एक रिलेशन भी पकड़ा दिया है PQRS के बीच में। तो सबसे पहला काम साइड में लिख लेते हैं, C प्लस Q प्लस R प्लस S, ये किसके बराबर हो गया 360 के, राइट। और रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है 9P इक्वल्स टू 3Q, ठीक है, 9P इक्वल्स टू 3Q। तो ऐसा करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सभी निकल आएगा। ये सही है। तो 9P इज इक्वल्स टू 3Q इज इक्वल्स टू 2R इज इक्वल्स टू 6S। मेरा फेवरेट है, सपोज P को फेवरेट मान लेता हूं अपना, तो यहां से P को कुछ नहीं करते, 9P अगर 3Q के बराबर है तो Q का वैल्यू हो गया 3P, चलो ये देखो। अच्छा 9P 2R के बराबर है तो R का वैल्यू हो गया 9P/2, चलो ये भी बढ़िया। और 6x अगर 9P के बराबर है तो ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2P करके इन सब का सम जो है 360 के इक्वल करना। ये हो गया 4P, 8P, 17, कितना लिखा मुझे याद नहीं है, कितना 3 है ना, तो ये कितना बन गया 9 + 3 12, और ये 4 4 16। अब तो P की वैल्यू यहां से निकल रही है तुम्हारी 4P + 6P, और यहाँ पे हो जाएगा 8P, किसके बराबर 720 के बराबर। अब यहां से तुम अपना P पहले निकालो, P निकालने के बाद तुम कोई भी वैल्यू जो P और Q पूछा है तो P और Q यहां से निकल आएगा, आंसर में आएगा। उसके बाद क्या है, observations 4 1 4 3 6 2 1 3 4 5 1 6 are the outputs of 12 dice thrown simultaneously. If M and M are the means of lowest 8 observation and अरे ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम लोग किए थे ना, तो इसके लिए पहले इसको लिखना पड़ेगा प्रोपर ढंग से। मेथड तो वही है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो लोएस्ट 4 लिख लेते हैं, लोएस्ट 8, सबसे पहले 1 है, टिक मारते जाओ, एक और 1, फिर आ गया एक और 1, कितना 1 हो गया, चलो। उसके बाद नेक्स्ट लोएस्ट में आएगा 2, तो एक ही बार है ना। उसके बाद 2 बार 3 आ गया, 2 बार 3, 2 बार 3। अब नेक्स्ट 2 बार 4 लगा ही लेते हैं, 2 बार 2 बार नहीं 3 बार, और फिर एक बार 5 है, 2 बार 6, ठीक, ये कर लिया हमने। अब क्या करना है, m is the small m is the mean of lowest 8, lowest 8, 1 2 3 4, lowest 8 का मीन निकालो। 4 4 8 6 14 16 17, गलत हो गया, 4 4 8 14 16 17 18 19, 19/8, 2 × 19/8 और कैपिटल M क्या है, हाईएस्ट 4 का मीन, हाईएस्ट 4 का मीन, हाईएस्ट 4 में क्या है 6 6 12 5 17 4 21, 21/4, 21/4 कितना हो गया 40/4 10। अरे ऐसे पगला बनाने वाला कुछ हट, ये बाइनरी वेरिएशन है भैया, दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x निकालना है, वो सेटिस्फाई करके देख लेना, जो बन गया बन गया। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बाद में होंगे, आगे बढ़ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन सब है। डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव में एक बार आ जाए क्या, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ डेरिवेटिव में log x, कहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है 0.5 के अंदर, 0.5 के अंदर में 0.5 अगर इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है पहले देख लेते हैं। log 1/2 हो गया ना, तो ये बन गया log 1 - log 2, log 2 - log 2, तो नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव बन जाएगा। 1/x कर लो इसको, और 0.5 यहाँ पे डाल दो, 2 आएगा, पॉजिटिव होता है हमेशा, x = 2 1/2, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू होता नहीं है log के अंदर में, तो सीधा उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अबे क्या कर रहे हो, हट इसको ऑफ करो, f of x, उसी का log x का ही डेरिवेटिव करना है ना, तो log of log x का डेरिवेटिव 1 i log x log x, ये ऑप्शन आएगा, मतलब log of log x यही बन रहा है तुम्हारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/log x 1/x log x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गया ये, अरे कंटिन्यूटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया है,
कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, पहले तो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, 1 पे देखना है, 1 और 2 पे। तो लेस देन 1 पे क्या वैल्यू ले रहा है, px प्लस q, तो उसके जगह पे सीधा लिखो p प्लस q और इसको इक्वेट कर दो 7 के साथ में। पहला इक्वेशन बन गया, बढ़िया किया इस बच्चे ने। और दूसरा बनेगा 2 के लिए देखेंगे तो 2p प्लस q इक्वल्स टू 10 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लो। इसमें से मैंने किया था p3 और q4 आया था, मेरे ख्याल से q4 ही होगा नीचे में। हाँ, ये 3 और 4 जो है बिल्कुल सही आंसर निकाला इस बच्चे ने, बिल्कुल सही है। और बच गए थोड़े से क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्या 101 ऑनवर्ड्स, ये सबका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन सब है। इनको तुमको चेक करना पड़ेगा, मिनिमम कहां लेता है, मैक्सिमम कहां लेता है। ये दूसरे वाले सर अभी आ रहे हैं, वो बताएंगे हम लोग को, ठीक है। नीचे की तरफ से क्वेश्चन मैं तुम लोग को हैंडओवर कर रहा हूं, दूसरे वाले सर आ रहे हैं, वो करवाएंगे तुम लोग को। यहाँ से आप ले लेंगे सर, हो गया 101 तक कर दिया है मैंने, यहाँ से आप खींच लीजिए और आपका आंसर फिर उसको डाल देते हैं। वो तो गया आपके ऊपर, मैंने यहाँ पे छोड़ा है 101 के आसपास लाके, आप वहां से खींच लो, ठीक है ना। हाँ, इसी का ले लो, यहाँ से 101 से खींच लो क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट हो ही गया है। ओके सर, आगे तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, बेशक हमने कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, बट दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन। एक बेसिक पेपर है, अच्छा जाएगा तुम लोग का, मुझे मालूम है 60 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, वी कैन गो अप टू 70 आल्सो, ठीक है। 101 ठीक है, वो एक क्वेश्चन है जहाँ पे सब लोग अटक रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं उस पर वर्क कर लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, हो जाएगा ना। ठीक है, आप यहाँ से खींच लीजिए 101 से 120 ऑनवर्ड्स, आप खींच लीजिए पूरा का पूरा, बाकी तो मैंने कर लिया है। ठीक सब कुछ ठीक है जी। नमस्कार सभी को, अरविंद कुमार सिंह। तो सर ने बहुत बढ़िया करवा दिया, बहुत कम समय में काफ़ी स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट पूरी एक्यूरेसी के साथ। अब जो बचे हुए 10-12 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, 102 है। At what value of x does the function attain the minimum values? देखो क्वेश्चन को डिटेल करेंगे, थोड़ा समय लेगा। आप बढ़िया है, एक काम करें, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक कर लो। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो, ये वाली चीज 2 लेते हो, राइट, अगर आप ये 2 ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 प्लस 3 - 2 1 और प्लस 4 - 2 दैट इज 2, ये आंसर 3 आ रहा है। 3 लेते हो तो ये वाला पार्ट 0, ये 1 1 0 और 1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप 4 लेते हो तो 4 - 2 दैट इज 2 प्लस ये 1 और प्लस अगेन 0 दैट इज 3। 0 लेने पर ये चीज 2 प्लस 3 प्लस 4 बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। तो आपसे मिनिमम पूछा गया था, तो मिनिमम 2 है, तो ये आप आंसर करो। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इट एंड द मिनिमम वैल्यू, तो 3 के ऊपर ये मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि यही चीज रिपीट दोबारा पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी आपने देखा था कि इसके ऊपर वैल्यू, इस 3 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आई थी 2 आई थी, 1 + 1। तो आपने इसको टिक करना है कि नहीं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ये आई थी, 2 आई थी मिनिमम वैल्यू, तो आपने 2 को टिक कर देना है। यस, नेक्स्ट 103, ये पूरा फैक्टोरियल का कंसेप्ट है कि ये 0 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक लिखे हुए हैं, और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। इसके आगे जितने भी होंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, या 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 8, राइट ना। तो हम 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये पीछे के सारे कैंसिल होते जा रहे हैं अप टू 24। आगे देखिए आप, 6 + 2 दैट इज 8, ये भी 8 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका आ गया 1 + 1 2, सी इज द आंसर। सेम क्वेश्चन पूछा गया था ये 103 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इफ द सम डिवाइडेड बाय 60 व्हाट इज द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है,
तो इस बार हम देखते हैं, देखिए अभी अभी लिखा था 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120 एंड ऑनवर्ड। अब इन सबको हमें डिवाइड करना है किससे? 60 से, राइट ना? तो 120 को डिवाइड करोगे 2 जो भी है पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसे आगे 720 वो भी 60 से डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइड नहीं हो रहा है दे आर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है चेक करो, 24 प्लस 6 दैट इज 30, 32, 33, 34। The 34 is the remainder. That's the answer. अब क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो ना, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी तरीके से फिगर बना भी रखा है, राइट? और मैं देख पा रहा हूँ शायद ये लड़का आंसर तक नहीं पहुंच पाया, कहीं भटक गया, तो है ही एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन ये अजीब सा। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल ले लो PQR। इस ट्रायंगल PQR में क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos P की वैल्यू है 1/3, cos P इक्वल टू 1/3। आप लोगों को याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज b² + c² - a² अपॉन ट्वाइस bc। इसी को अप्लाई करना है और यहाँ पे cos P है जिसको हमें 1/3 ले लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है इसलिए हमें करना पड़ेगा, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अब कर रहा है एक इन सर्कल ले लो, और इन सर्कल क्या कर रहा है, PN को PQ को N पर, फर्दर इन सर्कल PQ को N पर कट कर रहा है, PQ को N पे कट कर रहा है, नेक्स्ट वाला L पर और अगला वाला N के पर। फिर वैल्यू दिखा रहा है कि PN की वैल्यू N है, ये जो PN है इसकी वैल्यू N है। अगला n+2 जो QL है ये n+2 है, और नेक्स्ट वाला n+4 है। अब ये फिगर हमें चाहिए, पूरा स्पेस चाहिए इसको करने के लिए, तो एक आ जाते हैं नोट के ऊपर जाते हैं। क्या था? PQR था, PQR में NLM था और n+2 n+4 था, हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक ये यस तो क्वेश्चन था हमारे पास कि ये PQR है, इसके अंदर एक ट्रायंगल था और ये N पॉइंट था, ये L था और ये M था। इसके अंदर ये वैल्यू N दे रखी थी, ये वैल्यू n+2 थी और ये वैल्यू n+4 थी। टेंजेंसी को अप्लाई करो तो ये वाला N आ जाएगा, ये वाला n+4 आ जाएगा और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं cos P का। तो cos P जो है यानी इस एंगल के लिए क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो इसको ऐड करोगे तो इट्स 2n प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये वाला आ गया 2n प्लस 4 स्क्वायर माइनस इसको लोगे तो ये 2n प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 6 द स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इधर वाला पार्ट जो कि हमारा 2n प्लस 2 था और दूसरा वाला पार्ट था हमारा 2n प्लस 4। ओके, अब देखो ये cos p की वैल्यू 1/3 है। इस वाले 2 को मैं यहां लेकर के आ रहा हूं। अब देखें कि यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन ले लो। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4 टेकिंग कॉमन। ये 2 × 2 4 वो कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ चीज है वो है n+1 स्क्वायर प्लस n+2 स्क्वायर माइनस n+3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से 2 कॉमन है इट्स n+1 और यहां से 2 कॉमन है तो n+2 है। अब सॉल्व करना है, देखो ट्वाइस ऑफ दिस वन, ट्वाइस ऑफ ये आ रहा है तुम्हारा n² प्लस 2l1 3n और प्लस 2
दिस इक्वल टू 3 टाइम्स, इसको देख लो, ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, n स्क्वायर, 2n 4n 6n माइनस 6n कैंसिल आउट, नंबर्स बचा 1 प्लस 4 दैट इज 5 माइनस 9 मींस माइनस 5 है, राइट। कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लो, n स्क्वायर 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस कर लोगे, गेट सिंगल वन n स्क्वायर, और 2ab वाला टर्म को देखो तो 2n और 2n सॉरी इट्स 4n, तो 4n प्लस 2n, कुछ गलती हो रही है, 4n प्लस 2n 6n और माइनस 6n, यस कैंसिल आउट कंप्लीटली। कांस्टेंट वैल्यू को देखो 1 प्लस 4 5 5 माइनस 9 दैट इज 5। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये देखो ये 2n स्क्वायर है, ये 3n स्क्वायर, उस साइड में बचेगा ओनली n स्क्वायर, यहाँ पर है 6n, 6n को उधर जाने दो, दैट्स माइनस ऑफ 6n, ये वैल्यू है 4 और वो वैल्यू है माइनस 15, तो ये जो माइनस 15 है इसको इधर ले आओ तो प्लस 15 होगा, ये माइनस 15 इधर ले आओ प्लस 15, 15 प्लस ये कर लो इसको 4 प्लस ये उधर आएगा 15, तो 15 प्लस 4 19, समथिंग रॉन्ग, 2 2 जा 4 राइट, 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 5 ये भी सही है, तो माइनस 15, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 19 उधर जाकर माइनस 19 इक्वल टू 0, 3 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 5 तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं न कहीं गलती आ रही है, ये n स्क्वायर आ रहा है, ये 3n आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है, राइट, और ये 2 टाइम्स आ रहा है तो 2n स्क्वायर 6n और प्लस 4 जा रहा है, वो माइनस 5 भी आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 19, और यहाँ से n की वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ न कुछ गलती हो रही है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये n की वैल्यू हमारी 8 आनी चाहिए, तो 8 का मतलब 8 6 48, 8 स्क्वायर, ओके, तो 8 2 जा 16 जानी चाहिए, 15 है तो 1 आने चाहिए, एक सेकेंड, ये n है n प्लस 2 है, एक बार हम पिछले पेज में जाएं सर, बैक करना क्वेश्चन पार्ट, यस यस, ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल था PQR और ये पॉइंट था N, L और M, यही था ना NLM, यस, तो PN था हमारा N, PN था N, तो ये भी N हुआ, और QL था N प्लस 2, QL ये वाला N प्लस 2, तो ये भी N प्लस 2 आ गया, और ये था N प्लस 4, तो ये भी N प्लस 4, तो हमारे साइड्स आ गए थे कौन कौन सा, 2N प्लस 6, 2N प्लस 2, 2N प्लस 4 और 2N प्लस 6, ओके। चलो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, ठीक है, n की वैल्यू 8 आएगी, और जब n की वैल्यू 8 आएगी देन आप n की वैल्यू 8 आनी चाहिए, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4 माइनस 2n प्लस 6 दैट इज 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4, ये भी सही है, 2 इधर चला गया, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 कॉमन लिया n प्लस 3, ठीक है, ये वाला n प्लस 1 है, ये वाला n प्लस, बिल्कुल सही है, 1/3 है, 2/3 है, तो 3 टाइम्स ये हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है n स्क्वायर, ये 4n और 2n 6n कैंसिल आउट कंप्लीटली, और बच रहा है क्या चीज, 1 और 4 5 माइनस 9 यानी कि माइनस 5, तो ये पार्ट सही है, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 ये भी सही है, तो दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, जो इधर आके प्लस 15 हो गया, ये 2n स्क्वायर 6n गोज माइनस 6n
और ये 2 2 जा 4 आ रहा है। देन n स्क्वायर माइनस 6n और 15 and 4 19 दैट इज माइनस 19 इक्वल टू 0। तो एनीवे यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे कहीं कुछ गलती है जो अभी पकड़ में नहीं आ रही है, n की वैल्यू 8 आएगी और जब 8 को सॉल्व करोगे तो जो ट्रायंगल का बनेगा तुम्हारे पास 8 + 2 और ये 8 + 4 मींस ये 10 और 12 22 साइड्स आ जाएगा 10 एंड 12। इधर वाली साइड आ जाएंगे 8 और 8 + 4 दैट इज 12 एंड 8 20 साइड्स ये आ जाएगी और ये 8 है और 8 + 2 10 है तो 10 और 8 करोगे 18 आ जाएगा। तो 18 20 और 22 तीन साइड्स आ जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम साइड कितनी होगी, मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो मिनिमम लेंथ 18 को टिक करोगे और ये जो पार्ट है इसको आप लोग एक बार दोबारा चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक आ रही है और ये m की वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 आनी चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। अभी बताया हमने कि जब इसको सॉल्व करोगे तो मिनिमम वैल्यू ये आ रही है 18 वाली, तो 18 वाले को टिक करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 107 है। अभी थोड़ी देर बाद हम दोबारा आ रहे हैं इसे 107 से लेकर के 109 के बीच में। फिलहाल एक सिचुएशन दे रखा है हमारे पास कि कंसीडर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 111 और 112 के लिए। तो क्या सिचुएशन है ये कि साइन बीटा जीएम है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का, मतलब कि ये जो साइन बीटा है ये जीएम है तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा का ये प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट है स्टेप अप एक मिनट, अब यहाँ रुक जाओ। क्यों रुको? क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस cos 2 बीटा से रिलेटेड है और cos 2 बीटा का फॉर्मूला जो इससे टैली करता होता है वो होता है cos 2 बीटा इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो अप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस 1 को अगर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और आगे एज इट इज नोट कर लें दैट इज माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आप ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस b द होल स्क्वायर, मतलब ये पार्ट आ गया आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और ये आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो cos 2 बीटा पूछा गया था और हमारा जो पहला पार्ट था sin बीटा इज द जीएम ऑफ cos अल्फा एंड sin अल्फा। तो cos अल्फा और sin अल्फा का हमने प्रोडक्ट ले लिया और इक्वल टू जीएम का स्क्वायर होता है, तो जीएम स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, उसको अप्लाई कर दिया गया और cos 2 बीटा का फॉर्मूला लिख दिया गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 1 को रिप्लेस कर दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा से, तो फाइनली cos अल्फा माइनस sin अल्फा द होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 111। अब नेक्स्ट देखते हैं 112 क्वेश्चन के ऊपर। सेम है, पहले हमने दूसरा पार्ट अभी हमने छोड़ दिया था, क्या था tan गामा इज द am ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा। इसका मतलब ये हुआ ना कि tan गामा इक्वल टू sin गामा प्लस cos गामा, sin गामा और cos ये सॉरी sin अल्फा एंड cos अल्फा है, राइट ना। तो ये sin अल्फा एंड cos अल्फा का जीएम है तो दोनों के सम का बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर पेज ऊपर करेंगे तो ऊपर करते हैं ये आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 2 गामा, ये क्वेश्चन। तो sec का फॉर्मूला टेंजेंट से रिलेटेड क्या होता है,
तो सेक और टेंजेंट में स्क्वायर का रिलेशन होता है, क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट ना। तो सेक थीटा निकालना हो स्क्वायर हेड तो ये अंडररूट में आ जाएगा, तो अंडररूट में आप लोग इसकी वैल्यू किसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर की, तो 1 प्लस में इसका स्क्वायरिंग करते हैं, क्या चीज है ये चीज, साइन स्क्वायर गामा अल्फा प्लस ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का ये होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर है तो इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो tan गामा इक्वल टू 1 प्लस मतलब हमें निकालना था sec 2 गामा, तो sec 2 गामा के लिए आप क्या कर लें, एक छोटी सी बात यहाँ पे और आ रही है कि ये ट्वाइस एंगल है और हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये tan गामा की वैल्यू आ रही है, ये आप निकाल रहे हो, ये जो चीज निकाल रहे हो sec गामा की निकाल रहे हो, यानी कि सिंगल वैल्यू में है और ये आपको चाहिए डबल में। तो डबल के लिए एक बेहतर फॉर्मूला याद करना कि ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो sec 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है sec 2 थीटा का। तो यही चीज हमें निकालनी है sec 2 थीटा। देन अब ये चीज है हमारे पास tan गामा और हमें लेना क्या चीज है tan स्क्वायर, तो इनकी स्क्वायरिंग आएगी, इसमें पुट करेगा तो sec 2 गामा वुड बी इक्वल टू 1 प्लस tan गामा का स्क्वायरिंग, यानी कि ये आ जाएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। डिनोमिनेटर ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाओ, ये 4 बन जब 5, 4 बन जब 4 आएगा, अब प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो sin a प्लस cos b का होल स्क्वायर करते हो, मान लो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करते हो, that the sin square theta plus cos square theta plus twice of sin theta cos theta, right ना, ये चीज 1 बन जाता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस twice of sin theta cos theta एंड 1 प्लस twice of sin theta cos theta, दैट इज क्या sin 2 थीटा। सारी चीज पूरी तरह से आइडेंटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये हमने 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, 4 यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब ये वाली चीज अभी अभी आपको सॉल्व किया, 1 प्लस ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा, 1 प्लस मतलब कि sin 2 गामा हो गया, गामा नहीं अल्फा है ये। नीचे आ जाओ, ये 2 2 जब 4, 4 1 जब 4 माइनस ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो 1 प्लस sin 2 अल्फा। अब इसका रिजल्ट आया 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 प्लस sin 2 अल्फा और अपॉन में 4 माइनस 1 3, 3 माइनस sin 2 अल्फा। अब ये इसको देखो कि कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर करते ही ये चीज गायब हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको आंसर को फिलहाल 2-4 सेकंड के लिए लर्न कर लो, 5 प्लस sin 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस sin 2 अल्फा। चलो ऊपर करें इसको, ऐसे तो हो नहीं रहा है, इसको ऐसे गायब करना पड़ेगा। और अभी हमने यही आंसर लिखा था, क्या आंसर लिखा था, 5 प्लस ये वाला है ना, 5 प्लस sin 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस sin 2 अल्फा, तो 112 का आंसर बी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन के अंदर, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1112 था, 1113 1113 113, ये 1145 आ गया, 114, आई थिंक 113 यही क्वेश्चन होना चाहिए। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, यस 113 ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, x
इज द डिस्टेंस। अच्छा अभी क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं आया मेरे सामने, ये रहा, अब आ गया क्वेश्चन। Consider for the next two questions. A flag step 20 meter long standing on a pillar 10 meter high subtends at an angle of 10 inverse 0.5 at a point P on the ground. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है कि एक फ्लैग स्टेप है 20 मीटर लॉन्ग और वो एक पिलर 10 मीटर, मतलब एक पिलर है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ पिलर, ये 10 मीटर का पिलर है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप है ये 20 मीटर का, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है P जहां पर कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, फ्लैग स्टेप का, जो फ्लैग स्टेप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है tan इनवर्स ऑफ 0.5। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को phi एज्यूम कर लेता हूं सो दैट मैं इजीली लिख सकूं tan phi इज इक्वल टू 0.5 या जरूरत पड़ने पे मैं 1/2 भी लिख लूंगा। तो ये है tan phi की बात। नीचे वाला एंगल जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द पिलर। ये पिलर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर बात आती है tan थीटा। अच्छा कुछ अगले स्टेटमेंट में x इज द डिस्टेंस ऑफ P, ये x डिस्टेंस लिख रहा है ग्राउंड से इसका P पर, तो हम tan थीटा लिखेंगे तो ये tan बाई x आएगा। अब ये दो चीज दिमाग में रखें आप, tan थीटा tan बाई x है और tan phi 1/2 है। tan थीटा tan बाई x हो गया और tan phi क्या है 1/2। चलो इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। क्या क्या सॉल्व करेंगे हम ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल लेंगे, हम एंगल लेंगे tan थीटा प्लस phi दैट इज इक्वल टू पूरा का पूरा परपेंडिकुलर 20 प्लस 10 दैट इज 30 आ जाएगा और नीचे ये वैल्यू क्या आएगी x आएगी। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। tan थीटा प्लस phi tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वो आ जाएगा tan थीटा प्लस tan phi डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इनटू tan phi ये आएगा, दिस इक्वल टू 30/x। करेंगे एक अच्छा खासा इक्वेशन होगा। tan थीटा की वैल्यू है 10/x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इनटू 1/2, this is equal to 30/x। तो एलसीएम 2x होगा, यहाँ भी नीचे प्रोडक्ट डिनोमिनेटर 2x कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो दैट इज x प्लस 20, इधर आ जाएगा 2x माइनस 10, दिस वन विल बी इक्वल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इट्स x² प्लस 20x, दिस इज इक्वल टू 60x माइनस 300। तो इक्वेशन बन रहा है x² और 20 और 60 दैट इज माइनस ऑफ 40x और प्लस 300 इक्वल टू 0। फैक्टर अगर करोगे आप तो ये x माइनस 30 और x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। 30 और 10 का प्रोडक्ट 300 पॉजिटिव आ गया, माइनस 30 एंड माइनस 10 दैट मेक्स द माइनस 40। x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू 30 आ रही है, एक वैल्यू 10 आ रही है, रेशियो इनका 3:1 मान लो या 1:3 कुछ भी मान लो, कुछ भी ले लो आप। तो जो x है नीचे वाला लेंथ है, ये आपका लेंथ क्या क्या आ सकता है 30 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो अब ये जैसे ही मैं पेज आगे करूंगा, हाँ दिखाई तो दे रहा है x is the distance of P bottom to the pillar, then consider the following statement। पहला स्टेटमेंट क्या है, x can take two values 1:3, जो दोनों वैल्यू 1:3 में होंगे, यस हमारा 1:3 में है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, ओके। नेक्स्ट x can be equal to the height of the flag, हाइट कितनी है, हाइट 30 है और हमारा एक हाइट 10 आ रहा है, एक लेंथ x की वैल्यू 10 आ रही है, एक 30 आ रही है, तो अगर हम 30 को कंसीडर करेंगे तो हमारा 2 भी क्या है करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को दोनों हमारे करेक्ट है, तो आंसर इसका आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या जा रहा था, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, लेकिन हमें अब करना है 114, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अभी अभी आपने देखा था कि लास्ट रिजल्ट कुछ ऐसा था, ये थीटा था, यहाँ पर नीचे वाला 10 था ना, यस ऊपर वाला साइड 20 था, तो नीचे की वैल्यू आ रही थी दो, एक 10 आ रही थी, एक 30 आ रही थी, राइट। तो
व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा की एक वैल्यू तो 10/10 यानी कि 1 आ सकती है, दूसरी पॉसिबल वैल्यू 10/30 यानी 1/3 आ सकती है। तो वी विल करेक्ट सी पार्ट 1/3। चलिए, तो होप सो ये आपका क्लियर है। और अब 114 के बाद 115 क्वेश्चंस को देखें। 115 आ जाए, 115 नहीं लग रहा है। What is the perimeter of triangle? चलो, ये consider the following for the next two। देखो, आप लोगों को क्लास में हमेशा एक बात पढ़ाई जाती है, हमेशा, कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, मतलब 1√32। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के तो ऑलमोस्ट 10% चीजें इनसे भरी पड़ी है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन देता है कि पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स एएम ऑफ साइन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फर्दर बीसी इतना, सीए इतना। देखो ना, दो साइड दे रखा है √3 और 1, दो साइड्स है, एक है √3 और एक साइड है 1, ऑब्वियसली तीसरा साइड 2 होगा। तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट ना, और इसमें ये ले लेता हूं 30 डिग्री और ये ले लेता हूं मैं 60 डिग्री। 30 के सामने वाला साइड 1 ले लेता हूं, 60 के सामने का साइड √3 और 90 के सामने का साइड 2। उसके अकॉर्डिंगली मैं नेमिंग करूंगा। क्या नेमिंग करनी है? CA1 है, यानी ये चीज हमारा CA है, और CB क्या है? √3। CB है √3, तो C हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ये A लेना पड़ेगा यहाँ पे और B लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो बात आ गई, BC की वैल्यू √3, CA की वैल्यू 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? तो ट्रायंगल के पैरामीटर के तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 1 + 2 + √3 आएगा। 1 + 2 3 होता है, तो 3 + √3 हमारा करेक्ट आंसर है। और ये आपका ऑप्शन तीसरे में दिखेगा। अभी ऑप्शन में गाइड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पूरा अभी ऊपर वाला पार्ट है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6 टाइम्स एएम। तो पैरामीटर जो था यानी कि 3 + √3, ये क्या है अपना 6 टाइम्स। किसके 6 टाइम्स है? 6 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ द एंगल्स, तो यानी कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये कुछ दिया हुआ ना। एम ऑफ द साइन ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एम करने के लिए बाय 3 करना पड़ेगा, राइट। अब ये 3 से कट करोगे 6 को 2 आ जाएगा, तो 3 + √3 by 2 कर लो, दैट इज sin A प्लस sin B और प्लस sin C। अच्छा, एक बात ये तो हमने देखा, एक बार एक चीज नॉर्मली सोच लेते हैं। अगर हम sin A निकालेंगे तो एक में आपको पता है sin A sin B sin C तीनों 30 60 और 90 है। तो sin के तीनों वैल्यू ले लो, sin 30 आ गया 1/2, sin 60 आ रहा है 3/2 और sin 90 आ रहा है 1 को हम 2/2 ले लेते हैं। तो फाइनली ये क्या चीज आ गया 3 + √3/2, क्योंकि यही चीज है 3 + √3/2। तो ये हमारा सिचुएशन हमने हर तरीके से दिखा दिया कि हमने जो चीज लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी पेज ऊपर करूंगा सारा गायब हो जाएगा। तो फाइनली क्या चीज है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC है, B वाला 30 है, A वाला 60 है, ये 1 है, √3 है, 2 है, C है। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों का सम कर लिया तो 1 + 2 यानी 3 + √3 जो कि आगे है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट, तो क्या पूछा था व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये वाला पार्ट हमारा 3 + √3 हम पैरामीटर कर देंगे। आगे क्या पूछा जा रहा है? बस एक ही क्वेश्चन था, मुझे लगे दो क्वेश्चन उसी का पार्ट है, वही हो जाएगा। ओके। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसी को कर रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट। तो ABC इज राइट एंगल, यस राइट एंगल ट्रायंगल है। द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP, यस एंगल थे हमारे 30 60 और 90, तो ये AP में है। तो क्या पूछा जा रहा है? तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। तो खूबसूरत, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 116 थे। आज हम 117 की कहानी पर
ये आप लोगों का सर्विंग हो जाएगा, आप जाओ। ओके, अब आगे मैं अरे नहीं, आ रहा हूँ। आप तो नहीं जा रहे। ओके, नहीं करना, इसको तोड़ो, इसको तोड़ लेते नहीं यहीं से। साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया, साइन ए बाय साइन ए 1 हो गया, 1 बाय साइन ए cos ए हो गया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना जिसमें साइन ए प्लस cos ए की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो 2 तो आएगा ही आएगा मिनिमम में, प्लस 1 एक और जोड़ लेंगे, 3 बन गया। कहां जाना, और उसके बाद 3 है ना ऑप्शन में 3 1 2 और ऊपर। हाँ, ये रहा है ना, ठीक है ना, वो तरीका से जोड़ लिया उसको। बढ़िया। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव किया था तो π/2 पे से आ रहा था, मैंने बैटर तो वही किया था, π/2 पे आ रहा था, उसको डेरिवेटिव कर देंगे, बच्चे अपना देख लेंगे उसको। sin a + cos a + 1 का डेरिवेटिव तो कर लो, करके देख सकते हैं। ये किया आपने ये अभी बैठे बैठे मैंने बहुत सोचा, इससे एक चीज क्लियर है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, मैं तो ऑप्शन की हेल्प ले रहा हूं। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं तीनों साइड को बराबर कर देता हूं, मतलब ए का रिप्लेसमेंट हम लोग के पास साइन रूल के हिसाब से होता है, sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b sin स्क्वायर c। 60 60 60 करके अगर इसमें बोलता हूं तो 3/4 3/4 3/4। अब देखना मैं तो गलत बताऊंगा ना, तो मुझे रोकना पड़ता। 9/4 अगर हम लोग इक्विलेटरल मान के चल रहे हैं, अगर हमें नहीं आता तो हम बाकी ऑप्शन को गलत पूछ लेते हैं। तो 3/4 3/4 3/4 बिकॉज़ a can be replaced with k sin a, b can be replaced with k sin b और c can be replaced with k sin c। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो sin स्क्वायर a sin स्क्वायर 60 3/4 3/4 लेफ्ट हैंड साइड। अगर मेरा रिलेशनशिप सही है तो ये भी इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा था क्योंकि sin 60 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √3/2 * √3/2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ √3/2 * √3/2, ये 3/4 हो गया, ये हो गया 3√3/4। तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू 9/4, तो इक्विलेटरल तो ये कैंसिल हो गया। आइसोसेलेस के लिए मेरे पास कोई वैलिड रीजन है नहीं कि मैं ट्रायंगल को प्रूव करूं। राइट एंगल के लिए मैं ये कर सकता हूं कि मैं तीनों एंगल को 30 60 90 लेके चेक कर सकता हूं। यहां पे सपोज हम लोग इसको 30 60 90 लेके sin 30 sin 60 sin 90 से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 1/4 3/4 और 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर जा रहे हैं, इसको 30 माना है, इसको 60 और इसको 90, और उधर अगर जा रहे हैं तो sin 30 की वैल्यू हो गई अपनी 1/2, sin 90 1 होता है। अब यहाँ पे √3 * √3/2, तो वो 3/4 और 1/2, 3/4 और 1/2 इधर आ गया, ये वैल्यू तो 2 हो गई। यहाँ से आ रहा है हम लोग का हाफ, और ये भी मैंने किया है √3 * b की जगह मैंने लिया था 60, तो 3/2 और c को 90 रखा था, तो वो बन जाएगा टोटल 3/4। जैसे हमें चाहिए 2, तो राइट एंगल ये कट हो गया। अभी आइसोसेलेस और स्केलिंग पे गाड़ी तो फंस जाएगी, स्केलिंग पे ही जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस अब दो साइड इक्वल करके मैं करूंगा एंगल लेके तो नहीं है, स्केलिंग इसका सही होगा। लेकिन फिर बात ये हो जाती है कि थर्ड पार्ट को करने के लिए हम लोग को ट्रायंगल का नेचर पता होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, इसको ये करके c = 8 एरिया का c अगर 8 रख ले, राइट एंगल को हमने रखा है तो 8 का आपके लॉजिक के हिसाब से 2 अगर वहां खींचते हैं तो हाफ * 2√3 के टर्म्स का ऑप्शन है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके। आप लोग जितने लोग भी पेपर दे चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ 5-7% क्वेश्चन जो हमने सॉल्व नहीं किए हैं उनके आंसर तुम लोगों को मिल जाएंगे कि हम लोग बनाने में लगे हुए हैं वहाँ पे। आप लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसा कि मैंने बोला था इंस्ट्रक्शन वीडियो में भी कि 5 से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसा वो एग्जामिनर तो देगा ही देगा जहाँ पे दिक्कत आएगी ही आएगी। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, एंड इवन वी कैन फाइंड सम क्वेश्चंस आर देयर जहाँ पे ऑप्शंस के साथ में टैली चीजें नहीं हो पा रही, तो उसको थोड़ा सा ये करना है। तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, सीधी सी बात है, कुछ 2-3 चीजें और मैं बता दूं। एक तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से एक तरह से रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, उनको ये भी कह सकता हूं कि इफ यू रियली फाइंड कि मैथ्स पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ है, अच्छा का यहाँ पे यार्डस्टिक तुम लोगों के लिए क्या है कि यू मस्ट बी डूइंग समवेयर अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन। अगर आपका इस पेपर में डन है देन आई एम श्योर क्या है मैथ्स की वजह से तुम लोग नॉट क्लियर का कोई चांस नहीं। यू मस्ट बी सेंडिंग विद द वीडियो फीडबैक्स, वो वीडियो फीडबैक आप जरूर भेजना, स्पेसिफिकली टेलिंग कि किस तरह से कोचिंग में तुम्हें हेल्प किया है इतना अच्छा करने में। क्योंकि मैंने जस्ट पूछा था 12:30 के ब्रेक में, जब तुम लोगों को ब्रेक मिला था तो ग्रुप में काफी बच्चों ने बोला है कि अच्छा गया है पेपर, अच्छा गया है। तो मैंने उनसे पूछा कितने क्वेश्चंस किए, तो आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे ने बुरा बोला है, सबने यही बोला है कि सर 60+, 65
किसी ने 58, मतलब वो एक 60s को टच करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। तो आई होप कि इस रेंज के साथ तुम क्लियर कर लोगे आराम से। अगर मैं इस पेपर का एक एनालिसिस दे दूं तो आई थिंक कि इस पेपर के अंदर में 50 क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग लगाएं तो 120 तुम्हारा कट ऑफ स्कोर में जाएगा। तो जो बच्चे 100 के नीचे स्कोर कर रहे हैं उनको तो मैं कह सकता हूँ कि यार उसके लिए तुम्हारा जीएटी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि अगर 120 पे मैथ्स का कट ऑफ अटक गया तो मैं 100 सिर्फ होप दे रहा हूँ तुम लोग को। होप मतलब उसके नीचे अगर आ रहा है तो इस पेपर में कोई चांस नहीं है। नाउ दैट फॉर जीएटी का पेपर तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 350 और 400, तब जाके तुम्हारा एक मिनिमम जो कट ऑफ रेंज है वो सक्सेसफुली तुम क्लियर कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशंस में कुछ आंसर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो देख सकते हो कि क्वेश्चंस करते समय कुछ जगह पे कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल थी, कई जगह ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन आ नहीं रहा है, कुछ में हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत दूर तक चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो फंस जा रहा है क्वेश्चन, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वैसे 5-7 क्वेश्चन थे जिसमें से कुछ तो हमने टैकल कर ही लिया ऑप्शंस के हिसाब से, और जो बच गए हैं वो हम लोग अभी फिनिश करने वाले हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन में एक चीज और थी कि 18th onwards we are going to start our NDA and CDS ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। तो जो भी बच्चे हैं इंटरेस्टेड वो अपना एडमिशन के लिए यहाँ पे गुड़गांव में भी गुड़गांव में yes. नए थे। As I told you earlier, we are opening up a center in Gurgaon also, and there we'll be running all NDA, CDS, SSB, all courses. So Shekhar sir, आप दोनों को thank you. आप इधर आ जाइए. So most of the answers have been given to you, और in a short while ये PDF में भी आपका वेबसाइट के ऊपर भी डल जाएगा, बाकी भी हो जाएगा, and you'll be able to. तो overall क्या लगता है सर आपको, मतलब कितना कैसे आना चाहिए, थोड़ा सा सर ओवरऑल बच्चों ने जो भी किया हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, मतलब बड़े प्यार से 70 क्वेश्चंस कोई भी बालक कर सकता है, बड़े प्यार से। आपको लगता है जिन बच्चों को आपने पढ़ाया वो करके आएंगे, वो कर सकते हैं आराम से। ओके, ठीक है, थैंक यू, एंड शेखर सर ऑल्सो थैंक यू टू यू, एंड बाकी आप देख लीजिए अभी, राइट। सो now we have now NDA, earlier we have given you the live solutions of English CDS, that's the paper 1. Now the general studies part of the paper, the second paper, which has also been solved by our teachers. I will call them now. They will section by section be giving you. So to begin with, we'll start with geography and history. तो भवानी सर प्लीज आ जाइए, क्वेश्चन पेपर आपके पास है? हाँ आ जाइए सर, राइट। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भवानी। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीडीएस का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो हो चुका है, और एग्जाम में जो ये पेपर आया है इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स तो पूछिए मत, जो हमने क्लास में कवर किया स्टैटिक पोर्शन वो आ गया है, जो हमने करंट अफेयर्स में पीडीएफ सेंड की बच्चों को वहां से क्वेश्चंस आ गए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने इजीली कर लिए होंगे जो भी कैवलियर के स्टूडेंट्स हैं। सर हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, आई होप आप लोगों ने बेटर किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री के टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, टोटल 19 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 19 13 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड 3 क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड 3 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। बट मैं ये कहना चाहूँगा, क्लास लेक्चर में जिस तरह मैं करवाया हूँ, सारे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन नहीं है, इन आउट ऑफ 19 16 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द क्लास लेक्चर नोट्स, और जो पॉइंट में लिखवाया था, जो स्टेटमेंट लिखाया था, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आपको आया है। तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बेटर किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। और बाकी अभी मैं सारा का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्वेश्चन पेपर से डीएस का आ गया है। सर हिस्ट्री का सेक्शन संभालेंगे, बाकी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स मैं भी आपको बताता हूँ, और सेकंड स्लॉट में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। सर शिक्षण डी, हमारे टेक्नीशियन साहब आइए प्लीज, तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, आप यहाँ यस सर।
सेक्शन डी जो हमारे पास हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन डी, सेट डी है बच्चों, सेट डी है ये, सेट डी तो आप है, उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। उस हिसाब से आप लोग मैच करेंगे। ये सेट डी से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही, ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और इंस्क्रिप्शंस क्या है? फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द कंगलाहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट। कंगलाहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट एक्चुअली connected with the Karnataka and the bank of river Bhima. So it is the situated at the bank of Bhima river. A, and second, the Emperor Ashoka image was found at the site. Again, and A statement is 1 is correct and statement 3 is correct. Emperor Ashoka image was found at the site because the Kangahalli sites, archaeological site actually from the Buddhism. ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट साइट। एक्चुअली इसे बुद्धिस्ट साइट कहा जाता है, बौद्ध धर्मों से संबंधित है। यानी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये गलत है। एंड आंसर स्टेटमेंट 1 and 3 answer C is correct. Next question number 30. Question number 30. Question number 30. Modern India. A simple question, easy question. Which one of the following viceroy was the first officially shipped? Officially shipped. What पर ध्यान देना? Officially shipped is the consul to Shimla in summer seasons. The answer A is correct. And John Lawrence, viceroy of India, shipped. He is the consul to Shimla in 1863. The answer is correct. Next, question number 14. Question number 14. Who among the following the author? Mukherjee Vidyapith. Mukherjee Vidyapith actually is Marathi poem. The Marathi poem, famous poem, Marathi poem, and life of the working classes, related with the life of the working classes, and the Marathi poem wrote by the Narayan Sarve. Answer is correct. Okay, and note Amol Palekar, Nara De, and the Narendra Jadhav. Next history question. Question number 15. Question number 15. History of modern India. Question number 15. Who among the following founded the Hindu Dharma Sabha? Hindu Dharma Sabha in the 19th century. Radhakant Dev, Raja Ram Mohan Rai, Dwarkanath Tagore, and Keshav Chandra Sen. And all were the social reformists. There are two types: the social reformist, revivalist, and the reformist. आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है क्लास में, मैं लेक्चर यहाँ दिया था। और हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो अच्छा किए होंगे, जो उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो मैंने बताया था ट्रेंड दो टाइप के सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, एक रिफॉर्मिस्ट थे, एक रिवाइवलिस्ट थे। जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, Raja Ram Mohan and Keshav Chandra Sen both were the reformist, and the Radhakant Dev and Dwarkanath Tagore was the revivalist. समझ रहे हो ना, दोनों में डिफरेंसेस होता है, रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। अब मैं कंसेप्चुअल हमेशा मुझे पढ़ाने का आदत है, उसी टाइप से क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, जो मैं क्लास में हमेशा कहता था, तो यही क्वेश्चन होगा, इसी टाइप से पढ़ो।
और उसका नतीजा आप सामने आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर अब देखते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी, केशव चंद्र सेन आल्सो बिलोंग टू ब्रह्म समाज, बट ड्यू टू केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का डिवीजन हुआ था 2 बार। तो एंड क्वेश्चंस क्या है, हिंदू धर्म सभा, ये राधाकांत देव, राधाकांत देव in 1830 at Calcutta and founded a Hindu Dharma Sabha. राधाकांत देव मैंने जैसे कहा आल्सो सोशल रिफॉर्मिस्ट। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 48, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है बेटा, एंड ट्रैवल मूवमेंट से, ट्रैवल रिवोल्ट से क्वेश्चन है। और हमेशा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं मेरा क्लास में करवाया हूं क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा, कोया एंड कोंडा बोथ द ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स। इतना तो जानते हो, कोया एंड कोंडा both the tribal revolts and chief rise against the local lord over a Mansabdar families। मनसबदार यानी कि मैं आपको मैं बता चुका हूं, जितने भी ट्राइबल्स रिवोल्ट हुआ है अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इसके बहुत सारे रीजंस मैं क्लास में लिखवाया था। इसके ट्राइबल्स रिवोल्ट्स के बहुत सारे रीजंस थे, तो कि उसके जो ओल्ड कस्टम्स उन्होंने रिमूव करना चाहे, उसके जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था उसको रिमूव करना चाहा, उसके जो झूम की खेती, खुदकट्टी सिस्टम जो इतने था जिसको उन्होंने बैंड किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कोया एंड कोंडा, तो कोया एंड कोंडा, तो कोया ईस्टर्न गोदावरी, कोया ईस्टर्न गोदावरी लोकेशन देख लो, उसी से आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे काफी क्लोज ऑप्शन पूछे गए। एंड द कोंडा, कोंडा उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, कोंडा ट्रैक्स। अब आंसर देखो, द रंपा रिबेलियन, द गुडेन अपराइजिंग्स, रंपा रिबेलियन 1922-1924 एंड द तेलंगाना आर्म स्ट्रगल 1946-1951। अब देखो दो रंपा रिबेलियंस है। द रंपा रिबेलियंस were the two phases of the Rampa rebellions. First, the Rampa rebellions 1879 and second 1920-24. The second Rampa rebellions, also known the Maniyanam rebellions, is also known the Maniyanam rebellions. मैं क्लास में ये भी बताया हुआ हूँ, लिखवाया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग चेक करना, मैं सारे अपने स्टूडेंट से बोल रहा हूँ ये। और फर्स्ट द रंपा rebellions 1879, कोया एंड कोंडा बिलोंग द फर्स्ट रंपा rebellions। आंसर ए इज करेक्ट। देखो बेटा, द गुडेन अपराइजिंग आल्सो बिलोंग टू रंपा। यस, 3 ऑप्शन इज वेरी क्लोज, 3 ऑप्शन इसमें काफी क्लोज है बेटा, ध्यान रखना। एंड द गुडेन अपराइजिंग आल्सो क्लोज टू द रंपा rebellion। बट क्वेश्चंस क्या है, कोया एंड कोंडा काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हल्के में जो लिए होंगे गलत कर रहे हैं, क्या होगा। तो ये क्या है, गुडेन अपराइजिंग इज आल्सो बिलोंग टू ट्राइब्स, बिलोंग टू रंपा, बट क्वेश्चन क्या है, कोया एंड कोंडा। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, but question number 45 is not a actual history question, is current affairs first connected with the history से क्वेश्चन जोड़ करके इसको पूछा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आ जाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स में इंटरफेयर कर देता हूं सर।
कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा क्योंकि रिलेटेड विद द हिस्ट्री क्वेश्चन, द थीम ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुदेव कुटुंबकम। क्लास में लिखवाया हुआ कौन से वर्ड कहां से लिया गया है। सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया मैं करवाया हूं क्लास में, और सारा कुछ ए टू जेड लिखवा दिया था। वसुदेव कुटुंबकम mean the one earth, one family, one futures, taken from the Maha Upanishad. Answer B is correct. Maha Upanishad, answer B is correct. Next question is question number 57. क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे सारे बच्चे अच्छे करके आए होंगे मुझे उम्मीद है। 57 कहाँ चला गया ये, 54 57 क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, द टाइटल ऑफ रायगढ़ केसरी and they are Gaj Kesari. No, what's that? Raigad Kesari and they are Gaj Kesari. Where they associated with the which one of the following dynasties? So, chalo. Raigad Kesari and they are Gaj Kesari actually belong to Kakatiya dynasty. Actually Telugu dynasty and actually belong to Kakatiya dynasty, and the 12th and 14th century, 12th to 14th century Kakatiya dynasty assumed the title, and Chola dynasty also, but option में Chola तो है ही नहीं है। Kakatiya, विजयनगर, गजपति and Rashtrakutas, and actually Kakatiya dynasties रानी रुद्रा देवी, अब एक नाम है रानी रुद्रा देवी, रानी रुद्रा देवी associated with the Raigad Kesari and the Dayagaj Kesari. Answer A is correct. Okay, next question, question number 58. Question number 58. Question number 58. Name the location of the musical inscriptions. याद करो बेटा, मैं क्लास में करवाया था, सारे इंस्क्रिप्शंस करवाया हूं। यदि आपने पढ़ा होगा तो इंस्क्रिप्शंस, और मैं करवाया हूं क्लास में इंस्क्रिप्शंस सोर्सेज में। नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शंस containing groups of the musical notes arranged of the benefit of his pupils by the king in the 7th and 8th centuries. कब का है? 7th and 8th centuries. 7th and 8th centuries. Inarium, Uttar Meru inscription, Shyamangala inscription, and Kudu Miyamalai inscriptions. देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन एक्चुअली बिलोंग टू चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी से है, चोला एम्पायर से रिलेटेड है यह, ठीक है। एंड सिरुमंगलम एक्चुअली द जैना इंस्क्रिप्शंस है यह। अब आते हैं इस पर डी ऑप्शन में, कुदू म्यामलाई इंस्क्रिप्शंस actually belong to Pandya inscriptions, belong to Pandya dynasties inscriptions, and Kudiya Nyamalai inscriptions devotee Lord Shiva से संबंधित है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इस टाइप से टेंपल भी है, लॉर्ड शिवा का डिवोटी है। एंड आंसर डी इज correct. Okay, question number 59. Question number 59. Question number 59. In the context of 18th century India, what was दस्तक? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन क्या होगा। मैं खुश हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि सारा क्वेश्चन लगभग कराया हुआ है।
Total 19 question, 16, 17 question. Tally from the class notes, class lecture. यही है केवलियर की खासियत। क्लास लेक्चर से मैंने आपको टैली करा दिया, अब आपको क्या चाहिए? ओके, एंड आई थिंक 10 तक मैंने बताया था, 10 तक क्या था आपको, एंड से 18th सेंचुरी 10 तक मैंने बताया था, 10 तक यानी कि मुगल एम्पेरर Persia provided फरमान to East India Company, British East India Company in 1717. Trade permit with the Bihar, Bengal, Orissa. Only duties 3,000 per annum. मैंने बताया था 10 तक फरमान है। फरमान मीन्स एक अधिकार पत्र है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहा गया। आंसर सी इज करेक्ट। इसमें थोड़ा क्लोज ऑप्शन क्या है, सिग्नेचर्स लोग समझ सकते हैं, लैंड डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। ये परमिट है, फरमान मीन्स परमिट। फरमान मतलब क्या हो जाता है? परमिट। तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये भी मॉडर्न इंडिया से ही है, और ये स्क्वाड में मैं क्लास में काफी बार यूज किया था, आप लोगों को बताया था। ददनी सिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी एसोसिएटेड विद द ददनी सिस्टम क्या था? ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आया हुआ है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप लोगों को भी पूछा है। ददनी प्रकार में क्या होता था? एडवांस पेमेंट होता था। एडवांस पेमेंट, या जो ब्रिटिशर्स थे, यानी खास करके ब्रिटिश प्लांटर्स के बागान मालिक जो थे, वह यहाँ के पेजेंट्स को एडवांस पैसा दिया करते थे, एडवांस पेमेंट कर देते, एडवांस पैसा देते। उनके पास पैसा नहीं होता था, तो अपने फेवर के अकॉर्डिंग वो उनसे वह खेती करवाते थे, उनसे कल्टीवेशन करवाते थे, यानी अपने फेवर में। तो क्या था? एडवांस पेमेंट था। तो यानी नॉट ए टेक्सटाइल प्रोडक्शन, नॉट ए वारफेयर, नॉट ए रेवेन्यू कलेक्शन। आंसर सी, यानी पेमेंट टू ऑफिशियल्स। इस प्रकार से ददनी होता जिसके बदले वह ग्रो करके उनको देते थे और वो उनको मिलता था, ददनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। सॉरी, और बड़ा हाँ, नंबर 69। ओके, इजी simple question. What India? Who among the following the author of the book बंदी जीवन? सभी ने पढ़ा भी होगा इसको, क्लास में कितने बार डिस्कशन है। सचिंद्र नाथ सन्याल wrote a book बंदी जीवन. He was member of HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, सीधा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 70। मॉडर्न इंडिया। इन द election held 1937, in which the province was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party. Okay, by the Indian Government Acts of 1935, by the government
Government of India Act 1935 in the 1937 provincial election, and the provincial elections held the 11 states, and Congress party got a victories out of 11 यानी 8 states। अब 8 states में कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट बना फॉर्म किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नोट टेबल 2, तो 2 स्टेट्स, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए मेरे ख्याल से, पंजाब सिंध के साथ साथ बंगाल भी होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एंड बंगाल, पंजाब में मुस्लिम लीग एंड बंगाल मुस्लिम लीग, पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म किया, और बंगाल में भी उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म किया था, पर इसमें ऑप्शन बंगाल तो नहीं है। उसके बाद असम में गवर्नमेंट फॉर्म किया, मद्रास में भी किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में भी किया, तो आंसर ए इज करेक्ट, पंजाब एंड सिंध, राइट, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर forming the Indian National Army. Subhash Chandra Bose recruited the large number of the soldiers from the Indian prisoners of war and Japanese camp, introduced the women's detachment name after the Rani of Jhansi, यानी आंसर 1, आंसर यानी कि both, यानी कि A and B both is correct। Next question number 72, which are the following pairs denoting the various forms of bhakti? देखो भक्ति मूवमेंट्स, यार मेरावलिस्टी का क्वेश्चन है, मेरावल इंडिया का क्वेश्चन है भक्ति, मैं भक्ति एंड सूफी में क्लास में करवाया हूं भक्ति क्वेश्चन, शगुन, निर्गुण, अलवारसन एंड नैनारसन, और क्लास में जब इस प्रकार का मैं लेक्चर दे रहा था कुछ बच्चे समझ रहे थे इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होता है। देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल 100% सही था, इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है, इस टाइप से भी होता है, यानी कि शगुन, निर्गुण एंड नैनार्स। अब क्वेश्चन है भक्ति इज नॉट करेक्ट, नोट, शगुन बिलीव इन द गॉड्स विद द एट्रिब्यूट्स, निर्गुण बिलीव द गॉड्स विदाउट द एट्रिब्यूट्स, ये दोनों तो है सही, एंड Nainars believe in the devotion of Lord Shiva. Alawars believe in the devotion of Shakti, not Shakti. Alawars believe in the Vaishnavism. Christian related Vaishnavism. Bhagavatism, Vaishnavism. Answer C is correct. Alawar not take devotion of the Shakti, yet devotion of a वैष्णविज्म। मैंने बताया था कि अलवार और नैनार के बीच वहां पर डिस्प्यूट भी था, कंफ्लिक्ट भी था, दोनों संत में होता था, लेकर के आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओरिजिन हुआ शंकराचार्य का। इसमें शंकराचार्य ने इनको इन समस्या का सॉल्व भी किया है। तो चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन आंसर यहाँ पर सी इज करेक्ट, यानी नोट करेक्टली। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 90, सेट दी क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, modern state, who among the following political leaders suggested the dissolution of the INC, Indian National Congress, as the political organization and the replacement by the लोक सेवक संघ? आज काफी इस पर चर्चा है, डिस्कशन है, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था ये बात कि कांग्रेस पार्टी को एक एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी अचीवमेंट्स पूरा कर चुका है, जो उसका लक्ष्य था, जिसके लिए कांग्रेस बनाया गया था। The main objectivity of the
Congress formation. What are the main objective of the Congress formation? फ्रीडम इंडिया, भारत की आज़ादी के लिए बनाया। इसीलिए बाद में 1948 में गांधी जी सजेस्ट किया था, महात्मा गांधी ने, कि एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको समाप्त करके इसको लोक सेवक संघ बना दिया जाए, यानी आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। The kingship projected by the Kushana rulers, काफी conceptual question है। Kushana rulers is the best evidence through the which of the following their identification with the, that is the grants, the religious institutions, inscriptional relics and the coins and the sculptures. Answer, they are identified with the, that is A answer is the correct. Note a grants, इंस्क्रिप्शन पेनल्टीज नहीं है, कॉइंस एंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, या स्कॉलर कॉइंस के लिए बल्कि ये कैलेंडर्स वगैरह के लिए शम्बत के लिए सक्षमत के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। मतलब फॉलोइंग रेफर्ड एज टू द theories in ancient India। देखो ये भी कल्चर से क्वेश्चन है और बुद्धिज्म से क्वेश्चन है, मैं करवाया हूँ। theories and ancient India, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस आपको जानना पड़ेगा बेटा, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। theories मीन्स ऑफ द वर्ड ऑफ theories, यदि theories वर्ड का मीनिंग आप जान जाओगे तो आंसर आपके सामने है। और क्लास में मैं इसी टाइप से पढ़ाया हूँ, लेक्चर दिया हूँ। यदि उस वर्ड का आप मीनिंग निकालना जानते हो, शब्द का मीनिंग जान दिया, तो आपका आंसर आपके सामने है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो मैंने बताया थेरीज, मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ थेरीज एल्डर। इस वर्ड का मतलब क्या है? एल्डर। इस शब्द का मतलब क्या होता है? एल्डर। एल्डर यानी एल्डर नोन्स इन बुद्धिज्म। आंसर सीधा आप देखो, यदि वर्ड का मीनिंग आपने जान लिया तो आपके सामने आंसर सीधे आ गया। यही है टेक्निक, यही है ट्रिक्स। मैंने कहा था नोट हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग करो, स्मार्ट वर्क करो, आंसर बना लोगे आप। ठीक है, एंड आंसर बी इज करेक्ट, एल्डर नोन्स बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, which member of the servants of society founded the Seva Samiti at the Allahabad in 1914? अरे ये तो सीधा क्वेश्चन है। हृदयनाथ कुंजरू, एक्चुअली हृदयनाथ कुंजरू मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एंड एक्चुअली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले, जो आप लोग जानते ही होंगे। उन्हीं के एक मेंबर थे जिन्होंने इलाहाबाद में 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने he was founded a Seva Samiti at Allahabad. Okay, and later Hridaynath Kunjuru became a member of the Constitutional Assembly, हमारे संविधान सभा के मेंबर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सारा करवाया हो। एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो सिंध वार, सारा करवाया हुआ क्लास में। जब इस प्रकार क्लास करवा रहा था मैं, तो कुछ बच्चे को लग रहा था इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन देखो क्वेश्चन आए। तो मेरा जो अपना अनुभव है उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं क्लास में देता हूँ कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। यूपीएससी देख लो हमेशा क्वेश्चन चेंज कर रहा है। आप पीछे क्वेश्चन देखो, जैसे कि सितंबर में हमने क्वेश्चन देखा था, सितंबर वाले जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें 13 क्वेश्चन एंशिएंट से था। इस बार 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 19 फ्रॉम द मॉडर्न से हो गया उल्टा। तो किसी पार्ट को हम लोग अंडरएस्टिमेट नहीं करते, सभी पार्ट से क्वेश्चन होता ही है, और उसी पैटर्न से हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं। क्लास में मैं लेक्चर भी देता हूँ। देखो वही क्वेश्चन है, द एंग्लो मराठा वार कंक्लूडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। इस ट्रीटी के द्वारा क्या कर रहे हो यार, क्यों घुमा दिया?
बोलोगे नहीं, ठीक है, ओके। एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर concluded by which one of the following treaties? 99। एंड आप लोग बांटते हैं ट्रीटी ऑफ सालवाई, तो मैं करवा करता हूं किस ट्रीटी के द्वारा कौन सा बेटर, ट्रीटी ऑफ सालवाई एंड ट्रीटी ऑफ सालवाई 17th May 1782 हुआ था, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, नेम द battle in which Travancore king defeated the Dutch in 1741। ये भी मेरा डिस्कस किया हुआ क्लास में, ये भी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया था। एंड द किंग थे मार्तंड वर्मा, एंड मार्तंड वर्मा 10th अगस्त 1741, ये बेटा है 10th ऑफ अगस्त 1741, एंड ही इस बेटल को कहता है बेटल ऑफ चोलाचेर, यानी आंसर बी इज करेक्ट, इसमें उन्होंने डचों को डिफीट किया, ओके। तो एंड हिस्ट्री क्वेश्चन completed now, and please come join ज्योग्राफी सर, आप आ रहे हैं ज्योग्राफी के सर, तो ज्योग्राफी के सर से आप लोग डिस्कशन सुनिए, प्लीज ज्वाइन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे सर ने आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए, और जैसा कि सर ने कहा कि सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है, उसके बावजूद आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फॉल्ट किसका है। एकेडमी की तरफ से सारी चीजें कवर करवाई जा रही हैं, और अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखना है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। थैंक यू सर। राजा सर, एक बार इनको क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंचा दीजिए। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके आपके सामने रखा गया है। तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉल्केनोज आर करेक्ट? देखिए, पहला स्टेटमेंट है द स्ट्रेंथ ऑफ अ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स। ये बिल्कुल ठीक बात है, वॉल्केनो के स्ट्रेंथ को वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स के साथ ही मेजर किया जाता है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखिए, दोनों के दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये दोनों ही कंट्रीज, अगर आइसलैंड की बात करूं, अराउंड 60 और 65 मिलियन ईयर्स अगो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। और रही बात फिलीपींस की, तो ये भी अराउंड 50 to 55 मिलियन ईयर्स अगो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। तो ये स्टेटमेंट भी, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। देखिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जब हम सॉइल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें ब्लैक सॉइल हमने डिस्कस की थी, और ब्लैक सॉइल वो लावा के डिपोजिशन और उसके सॉलिडिफिकेशन से ही बनती है। हमारे इंडिया में, व्हेन इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, व्हेन वी वर कनेक्टेड टू साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ कई सारे वॉल्केनोज हुआ करते थे। वो वॉल्केनोज जब इरप्ट हुए और लावा जब डिपॉजिट हुआ और सॉलिडिफाई हुआ, तो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, वहां पर ये लावा डिपॉजिट हुआ, और इसी से कन्वर्ट होके बनी है हमारी ब्लैक सॉइल विच इज सुटेबल फॉर द क्रॉप ऑफ कॉटन। तो volcanic soils are rich, deep and fertile and allow intensive agriculture to take place.
बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली आंसर जो है वो आपका होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी में, सेट डी में थर्ड क्वेश्चन है, क्लाउड से रिलेटेड है। क्लाउड से रिलेटेड है, क्लास में क्लाउड्स का टॉपिक कवर हुआ है, और जो ऑप्शन सही आंसर है वो ऑप्शन भी कवर हुआ है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड टाइप। यहां पर एक क्लाउड का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू, और तीनों स्टेटमेंट्स में से अगर एक आधा कोई स्टेटमेंट भी आपको मालूम है तो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन। जब हम लोगों ने साइक्लोन का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तो हीट रेडिएट होती है। हीट जैसी रेडिएट होगी तो आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर राइज कर जाती है, और राइज करने के बाद जब वो राइज करती है तो ऊपर टेम्परेचर होता है कम। सब लोगों ने नॉर्मल लैब रेट पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट। तो आप सबको मालूम है टेम्परेचर घटता है हाइट बढ़ने के साथ, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। इसी को बोलता है कन्वेक्शन की हीट जो है नीचे से रेडिएट होती है और ऊपर जाते जाते कम होने लगती है क्योंकि टेम्परेचर ऊपर कम है। तो दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम साइक्लोन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक टाइप ऑफ क्लाउड, वो इसी तरह के प्रोसेस से बन रहे थे। आपको नाम भी शायद याद आ गया होगा। सेकंड स्टेटमेंट है ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग। देखिए होता क्या है कि जब साइक्लोन्स रहते हैं और उसमें जिस क्लाउड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस। वो जो क्लाउड्स हैं वो हेल यानी कि जो हमारे ओला पत्थर है, उसके अलावा थंडर यानी जो गर्जना है, उसके अलावा लाइटनिंग यानी बिजली, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। साथ ही साथ इनके शेप के बारे में बात की गई कि शेप जो है दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप स्टार्स ऑफन एनविल टॉप्स। अब ये जो शेप है कुछ इस तरह का होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का कि ये वर्टिकली थोड़े एक्सपैंडेड होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फिर इस तरह से ये शेप एक्वायर करते हैं और ये एनविल टॉप इस तरह का कुछ बन जाता है ऊपर की तरफ। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन उस क्लाउड टाइप का जो आपसे पूछा जा रहा है। और जो आंसर है, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, तो देखिए हमारा जो सही आंसर है वो है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस। देखिए मैंने आपको एग्जाम में जाने से पहले भी बताया था कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जब हमने पढ़ा था, मैंने ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ऐसे ही बताया था जैसे कि एग्जाम में आया हुआ है, और सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं, जितने सारे ऑप्शंस आए वो भी हमने किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी का अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा सिंपल क्वेश्चन, Which one of the following Indian states has the longest coastline? मैंने आपको बताया था कि अगर ये इंडिया का मैप है भाई लोग, ये इंडिया का मैप है हमारे पास, तो यहां पर इस तरह से ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। और देखिए गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये करीबन 9 स्टेट्स हमारी कोस्टल बाउंड्री पर लाई करते हैं। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि which one of the following states has the maximum length of coastal boundary, और वही क्वेश्चन आया है, which one of the following states has the longest coastline, वही क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि गुजरात जो है पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र। ये देखिए सारे के सारे ऑप्शंस आए हुए हैं एंड द गुजरात हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, और अगर आपने क्लास को, नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे।
एक अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर कोर्ट से आया है। जितने भी कैवेलियर के स्टूडेंट्स हैं इन सारे क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर जाएंगे क्योंकि हमने क्लास में कवर किया है। ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए आप। सिक्स्थ क्वेश्चन में मेजर कोर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों ने 13 मेजर कोर्ट्स पढ़े थे और 13 मेजर कोर्ट्स को मैंने उनके फीचर्स के साथ पढ़ाया था और एग्जैक्टली वही फीचर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंड ऑफ विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, तो पोर्ट कहो हार्बर कहो एक ही बात है। और हमने पढ़ा था कि ये डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड पोर्ट है। मैंने दो फीचर्स बताए थे, डीपेस्ट और लैंडलॉक्ड। तो यहाँ पे बोला है कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। भाई लोग कांडला पोर्ट हमने सबसे पहला पोर्ट कवर किया था, मेजर पोर्ट गुजरात में, तो मैंने बताया था इसका नाम चेंज हो चुका है, पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट और ये टाइडल पोर्ट है क्योंकि यहाँ पे जो नेविगेशन है इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी टाइड्स, तो इसी वजह से ये टाइडल पोर्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा फैक्चुअल है। एक रिपोर्ट आती है हमारी बाइनियली, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। तो हमारी जो ये रिपोर्ट है इसमें हर 2 साल में फॉरेस्ट कवर को एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई कितना फॉरेस्ट कवर है हमारा, कौन से स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अगर आपने इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा है तो आप शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मैं मानूंगा ये क्वेश्चन ट्रिकी है पर फिर भी इसका आंसर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन है देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 and 2021, however there is a decrease in forest cover area of India during the same period in। तो बेसिक बात है कि पूछा जा रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन। आंसर है बी, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो कि कैनोपी डेंसिटी रखते हैं बिटवीन 40 to 70%। तो ये हमारा सही आंसर है। अब देखिए इतने क्वेश्चन ज्योग्राफी के हमारे सीधे सीधे क्लास से और नोट से आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब ये देखिए, आप इसे करंट अफेयर्स कहें या आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करने की बात कहें, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टॉपिक हमें लगेगा कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, हमें इसके बारे में काफी कुछ पता है, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पैरा से ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और सीधा क्वेश्चन आ गया है। तो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किसी ने उस डॉक्यूमेंट के थ्रू कवर किया है या फिर बेसिक नॉलेज भी है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट है, at least 50% of the learners through school and higher education system to get exposure to vocational education by 2025। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एज इट इज लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। फिर अगला ही स्टेटमेंट उस पैरा में ये है जो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, सेकेंडरी स्कूल शुड कोलैबोरेट विद ITIs, पॉलिटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी स्कूल जो है वो कोलैबोरेट करेंगे ITIs के साथ, पॉलिटेक्निक्स के साथ एंड लोकल इंडस्ट्रीज के साथ। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय NGOs, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये हम NGOs के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो सही आंसर हमारा होगा 1 and 2, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन देख भी सकते हैं आप, 1 and 2, बिल्कुल 1 and 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और
कैवलियर के स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को या करंट अफेयर से रिलेटेड बाकी भी जितने क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि एक पीडीएफ इनके साथ शेयर की गई थी और ये मान के चलिए 90 to 95% क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं करंट अफेयर्स के। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और पढ़ा रहा है बिल्कुल वैसा ही कुछ आएगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी के पेपर को, पर फिर भी एक सेट पैटर्न है यूपीएससी जैसे फॉलो करती है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या स्टैटिक जीके का हो। तो हमारे जो फैकल्टी है वो उस चीज को एनालाइज करते हुए बच्चों को कंटेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे बच्चे आज खुश होंगे कि करंट अफेयर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चन आया है। Which of the following sets of states is at the bottom of the composite SDG? SDG का फुल फॉर्म है Sustainable Development Goal India Index 2020-21 as per the नीति आयोग। अब देखिए इसमें सीधे सीधे आपको बताना है कि कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं किया या उन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है। वो है असम, झारखंड और बिहार, इन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है। तो असम, झारखंड, बिहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो हमारा पॉलिटी का है, पॉलिटी वाले सेक्शन में देख लेंगे इसको। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो काफी स्टैटिक सा है। अगर आपने कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ी है तो शायद थोड़ा बहुत आपको इस बारे में मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये काफी फेमस एक मूवमेंट था। देखिए, who among the following was not in the core leadership of the non-aligned movement NAM in its formative phase? देखिए NAM non-aligned movement बेसिकली जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो कई सारी कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर था कि वो किस कंट्री को सपोर्ट करें, यूएसए को सपोर्ट करें या फिर सोवियत यूनियन को। तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने और उनके साथ कुछ और कंट्रीज के लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए, वी नीड टू बी न्यूट्रल, हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी एक कंट्री का साथ देंगे तो दूसरी कंट्री के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इस कोर लीडरशिप का पार्ट थे ही, तो सी जो जवाहरलाल नेहरू है वो तो थे ही, उसके अलावा ये क्वामे क्रुमा ये घाना के लीडर हुआ करते थे, ये भी इसके मेंबर थे, और नासिर गमल अब्देल नासिर ये इजिप्ट के थे, ये भी इसमें शामिल थे। एक यूगोस्लाविया के एक लीडर हुआ करते थे टीटो, वो भी इसका पार्ट थे। तो 4 लोग थे, पर ये जो फाइडेल कैस्ट्रो है ये इसका पार्ट नहीं थे। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कौन मेंबर नहीं था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो ऑप्शन डी फाइडेल कैस्ट्रो ये नहीं थे, ये क्यूबा के लीडर हुआ करते थे उस जमाने में, और इन्होंने एनएएम को साइन नहीं किया, ये कोर लीडरशिप का पार्ट नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है इट इज डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी, वन लाइनर, अगेन पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 3 मार्च 2021 decided to celebrate the year 2023 as the international year of, तो देखिए ये आंसर है सी, मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये करंट अफेयर से मान लीजिए, या फिर आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है, या फिर अगर आपने न्यूज वगैरह आपने देखी है तो आपको पता होगा, क्रिकेट के फैन है तो और भी अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कार्तिक मयप्पन who secured hat-trick in the ICC Men's T20 World Cup 2022 represents जिम्बाब्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, नामीबिया। देखिए है तो इंडियन ओरिजिन के खिलाड़ी,
पर ये खेलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए, यूएई क्रिकेट टीम के लिए। तो आंसर है बी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये स्टैटिक है, और अगर किसी ने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पढ़ी हैं या फिर कुछ ट्रीटीज वगैरह पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं आता था तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने छोड़ दिया होगा, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप लोग। फिर भी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है which one of the following statements about the Wassenaar arrangement is not correct। देखिए नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट में से वासेनार अरेंजमेंट के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन द अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है। फिलहाल 42 कंट्रीज इस अरेंजमेंट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इट इज फॉर्म्ड प्राइमरीली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर। ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनके साथ ये डील करता है। कन्वेंशनल वेपन्स का मतलब है कि हमारे जो स्मॉल आर्म्स हैं या फिर हमारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर हमारे टैंक्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो कन्वेंशनल है उनके साथ डील करते हैं, ना कि न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर के साथ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर तो आपके सामने आ ही गया है। बाकी इंडिया इज द करंट चेयरमैन ऑफ द अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है। इंडिया को फिलहाल इसकी मेंबरशिप मिली हुई है, साथ ही साथ चेयरमैनशिप भी। इंडिया ज्वाइन द अरेंजमेंट इन द ईयर 2017, बिल्कुल दिसंबर 2017 में इंडिया ने इस अरेंजमेंट को ज्वाइन किया था। तो आंसर है बी, ये प्राइमरीली न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर के साथ डील नहीं करता। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ये स्टैटिक है। सब लोगों ने पीटी उषा का नाम सुना है, हमारी द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है उन्हें, और उन्हीं से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और हाल ही में उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है, और उन्हें हमारी जो खेल से रिलेटेड एक फेडरेशन है उनका चेयरपर्सन भी बनाया गया है। तो इसलिए न्यूज में है। देखिए यूपीएससी ऐसे ही पर्सनालिटीज को यहां पर क्वेश्चन में लेके आएगी जो न्यूज में रहे होंगे। तो यहां पर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पायली एक्सप्रेस। तो हिमा दास, द्युति चंद, पीटी उषा, शाइनी अब्राहम, ये सब एथलीट्स हैं, ये सब एथलीट्स हैं। और हिमा दास की बात करें, हिमा दास को सभी जानते होंगे, काफी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने रिसेंट ईयर्स में। द्युति चंद भी एथलीट है। पीटी उषा तो हमारी काफी पुरानी, जैसे पीटी उषा वैसे ही हमारी काफी पुरानी एथलीट है शाइनी अब्राहम। तो देखिए पीटी उषा का ही नाम है पायली एक्सप्रेस। हिमा दास को एक निकनेम दिया जाता है दिहिंग एक्सप्रेस। तो शायद आने वाले एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए आपसे दिहिंग एक्सप्रेस, क्योंकि असम को बिलोंग करती है तो इन्हें कहा जाता है दिहिंग एक्सप्रेस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये है हमारा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, पर यहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न कैसे चेंज किया है? जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पूछा गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यूज में था, पीडीएफ में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था इस अवार्ड के बारे में भी। अगर वो पीडीएफ फॉलो किए, कैवलियर के स्टूडेंट्स मैं मानता हूं कि उन्होंने वो पीडीएफ फॉलो की है, और जैसा कि हमारे पास फीडबैक्स आ रहे हैं कि उन्होंने करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 with list 2 relating to साहित्य अकेडमी अवार्ड winners 2022 and select the correct answer using the code given below the list। भाई लोग लिस्ट 1 में टाइटल दिया हुआ है बुक का और सामने ऑथर का नाम दिया हुआ है, हमें बस मैच करना है। तो देखिए भूल सत्य ये शॉर्ट स्टोरीज हैं और इनको लिखा है मनोज कुमार गोस्वामी ने। तो ए के साथ 4, अब ए के साथ अगर 4 है, एक बार देखते हैं, अटेम्प्ट करके देखते हैं यहीं से। अगर ए के साथ 4 मैच हो रहा है तो ए के साथ 4 तो जो है वो सी ऑप्शन में मिलेगा आपको, यानी ए और बी को पूरी तरह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम डी भी देखें तो डी में भी 4 है ए के साथ। तो देखिए सी और डी में से कोई एक होगा, ए और बी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है।
फिर अगर हम बात करें कि दूसरी बुक्स किसने लिखी है, तो देखिए तुमड़ी के शब्द पोएट्री है, बद्री नारायण ने इसको लिखा है, तुमड़ी के शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ए के साथ 4, बी के साथ 3। अब अगर ए के साथ 4, बी के साथ 3, तो मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए ए के साथ 4, बी के साथ 3 मैच हो गया जी। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू ज्योग्राफी। कोई कैवेलियर का स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि हमें ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए गए हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हम थोड़ा कम ही फोकस करते हैं, फिर भी हमने बताया कि भैया यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको इंडिया के स्टेट्स की लोकेशंस, उनकी कैपिटल्स वो पढ़ के जानी, क्योंकि हर साल यूपीएससी का ये क्वेश्चन रहता है कि वो बाउंड्री से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, किस स्टेट की बाउंड्री से कितने स्टेट्स की बाउंड्रीज, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर ये हो तभी सकता है जब आपने मैप को कवर किया हो इंडिया के थॉरोली। देखिए क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विद तेलंगाना। अब अगर तेलंगाना की लोकेशन ही नहीं मालूम तो मैं गारंटी देता हूं आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अगर आप इंडिया के मैप को सिर्फ रफली देख के गए तो कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। आप सबको मालूम है इस तरह का कुछ शेप है हमारे तेलंगाना का, और पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तेलंगाना से एक तरफ तो लगता है छत्तीसगढ़, एक तरफ लगता है महाराष्ट्र, एक तरफ है कर्नाटक और दूसरी तरफ है फिर आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये करेक्ट आंसर है। तो जब तक मैप नहीं करोगे इंडियन ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और कैवेलियर के स्टूडेंट्स के साथ जितनी भी हमने इंडियन ज्योग्राफी की है, हमने सारी की सारी इंडियन ज्योग्राफी मैप्स के थ्रू की है। और सिर्फ मैं यहां क्लेम करूं ये बात सही नहीं है, स्टूडेंट्स खुद बोलेंगे कि उन्होंने मैप के थ्रू यहां पर इंडियन ज्योग्राफी कवर किया और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। देखिए यहां पर अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगेन लेक्स का क्वेश्चन है। जो भी कैवेलियर के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे। हमने एक टॉपिक किया था लेक्स का, पूरा लेक्स का एक टॉपिक किया है, इंपॉर्टेंट लेक्स को मार्क कर करके हमने पढ़ा है उसके फीचर्स के साथ। तुम्हारे क्लास नोट्स में भी लेक्स है और वहीं से एक क्वेश्चन आ गया। देखो, Rani told her friends that last year she did boating in 4 different lakes, namely Loktak, Barapani, Kolleru, Pulikat। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं कि मैंने 12 पानी इनको नहीं पढ़ा है। ये मेघालय में है, उमियम लेक अभी से बोलते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ाई, पर मैंने 3 लेक्स पढ़ाई। लोकटक मणिपुर में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कोलेरू हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ी, और कोलेरू के नीचे ही पुलिकट, जिसके बैंक पर श्रीहरिकोटा आइलैंड है, विच इज फेमस फॉर लॉन्चिंग दी सैटेलाइट्स। इसरो का स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो देखिए लोकटक मणिपुर में है, कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। अगर 12 पानी आपको नहीं भी मालूम तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप कॉम्बिनेशन देखिए मणिपुर और आंध्र प्रदेश का, मणिपुर और आंध्र प्रदेश का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा ऑप्शन डी में। 12 पानी नहीं भी पता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 3 लेक्स हमने पढ़ी। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, और आपको जब इसी तरीके से पढ़ाया गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है लिटरेसी से रिलेटेड, कि लिटरेसी किसे कहते हैं या लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये देखिए।
According to the census 2011, which of the following statements is are correct? अब अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम कि इंडिया में लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं, तो शायद आपकी तैयारी सही दिशा में जा नहीं रही। देखिए, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेट आदमी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। अब ये तो सही बात है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ पढ़ सकता है, वो लिख नहीं सकता, तो वो लिटरेट नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर वो सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं पा रहा है, तो वो लिटरेट नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है वो ठीक है, और हमसे पूछा भी यही जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अ पर्सन एज 7 years and above who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। यही तो डेफिनेशन है लिटरेसी का या लिटरेट पर्सन का, कि अगर कोई इंसान, अगर कोई पर्सन 7 साल या 7 साल से अधिक उम्र का है, तो उसके पास अगर ये कंडीशन है कि वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है और किसी एक लैंग्वेज में समझ भी सकता है, तो वो हमारे लिए लिटरेट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। आंसर अब आपको पता ही है, बोथ 1 and 2। 38 का जो आंसर है वो है सी। अब देखिए, कैवलियर के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो को तो समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हमारा चैप्टर था इंडियन ज्योग्राफी में, और प्योरली एक फैक्ट हमने कवर किया था कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। हमने अच्छे से कवर किया था, उसके और 2-3 एस्पेक्ट्स देखे थे। और अब आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं? इजीली हो सकता है, अगर अगेन इंडिया के मैप की जरूरत पड़ेगी आपको। और मैंने बार बार बोला है कि मैप देखो, कई सारे लोगों ने फॉलो किया उस ऑर्डर को कह लो या फिर ये कह लो कि उस सजेशन को कह लो कि मैथ्स बच्चों ने पढ़ा और उन्होंने उसको फॉलो किया और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से पास होती है 8 इंडियन स्टेट से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है ऐसा लैटिट्यूड जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहां पर आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास होती है, राजस्थान से पास होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल 8 इंडियन स्टेट्स है जहां से ये पास हो रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन देखेंगे आप, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। The Tropic of Cancer passes through how many coastal and landlocked states of India, respectively? सीधी बात है कि टोटल 8 स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ कोस्टल हैं और कुछ लैंडलॉक्ड हैं। अब 8 स्टेट्स के नाम तो आपको मालूम है। अब इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपने ये क्वेश्चन सही। देखिए, गुजरात और वेस्ट बंगाल, गुजरात और वेस्ट बंगाल यही 2 स्टेट्स हैं जो कोस्टल हैं, बाकी तो सारे लैंडलॉक्ड हैं। भाई टोटल 8 स्टेट्स हैं, 2 कोस्टल है तो बच गए 6। तो 2 and 6 आंसर है बी, आंसर है बी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आराम से आपने कर लिया होगा। अब देखिए करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन है लगातार, 42 and 43, 42 and 43। देखिए भाई, which country won the FIFA World Cup men for maximum number of times? भाई देखिए, या तो आप क्रिकेट के फैन हैं या फिर फुटबॉल के। फुटबॉल के अगर फैन हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। Which country won the FIFA World Cup men for maximum number of times? अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन। भाई लोग सही आंसर है ब्राजील। 5 बार इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप उठाया है, जीता है। 1958 में, फिर 62 में, फिर 70 में, फिर 1994 में और फिर 2002 में। 5 बार सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप को इन्होंने जीता है। तो ब्राजील वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव 43। अगेन करंट अफेयर से एक फेमस नोवेल है सिटी ऑफ जॉय, उसके ऑथर का नाम पूछा है। और सिटी ऑफ जॉय
काफी फेमस नॉवल है, काफी फेमिलियर होते हैं स्टूडेंट्स इस नॉवल से, तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने कर लिया होगा। डोमिनिक लेपियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस स्लॉट में, जैसे कि अगर नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम प्राइमरीली डील कर रहे हैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट स्लॉट जो होगा उसमें हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के जो हमारे सर थे मिस्टर अजीत झा, उन्होंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से बता दूं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 45। देखिए सर ने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर फिर भी क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड है तो मेरी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दूं। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम। देखिए वसुधैव कुटुंबकम मतलब भी लिखा हुआ है इसका, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये हमारे किस एंशिएंट लिटरेचर से पिक की गई है? देखिए ऑप्शन है महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेद, स्मृति। तो जैसा सर ने आपको बताया था बिल्कुल सही है, महाउपनिषद। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव 46 अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और फिर से पीडीएफ का क्वेश्चन है। ये देखिए 46 इंपॉर्टेंट, सारी की सारी जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो पीडीएफ में दी गई थी, और जिस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है लगभग वैसे ही लैंग्वेज में दी गई थी, तो क्वेश्चन समझने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए द 16th edition of the Indo-Nepal annual joint training exercise in jungle warfare and counter-terrorism operations was held in December 2022 at Nepal Army Battle School, Sarjhandi. What is the name of this exercise? देखिए नेपाल के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में रखा गया है, पहले से ही है, और ये है सूर्य किरण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास 47 नंबर जो क्वेश्चन है, 47 देखिए हमारे सीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही बैचेस में हमने इस टॉपिक को कवर किया है, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम लाइन सब कुछ पढ़ा था, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है टाइम कैलकुलेशन का। हमने टाइम कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी देखा है। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, इफ इट इज 10 AM एट ग्रीनविच मीन टाइम, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप सबको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो जनरली स्फेरिकल इन शेप है, एग्जैक्ट शेप तो जियोइड है, पर जनरली हम बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो अगर कोई भी गोल चीज है तो वो कंप्लीट एंगल के साथ देखी जाती है 360 डिग्री, और आपको सबको मालूम है कि हमारी अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए वी हैव कोऑर्डिनेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। अब आप सब जानते हैं कि अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, इट मींस ये हमारे अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है विच इज कॉल्ड इक्वेटर। अब इक्वेटर के पैरेलल दोनों ही हेमिस्फीयर्स में कुछ लाइंस बनी हुई हैं जिन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये पैरेलल लाइंस हैं, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए वी हैव दीज लाइंस व्हिच आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ कनेक्ट करते हैं, और अर्थ हमारी स्फेरिकल है नेचर में, शेप में। तो देखिए होता क्या है, अगर अर्थ स्फेरिकल है, इसका मतलब है कि 360 डिग्री की है वो, और हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है, हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गए 360। अब बात यह है कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। भाई 24 घंटे का टाइम लगता है अर्थ को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में। वैसे तो एग्जैक्टली 23 आवर्स 56 मिनट्स का टाइम लगता है, पर कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए वी कैन से कि भाई 24 आवर्स लगते हैं। तो अगर अर्थ को वेस्ट टू ईस्ट घूमने में 24 आवर्स लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई?
अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लग रहा है। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स। भाई 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 360 डिग्री इज इक्वल टू 1440 मिनट्स, क्योंकि 24 घंटे में 1440 मिनट्स होता है। अब अगर हम देखें कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो हम देखेंगे कि 1440 को हम डिवाइड कर देंगे 360 से, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये आएगी करीबन 4 मिनट। यानी अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन, या फिर आप इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोल सकते हैं। अब देखिए ग्रीनविच लाइन पर जो भी टाइम है उसी के रेस्पेक्ट में पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग 5.5 घंटे आगे। देखिए अगर ये हमारी अर्थ है और ये रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, हर 1 डिग्री पर घूमने पर 4 मिनट लग रहे हैं। और आपको मालूम है जनरली हम बोल देते हैं सन राइजेस इन ईस्ट, तो मान लीजिए ये हमारा सन है। तो देखिए हमारे पास 2 फेजेस हैं, एक हमारे पास ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। दोनों में से सन के सामने जाएगा घूमते हुए ईस्टर्न हेमिस्फीयर आगे, यानी यहां का जो टाइम है ये आगे है और यहाँ का जो टाइम है वो पीछे है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं यहाँ टाइम माइनस होगा, और ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स है वहां पे टाइम ऐड होगा। अब देखिए यहाँ के जो भी लॉन्गिट्यूड्स उन्हें बोला जाएगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ के जो भी लॉन्गिट्यूड्स उन्हें बोला जाएगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ इट इज 10 AM एट ग्रीनविच मीन टाइम, भाई ग्रीनविच लाइन पर जो भी टाइम होता है उसे बोलता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी अगर हमारा 10 है, सुबह के 10 बज रहे हैं ग्रीनविच मीन लाइन पर, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट। भाई 90 डिग्री ईस्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में होगा। सपोज कर लेते हैं 90 डिग्री ईस्ट है। अब 0 पर है ग्रीनविच लाइन, 90 डिग्री ईस्ट का टाइम हमें निकालना है। 0 से 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं, यानी 90 डिग्री घूमने में अर्थ को लगेंगे 360 मिनट्स। अब अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 से 360 को डिवाइड करेंगे 6 आवर्स आ जाएगा। अब देखिए 6 आवर्स आगे है 90 डिग्री ईस्ट का टाइम, तो 10 बज रहे हैं सुबह के ग्रीनविच मीन टाइम में, तो हम देखेंगे 10 में 6 घंटे ऐड कर दीजिए, शाम के 4 बजेंगे, और सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये हमारा 47 का आंसर है डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। अगेन एग्जाम से कुछ 15 से 20 दिन पहले सीडीएस और एनडीए दोनों बैचेस में हमने ये टॉपिक कवर किया है सोलर सिस्टम, और उसमें गैसियस प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात की थी। 8 प्लैनेट्स है टोटल हमारे पास, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। नेपच्यून को हमने डिक्लेयर कर दिया है बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, तो वो तो इंक्लूड नहीं होगा। प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है। अब देखिए हमारे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये, और फिर यहाँ पे एक एस्टेरॉइड की बेल्ट होती है हमारे पास। इसके इस तरफ है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो एस्टेरॉइड बेल्ट के इस तरफ हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, और इस तरफ है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों जो प्लैनेट्स हैं ये कहे जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है वो बना हुआ है रॉक से, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बने हुए हैं गैस और आइस से। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि which of the following groups of planets is termed as gas planets as they are composed primarily of lighter
आइसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखिए मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, भाई मार्स तो हो ही नहीं सकता, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न। अब देखिए यहां पर हमारे पास सही कॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, भले ये ऑर्डर ठीक नहीं है पर आंसर जो है वो यही होगा। और सैटर्न, मार्स अगेन यहाँ पे नहीं होगा, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स अगेन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये ए, सी और डी तो किसी भी हालत में नहीं। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, गैसेस प्लैनेट्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। सॉइल वाला चैप्टर हमने हर बैच में कवर किया है और एक ही स्टेटमेंट से पता लगा लोगे आंसर क्या है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक स्टेटमेंट से पता लगा लोगे कि आंसर क्या है। देखिए, consider the following characteristics of a soil type. These soils consist of various proportions of sand, silt और clay. एक तो ये स्टेटमेंट है, एक तो इस स्टेटमेंट से आप पता कर सकते हैं। फिर है कि these soils contain adequate proportions of potash, phosphoric acid and lime. चलिए एक बार तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाए। मान लिया पहला स्टेटमेंट तो इजी, these soils can be further classified on the basis of their age. भैया एज की बेसिस पे मैंने बताया था तुम्हें कि एक तो ये पुरानी होती है ओल्ड अलूवियल और एक होता है न्यू अलूवियल। ओल्ड डिपोजिशन ऑफ अलूवियम, ओल्ड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इज नोन एज बांगर एंड न्यू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इज नोन एज खादर। तो भैया अगर एज के बेसिस पे भी तुम पता कर पा रहे हो और फिर इस सॉइल में आप देखो, मैंने बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट जब हम जाएंगे इस सॉइल में, अलूवियल सॉइल में, तो सैंड का कंटेंट डिक्रीज होता है। तो सैंड भी है यहाँ पर, सिल्ट का मतलब सेडिमेंट, और क्ले नेचर तो ये रखती ही है। तो पहले स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट से भी। थर्ड स्टेटमेंट बांगर और खादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से आंसर इज अलूवियल सॉइल ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखिए 51, अब ये देखिए फिर से पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है। इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू, बेसिकली इंडस रिवर बेसिन का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। रिवर बेसिन का मतलब होता है कि जब कोई मेजर रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ किसी एक पर्टिकुलर एरिया को वाटर सप्लाई करे तो वो रिवर बेसिन है। अब इंडस रिवर सिस्टम जो है वो आपको मोटा मोटी पता होगा कि वो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर हमारा पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में फिर चला जाता है। अगर आपको लग रहा है कि राजस्थान नहीं हो सकता तो आप गलत। आंसर जो होगा वो डी है। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे लॉजिक भी। अब देखिए लद्दाख में तो ये बहती है, जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल पास में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। देखिए राजस्थान इस केसेस पे बोल रहे हैं, बाकी स्टेट्स तो क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान के साथ कनेक्शन इस तरह से इंडस रिवर का कि इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर which originates from तिब्बत. It originates from राक्षस ताल, तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास ये जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है। Then it enters हिमाचल प्रदेश, flows through Punjab and reaches Punjab of Pakistan, where it joins Indus River at Mithankot. Now see, जब ये सतलुज रिवर पंजाब से होकर जा रही होती है तो पंजाब में there is a place हरिके, एक जगह है हरिके, और इसी हरिके से राजस्थान की तरफ निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल, अप्रोक्सीमेटली 650 kilometers long. Earlier it used to be known as Rajasthan Canal. The construction of this canal began in 1958 and the construction ended in 2010. तो काफी लंबा टाइम लगा, पर देखिए सतलुज का पानी यानी इंडस रिवर बेसिन से रिलेटेड है राजस्थान। सतलुज का पानी कैनाल के थ्रू पहुंच रहा है राजस्थान के जैसलमेर तक। तो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू ये कह सकते हैं कि राजस्थान में शामिल होगा। एंड करेक्ट आंसर है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें, देखिए ड्रेनेज सिस्टम से है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, which two rivers flow in the region between गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी। अब मुझे उम्मीद है कि एज सजेस्टेड हम्पी या विजयनगर एम्पायर आप पढ़ के गए होंगे, तो विजयनगर एम्पायर में जो कैपिटल थी वो विजयनगर ही थी, जिसको आज हम हम्पी बोलते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए ये हमारा मैप है। If this is the map of peninsular India, if this is the map of peninsular India, then you can see the state of Karnataka has this Vijayanagar Empire। जो कैपिटल है भाई लोग, कैपिटल है कर्नाटका के हम्पी में, हम्पी को ही विजयनगर शहर बोला जाता था, यही विजयनगर की कैपिटल भी थी। विजयनगर एम्पायर का नाम भी विजयनगर और उसकी कैपिटल का नाम भी विजयनगर, ठीक है। तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह भाई लोग कर्नाटका में ही गुलबर्गा। तो गुलबर्गा के साइड से कृष्णा रिवर फ्लो करती है। इस तरह से कृष्णा रिवर, यहाँ पे गुलबर्गा, इस तरह से तुंगभद्रा रिवर, यहाँ पे हम्पी। तो गुलबर्गा और हम्पी के बीच में कृष्णा और तुंगभद्रा। आंसर है डी, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 74। अब थोड़ा सा ये स्टैटिक पार्ट है हमारे डिफेंस अवेयरनेस से रिलेटेड। और जब हम पॉलिटी में हम जब पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 33, 34, तो हम देखते हैं कि हम थोड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि वहां के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो देखिए हमने बात ही बातों में ये चीजें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, और कई लोगों को मालूम भी होगी कि हमारी एक CAPF है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स। असम राइफल्स के साथ एक यूनिक सा फैक्ट जुड़ा हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सशस्त्र सीमा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दे ऑल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। असम राइफल्स का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये भी आता है MHA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, पर इसका जो ऑपरेशनल पार्ट है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसलिए हम देखेंगे कि असम राइफल्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज एन ऑफिसर नहीं होती है। इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर्स को यहाँ पर मे बी ऑन डेपुटेशन भेजा जाता है और वो वहां पे जाके असम राइफल्स में फिर सर्व करते हैं। तो असम राइफल इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट MHA के पास है और ऑपरेशनल पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। तो सही आंसर है असम राइफल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 नहीं सॉरी 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ट्राइब से रिलेटेड है। कैवेलियर के स्टूडेंट्स को ट्राइब से रिलेटेड एक छोटी सी PDF भेजी गई थी और उसमें से आई गेस तुम इसको अटेम्प्ट कर गए होगे, अगर थोड़ा भी वो पढ़ के गए हो। अगर इग्नोर कर दिया है तो फिर ये क्वेश्चन गया। देखिए which one of the following is an ethnic community of Assam? भील और गोंड ये तो आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भील और गोंड का इलाका है। अहोम आपने सुना होगा। बेसिकली असम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जितने भी हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, 7 स्टेट्स की बात करते हैं, सब पहले की तरह ये मान लीजिए कि असम का पार्ट हुआ करते थे और असम में रूल था अहोम राजाओं का, अहोम रॉयल फैमिली का। और ये यहाँ की एथनिक कम्युनिटी इसीलिए, एथनिक कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप लोगों का जो बहुत सालों से सिमिलर कल्चर, सिमिलर रिलीजन,
सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर कस्टम्स, इन सबको फॉलो करते आ रहे हैं। तो अहोम जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर है, अहोम जनजाति। तो ये है हमारी 75 की आंसर अहोम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, स्टैटिक कह लो, करंट अफेयर्स कह लो, पर अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी बात है। अगर तुमने इसमें भी रिस्क लिया है तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द शेफरन्स इन द नेम इज द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगेन कोई अगर क्रिकेट का फैन है तो उसको तो अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये एक क्रिकेट टीम है जिम्बाब्वे। इनकी जो क्रिकेट टीम है उसी को शेफरन्स कहा जाता है, ठीक है। 77 ये तो इतना ज्यादा न्यूज में रहा, और ये तो आना ही था क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये नामीबिया से 1 डजन करीबन 12 जो चीते हैं उनको लेकर आए हैं कूनो नेशनल पार्क में। इतनी ज्यादा ये फेमस रही खबर जो है, तो आपको ये क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। देखिए, चीतास ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया, अफ्रीका में एक कंट्री है नामीबिया, जहां पे हमने नामिब डेजर्ट पढ़ा है। साउथ अफ्रीका के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर है ये कंट्री। वहां से चीतास लेके आए गए हैं और उनको एक नेशनल पार्क में रखा गया है, छोड़ा गया है। अब इसमें से ऑप्शन दे दिए गए, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव, केबुल लामजाओ, कूनो नेशनल पार्क। देखिए, काजीरंगा तो असम में है, केवलादेव राजस्थान के भरतपुर के पास, केबुल लामजाओ मणिपुर में है, लोकटक लेक में, और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो कूनो नेशनल पार्क में इन 12 चीतों को रखा गया है, जिसमें 7 मेल्स और 5 फीमेल्स हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स, पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखिए 78 क्वेश्चन नंबर, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीडीएफ। इनफैक्ट ये जो कूनो नेशनल पार्क वाला ये जो क्वेश्चन है, ये भी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है। 78 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2022 3 लोगों को दिया गया है जॉइंटली। और जब 3 लोगों को दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक का नाम तो पूछेंगे, वो तीनों का नाम देके एक चौथा नाम ऐसा दिया है यूपीएससी ने जिसको आपको एलिमिनेट करना है। तो भैया हमारे पास ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, फिर हमारे पास है क्लॉज हसलमन, और उसके बाद है एंटन जेलिंगर। देखिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटन जेलिंगर, ये तीनों तो फिजिक्स में 2022 में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ये जो क्लॉज हसलमन है, इन्हें नहीं मिला है। तो क्वेश्चन भी तो यही है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2022। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, क्लॉज हसलमन, इन्होंने नहीं जीता है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोग 81 करंट अफेयर से है, और अगले ये 3 to 4 क्वेश्चंस 81 से लेके 84 तक ये सब करंट अफेयर से है। तो फटाफट से देखते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि पीडीएफ अब खोल के देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि कितने क्वेश्चंस तुमने छोड़ दिए अगर पीडीएफ नहीं पढ़ी है तो। ये देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस 79 हो गया, 81 क्वेश्चन। देखिए डिस्क्रिप्शन है, हमारी वेटरन एक्ट्रेस है आशा पारेख जी, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि शी इज अ renowned film actress, director and producer and an accomplished Indian classical dancer. She was conferred the Padma Shri in 1992 and has served as the head of Central Board for Film Certification from 1998 to 2001. In recognition to her exemplary lifetime contribution to Indian cinema, she was honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award 2020 में मिला था, 2020 में मिला था। तो आशा पारेख हमारी जो वेटरन एक्ट्रेस है वो इस डिस्क्रिप्शन की हकदार है, और सही हमारा जो आंसर है वो भी आशा पारेख, ऑप्शन डी है। उसके बाद देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन पीडीएफ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन उन्होंने
जो जहां से दिया वहां से दिया है, हमारी पीडीएफ में हमने ये क्वेश्चन शामिल किया था, ये करंट अफेयर शामिल किया है। Which one of the following is the venue of the United Nations 2023 Water Conference? आंसर आप सबको मालूम होगा, इजी फैक्ट है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क हमारा सही आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84, अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए 84 है द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, a bilateral military to military exercise was conducted recently between the special forces of India and इंडोनेशिया। सही आंसर है भाई लोग, इंडोनेशिया। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 अगेन करंट अफेयर्स कह लो, इकोनॉमिक्स कह लो, ठीक है, एक इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87, which one of the following indicators is included in the national multi-dimensional poverty index? अब देखिए हम लोग इंडेक्स में जो रैंक्स वगैरह दी जाती है वो तो हम पता कर लेते हैं, या कौन सा स्टेट आगे है कौन सा स्टेट पीछे, वो तो हम पता कर लेते हैं। पर कभी कभार अगर लगे कि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा है तो वी शुड फोकस ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ दोस इंडेक्सेस। देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन है ए, इयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन लिटरेसी रेट, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा इनकम। तो देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शामिल करता है इयर्स ऑफ स्कूलिंग, साथ ही साथ उसमें चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, न्यूट्रिशन है। तो उनमें से तो कोई दिया नहीं है, सिर्फ इयर्स ऑफ स्कूलिंग दी हुई है। तो लिटरेसी रेट भी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं है, पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। तो यहाँ पर ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो इंडेक्स है उसके ऑप्शंस दे दिए हैं बेवकूफ बनाने के लिए आपको, जबकि आंसर है ए। चलिए 87 का ए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक बार ये देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू a UN peacekeeping mission. In which country did this mission operate? तो सूडान, अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन, सूडान में हमने भेजा है। और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे करंट अफेयर्स का 92। देखिए which one among the following is not a part of the SWAM program? SWAM program क्या है? यह है स्टडी ऑफ वेब्स सॉरी मैं इसका ये फुल फॉर्म भूल गया हूं। स्टडी वेब ऑफ एक्टिविटी फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, कुछ इस तरह का ये फुल फॉर्म है, जिसमें बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है ऑनलाइन। तो जब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं तो वीडियो लेक्चर्स तो होंगे, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स होगा, स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, वो तो ऑनलाइन ही हो सकता है। क्लासरूम लेक्चर्स नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग कि इट इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम, तो क्लासरूम लेक्चर्स का तो कोई मतलब नहीं है। तो बी ये हो गया हमारा आंसर। अब जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले स्लॉट में देखते हैं। और अभी मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर को, और वो आपके साथ अपने सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज आइए। तो अभिषेक ठाकुर सर अभी हमारे साथ यहां पर प्रेजेंट होंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। सर प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक ठाकुर। अभी मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स का जो पोर्शन है साइंस का, वो मैं वन बाय वन आपको सॉल्यूशंस करके बता रहा हूँ। और
जो भी स्टूडेंट्स हैं कैवेलियर के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन करके बताया गया है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर इज 108। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, a car is moving with a speed of 12 meter per second, is subjected to brakes which produces a deceleration of 6 meter per second square। ये आपको दिया हुआ है कि deceleration दिया हुआ है 6, the car takes 2 seconds to stop after the application of the brake। जब ब्रेक अप्लाई किया गया उसके बाद 2 सेकंड लगता है उसको स्टॉप होने में। What is the distance covered by the car after the application of the brake? We have to find the कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है ब्रेक अप्लाई करने के बाद कि ये बॉडी जो है ये रेस्ट में आ जाए, स्टॉप हो जाए। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। वी हैव टू फाइंड एस होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉप हो जाए तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और u ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। जब आप ये अप्लाई करोगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये माइनस में आएगा क्योंकि 0 माइनस, और ये नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है आपका दिस इज -6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट एंड इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 12 मीटर। 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फॉर्मूले पे अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर आ रहा है। This is the based on equations of motions. Now we come to the next question. Next questions, that is 104. Questions में दिया हुआ है the resistance 11 ohm, 22 ohm and 33 ohm are connected in parallel. Their equivalent resistance. We have to find the equivalent resistance of the combinations. ये दिया हुआ है R1, R2 और R3। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 plus 1/R2 plus 1/3। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ये R1 की वैल्यू दी हुई है 11, R2 दिया हुआ है 22 और ये दिया हुआ है 33। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका। ये मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। 1/R = होता है 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। You have given 1/11, this is 1/22 plus 1/33। ये तीन वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस इसका जो एलसीएम आएगा ये 66, 6 प्लस ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। दिस इज 11/66, ये आ जाएगा 1/6। दैट मींस 1/R की वैल्यू आ गई 1/6 एंड R = दिस इज R इज द इक्विवेलेंट। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो होगा D इज द करेक्ट आंसर। D is the correct answer, that is the 6th one. Okay, now we come to the next questions. Next question is theory based. The RMS potential difference between the red line wire and the black neutral wire of Indian domestic electric supply, ये इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई में जो यूज किया जाता है दैट इज थ्योरी बेस्ड, दैट इज 220 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं हम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। The next question is completely theory based. In questions you are given hydrogen bomb, ये दिया हुआ है the hydrogen bomb and the uranium bomb are based respectively on। ये हाइड्रोजन बम और ये किस पे बेस्ड ऑन है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये जो बेस्ड ऑन होते हैं इसके फर्स्ट ऑप्शंस जो होंगे दैट इज सॉरी ये आ जाएगा सबसे पहले इसमें ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है that is based on nuclear fusion and nuclear fission। ये जो बेस्ड ऑन है
ये इस फेनोमेनन पे बेस्ड होते हैं. That is A is the correct answer. Now we come to the next questions. That is also completely theory part. According to the questions you have given, sound and light wave. ये common questions हैं, बहुत बार ये पेपर में आते हैं कि sound and light wave जो है ये इसका क्या नेचर होता है. ये सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि sound and light waves are respectively longitudinal and transverse in nature. बी में दिया हुआ है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, सी में दिया हुआ है बोथ लॉन्गिट्यूडिनल इन एयर और डी में दिया है बोथ ट्रांसवर्स इन एयर. ये इसका जो आंसर आएगा ये ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत बार ये पेपर में आए हुए हैं और ऑलरेडी मैंने पेपर क्वेश्चंस क्लास में बताया भी था कि ये क्वेश्चंस आते हैं साउंड एंड लाइट वेव, जब मैंने लाइट डिस्कस किया था. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number, just wait. Question number is 30. That is questions from the power of the lens. 30. Question number क्वेश्चन नंबर 30. एक क्वेश्चंस पावर से जरूर आते हैं आपके पेपर में, मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. पावर ऑफ द लेंस जो होता है ये फॉर्मूला होता है P = 1/f और ये 100/f ऑफ द cm. डायरेक्ट आपको ये टेक्निक्स अप्लाई करना है. क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर 100/10 दैट इज द 10 डायोप्टर. दैट मींस ये 10 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा. इस सिंपल फॉर्मूले पे यूज करना है आपको. करेक्ट आंसर विल बी 10 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर. सिंपली फॉर्मूले पे बैठाना है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर दैट इज 29. Question number 29. ये भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं. The area under the velocity time graph of a particle. क्वेश्चन में पूछा गया है कि the area under velocity time graph for a particle moving in a straight line with uniform accelerations gives average velocity, its net displacement, its distance traveled, its average speed. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. तो दैट मींस ये बी इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ये डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. दैट इज 27. ये भी क्वेश्चंस कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड हैं. ये डिवाइसेस के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन एंड ए स्पीकर ऑफ मोबाइल फोन. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये आपको दिए हुए हैं. द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल. ये कह रहा है कि माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल. सेकंड ऑप्शन दिए हुए हैं माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. थर्ड में दिया हुआ है
A speaker convert mechanical signal to sound, and fourth one we are given a speaker convert an electrical signal to sound. ये चारों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. नाउ वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स. ये ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 1 3, सेकंड में दिया हुआ है 1 4, सी में दिया हुआ है 2 3 और डी में दिया हुआ है 2 4. अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइसेस डी इज द करेक्ट आंसर. ये डी वाला जो स्टेटमेंट है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. 2 and 4 माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड फोर्थ में आ जाएगा द स्पीकर कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड. दीज आर द डिवाइसेस. ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द power. Based on a movie question that is 20, question number that is 28. In questions we have given 100 watt electric bulb is used for 10 hours in a day. Question में दिया हुआ है कि 100 watt दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो यूज होता है that is 10 hour in a day होता है. We have to find how many units of electrical energy are consumed by bulb in 3 days. We have to find ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा ये 3 डेज में आपका हमें यूज करना है, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे. ये यूनिट जो होता है जो हम फाइंड करते हैं ये डायरेक्ट इसके फॉर्मूले आते हैं. डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे इसमें वाट इनटू आवर इनटू 1000. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 100 वाट एंड ये आवर ये दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा 1. दैट मींस इन 3 डेज ये A is the correct answer. 1 into 3 that is 3. A is the correct answer. Now this is the last questions that is 26. In questions we have given, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a person is burned firecracker in front of a cliff and heard its echo 5 seconds after its burst. The distance of the cliff from the person if a speed of sound is 340 meter per second is close to. We have to find ये distance find करना है इस केस में. और ऑलरेडी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस केस में. ये स्पीड का इसमें ये वेव के क्वेश्चंस आते हैं ऑलरेडी. ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें अप्लाई करना होता है आपको दैट इज 2d = v * t. ये टेक्निक अप्लाई करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. इन एवरी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि 5 सेकंड और ये आपको दिया हुआ है दैट इज 340. यू हैव टू फाइंड d. दैट मींस 340 और ये t की वैल्यू दी हुई है 5/2. व्हेन यू विल सॉल्व इट 170 into 5 850 is the correct answer. ये डायरेक्ट आपको ये इस केस में साउंड के वेव में ये आप अप्लाई करोगे टेक्निक यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर कि व्हाट इज द डिस्टेंस 2d = v * t. इन क्वेश्चंस यू हैव गिवन दिस इज द वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड एंड टाइम दिया हुआ है ये आपका 850 इज द करेक्ट आंसर. जो भी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं क्लासेस में और ये ऑल क्वेश्चंस आर फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स. जो भी थ्योरी है वो सिंपल डिवाइसेस से थ्योरी है, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल पार्ट न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड. ओके नाउ नेक्स्ट सर आएंगे ये केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो पोर्शन है ये मिस्टर उदय सर आपको अभी डिस्कस करके बताएंगे उसके सॉल्यूशंस. आइए सर. चलिए भाई, सभी का मैं उदय कुमार सर कैवलियर इंस्टीट्यूट से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और सभी को गुड लक. जैसा कि आप सभी ने आज एग्ज़ाम दिया CDS का और उसमें केमिस्ट्री और एंड बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो केमिस्ट्री का
क्वेश्चन आपको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैं क्लास में सभी को बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन। A sprinter feels cramps and pain in the thigh muscles after a run. This is due to accumulation of, यानी एक स्प्रिंटर है, मान लीजिए आपका एथलीट वगैरह है, अगर उसके थाई मसल में क्रैम्प आ गया है तो किसके जमा होने पर, यानी एक्यूमुलेशन क्या हुआ है उसके कारण, तो इसमें लैक्टिक एसिड आपको अगर अधिक एक्यूमुलेट हो गया है, लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, तो आपको समझिए क्रैम्प आ जाता है। तो आंसर इसका आपका देखिए फर्स्ट वाला आंसर है, ए वाला आंसर है। ओके, नाउ 22 नंबर क्वेश्चन आप देखें, सी द 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको बहुत से पढ़े होंगे क्वेश्चन को। ए लीफ वाज प्लक्ड फ्रॉम ए प्लांट, यानी एक लीफ तोड़ा गया है प्लांट से, ऑन ए सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट रखा गया। इट वाज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग अल्कोहल एंड ट्रीटेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन, यानी अल्कोहल में रखा गया इसको और आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया गया। व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट, तो इसमें फाइनल कलर आयोडीन जब भी आप ड्रॉप करेंगे, आयोडीन जब भी डालेंगे, तो ये फाइनल कलर जो आपको मिलेगा डीप ब्राउन, डीप ब्लू कलर मिलता है, या इसको ब्लू ब्लैक भी कर सकते हैं। ऑप्शन स्पेस में सी में जो दिया है ब्लू आपका, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्वेश्चन, थोड़ा आप देख लो जरा सा, क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। Try to understand the question clearly. If the red blood cells, यानी RBC of human blood are isolated and are diluted in normal saline and isotonic solution to blood. Isotonic solution का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन, ना तो वो समझिए कि जैसे RBC है तो ब्लड का जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा भी ना हो, कम भी नहीं हो। अगर मान लीजिए ब्लड से ज़्यादा है देन इट इज़ नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर ब्लड से कम है कंसंट्रेशन देन इट इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन में है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ब्लड का और सॉल्यूशन का दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ लिक्विड। तो आंसर इसका आप देख लो, नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसी, लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है डी विल बी द आंसर, नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लियरली इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है। बाइल जो सिक्रेशन होता है सभी को पता है, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल लीवर से सिक्रेट होता है और स्टोर यानी जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल के लिए कौन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये सही है। लिपिड्स आपका सिंपल फैट्स होता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें आपका एंजाइम्स है। सेकंड आपका है बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है कि व्हेन फैट्स breaks into smaller molecules, this process is known as emulsification। फैट्स का सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके बाइल करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, दिस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। तो ये भी सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है। नेक्स्ट आपका है बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कंटेनिंग फ्रॉम स्टोमक, यानी जो स्टोमक से आपका स्टोमक में फूड है वो एसिडिक वैल्यू होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और लास्ट में दिया बाइल मेक्स द पीएच of the food alkaline and facilitates action of pancreatic enzymes। The answer जो आपका देख लो यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर होगा आपका D will be the correct answer। ये आपको यहाँ पे क्या लिखा, bile makes the pH of the food alkaline, यानी फूड को अल्कलाइन बनाता है। ये नहीं होगा क्योंकि स्टोमक में आपका म्यूकस एंजाइम जो है वो फूड को अल्कलाइन, स्टोमक से एक एंजाइम बनता है म्यूकस एंजाइम,
सभी जानते होंगे आप। तो म्यूकस एंजाइम जो एसिडिक नेचर है फूड का, उसको अल्कलाइन यानी आपका मतलब अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सभी को पता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी यानी मरकरी लेवल का। तो ये ब्लड प्रेशर, सबसे पहले समझ लीजिए ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी, यानी आर्टरी के इंटरनल वॉल में जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड फ्लो के दौरान, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। The blood pressure of a normal human being is found to be 120/80 millimeter of Hg. These numbers represent the blood pressure at, पहला में क्या दिया है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी आपका मतलब वेंट्रिकल में जो आपका समझिए प्रेशर पड़ेगा। सेकंड में है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। थर्ड में क्या है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली। और लास्ट में लिखा है आपका वेंट्रिकुलर, मैंने बताया अभी आपको आर्टिकल जो आर्टरीज है उसके इंटरनल वॉल में जो प्रेशर है आपका वेंस में नहीं। तो आंसर सी आपका ये करेक्ट है आंसर, आप ये कर सकते हैं सी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन, which of the following statements with regard to heating of lead nitrate powder over a flame are correct? इसमें करेक्ट कौन है? lead nitrate अगर बर्न होगा तो पहला है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज, सेकंड में है कलरलेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, थर्ड में आपको दिया है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फोर्थ में ऑप्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। The answer will be 1 and 2। ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा आपका, फर्स्ट वाला होगा ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और सेकंड है कलरलेस ऑक्सीजन गैस रिलीज। तो आंसर यहाँ पे देख लो, आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा ये 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आप देखो, 34 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is not an oxidation reaction? तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। रेंसिडिटी ऑफ फूड यानी फूड खराब हो जाते हैं, ऑयली फैटी फूड आपको जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो भी आपका है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। और कंबशन यानी विदाउट ऑक्सीजन जो है आपका कंबशन होगा ही नहीं, तो ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। तो एक आपको देख लो, सेकेंड वाला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, ये ऑक्सीडेशन का आपका एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर है? तो आंसर विल बी बी, 34 का बी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। ये 50 नंबर क्वेश्चन पढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें से निकालना है। फर्स्ट देखिए क्या स्टेटमेंट है, इन ए थर्मल पावर स्टेशन
fuels such as oil, coal or natural gas are used to generate electricity. थर्मल पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड में है फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम which goes through a turbine which spins and turns generating electricity. टरबाइन तो जानते ही होंगे, आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वहां पे यूज किया जाता है। और आपका अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखें तो स्टेटमेंट आपका जो दोनों स्टेटमेंट्स है आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 79 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। रिफ्लेक्स आर्क्स आर इन्वॉल्व्ड in animals for quick and efficient responses. Which one of the following sequences correctly represents the reflex arc? रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लो आपको सडनली आपको कुछ भी सपोज करो सेंसेशन महसूस हुआ, अचानक मान लो आपका व्हेन योर हैंड टचेज विथ ए बर्निंग कैंडल, या मान लो सपोज करो कि कांटे चुभ गए, तुरंत एक्शन एंड रिएक्शन होता है। अगर मान लो योर हैंड व्हेन टचेज विथ ए बर्निंग कैंडल वी मूव सडनली आवर हैंड, तो इसमें क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको। सेंसेशन जैसे ही आपको महसूस हुआ, सेंस आप तुरंत एक्शन लिए, तो ये नर्व, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो आपका मतलब हमारे बॉडी में क्या है, दो नर्व्स है, सेंसरी नर्व और एंड मोटर नर्व है। तो सेंसरी नर्व का काम है कुछ भी जो हम महसूस करते हैं वो सेंसरी नर्व रिसीव किया, और हमारा ब्रेन जो है बॉडी का ऑर्गन्स को मूव करने का या फंक्शन करने का जो ऑर्डर दिया है वो मोटर नर्व के सहारे बॉडी को ऑर्गन में चला आया। तो इसी को ये अगर फास्ट हो जाए, वेरी मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, रिसेप्टर हो गया सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद रिले हो गया आपका न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, उसके बाद ब्रेन में गया, ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया मोटर नर्व को, और इफेक्टर यानी इफेक्ट हो गया इसका। तो आंसर विल बी आपका इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 79 का। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 80 देखिए, इसके जस्ट आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन? हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, एक हार्मोन बनती है थायरोक्सिन। अगर ये थायरोक्सिन कम बने तो सभी को आप पता है कि ये थायराइड ग्लैंड आपका लाइफ सेविंग ग्लैंड है, थायरोक्सिन कम बनेगी तो समझिए आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का डाइजेशन सही से हो नहीं पाएगा, मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं पाएगा। तो इसमें आयोडीन अगर कम लेते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला आंसर हो जाएगा आयोडीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is 101. देखिए, इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन सेल्स के बारे में बता देते हैं। सेल में आपका दो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है। और सेल में ये दोनों जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में। दो सेलुलर स्ट्रक्चर और है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ भी आपको ये जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख लो, इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन, पहला है साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो आपका पार्ट है, बाहर वाला जो समझिए लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पे पहला तो साइटोप्लाज्म ओनली दिया है, नहीं होगा। दूसरा में है न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म यानी दोनों जगह। तीसरा में है न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और लास्ट में दिया है न्यूक्लियाई है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स में आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो इसका आंसर आप देख लो, ये सी वाला है, ये आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102। देखिए, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड इन प्लांट टिश्यू, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्लांट के टिप्स में आपको पाया जाता है, तो उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम है। अगर मान लो सपोज करो ग्रास फैमिली का प्लांट्स है, जैसे बैम्बू है, ग्रास है, शुगर केन है, जगह जगह जो गांठ पाई जाती है, गांठ को नोड कहते हैं, और दो गांठ के बीच में इंटरनोड स्पेस कहलाता है। तो उन दोनों गांठों के बीच में जो इंटरनोड है, स्पेस है, खाली स्पेस, वहां पे जो टिश्यू है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ग्रास फैमिली में इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है। और ये आपका देख लो, पहला है रूट टिप, इसमें तो नहीं होगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट या शूट का टिप्स में। सेकंड में लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम लिखा है, सी में लिखा है बेस ऑफ लीव्स यानी लीव्स के नीचे बेस में, और डी में लिखा है शूट का टिप में। तो आपको एपिकल मेरिस्टेम पहला में पाया जाएगा, रूट का टिप में, शूट का टिप में, और आपको ये जो लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम लिखा है, तो यहाँ पे आपका लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा। द आंसर विल बी सेकंड, बी विल बी द आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है बायोलॉजी से। जाइलम इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो तरह का प्लांट में टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हुआ है वो आपको जाइलम टिश्यू एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन लीव्स तक पहुंचा दिया। ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर हो गया वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा प्लांट्स के सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जाइलम में और फ्लोएम में दोनों में 4-4 सेल्स होते हैं, 4 सेल्स होते हैं दोनों में, और उनमें से सेल्स जो है डेड भी है, लिविंग भी है। तो जाइलम, ये चारों सेल्स का जो नाम लिखा है, ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये चारों सेल आपका जाइलम टिश्यू का ही है। और इसमें एक ही आपका सिंगल सेल है जो लिविंग है, बाकी सारे सेल डेड होते हैं, और वो आपका है जाइलम पेरेन्काइमा। ये काफी लोगों को पता होगा, जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल। क्वेश्चन वही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, यानी लिविंग सेल्स कौन सा है इसमें। तो एकमात्र जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर 9। 109 क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड टाइप का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें क्या रहता है केमिकल कंपोजिशन, वही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला आप देख लो, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCl3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यही दो चीज मिला रहता है इसमें सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अगर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, समझ लो आपको पानी मिलाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन ए डाइल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं बता देता हूँ, ओनली 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेकंड है वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसंट्रेटेड एसिड, और थर्ड में एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर। तो आंसर इसका ओनली थर्ड वाला होगा। इसमें क्वेश्चन है व्हाइल डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, यानी एसिड जो है ये आपका स्लोली ऐड करना पड़ता है। तो आंसर विल बी हो जाएगा आपका ओनली 3 वाला जो आंसर है, ये वाला जो आपका ओनली 3 लिखा हुआ है, सी विल बी द आंसर।
नेक्स्ट आपका है 111 नंबर क्वेश्चन। 111 ये क्वेश्चन देखिए आपका पीएच वैल्यू पूछा है करेक्ट ऑर्डर में। तो पीएच वैल्यू आपको करेक्ट ऑर्डर में बता देता हूँ। इसमें लास्ट वाला जो लिखा हुआ है देखिए, लेमन जूस है, कॉफी है, उसके बाद आपका ब्लड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये आपका बेस है और बेस का पीएच वैल्यू 7 से ऊपर, एसिड है तो 7 से नीचे। तो लेमन जूस का आपको 2.5 से 3 के बीच, 2.5 to 3 के बीच होता है। और उसके बाद लेमन जूस के बाद कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी और टी में यानी कॉफ़ी और चाय में टैनिक एसिड है, तो एसिड है तो उसका भी 7 से नीचे होगा। उसके बाद आपका ब्लड लिखा है, ब्लड का 7, ब्लड हमारा बेसिक नेचर अल्कलाइन नेचर है, 7.4 है उसका पीएच वैल्यू। तो 2 हो गया आपका 7 से नीचे, फिर 7 से ऊपर आपका ब्लड का, और 7 से फिर ऊपर आपका किसका रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो आंसर विल बी आपका लास्ट वाला जो है डी वाला आंसर, ये डी वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस आपका किसमें, किसके लिए करेक्ट नहीं है। पहला है, देख लो आपका 100 क्वेश्चन नंबर है 112, which one of the following not true for anodizing process। पहला है, it makes aluminium corrosion resistant, यानी corrosion resistant यानी जंग लगने से बचाता एल्यूमिनियम को। metals like aluminium, titanium and magnesium can be anodized। थर्ड में है, clean aluminium article in the anode and oxygen gas is evolved at the cathode। और लास्ट में है, इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो डी वाला लिखा है ये आपको देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देख लो नॉट करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो एयर लास्ट वाला जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री वाला जो है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, naphthalene burns with a yellow sooty flame, this is because naphthalene जो है आपका समझो येलो फ्लेम आएगा, सूटी फ्लेम यानी आपको हल्का फ्लेम होता है येलो कलर का। तो क्यों आपका देखिए नैप्थलीन जलेगा, तो दिस इज बिकॉज देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। अगर जब भी इनकम्प्लीट रहेगा, पूरी तरह से समझिए कंबशन यानी जल नहीं रहा पूरी तरह से, तो येलो फ्लेम आपका हल्का सा निकलेगा एंड द आंसर विल बी देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। P will be the answer। And now we move to the last question 114 number question 114। ये क्वेश्चन आप पढ़े पहले। Which of the following statements are true for the reaction of Fe2O3 है, यानी आपका हेमेटाइट है ये फेरिक ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम। तो इसका आप देख लो आपका 2 इसमें हो जाएगा। इट इज नॉन इन द थर्माइट रिएक्शन, और सेकंड में आपका है द हीट इवॉल्व इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो 1 and 2 विल बी द आंसर 114 का। इसमें आप देख लो जो आंसर ऑप्शन है ए वाला 1 and 2 विल बी द आंसर। तो ये आपका सीडीएस का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर करवाया है, और जहां तक आपको जरूरत थी एक्सप्लेन करने की वो मैंने आपको बता दिया। क्लास में तो सारे आपको डिटेल में एक्सप्लेन हम सभी करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ अभी सर आएंगे आपका, आप आएंगे एनडीए के लिए। ओके, नाउ एनडीए स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एनडीए के लिए भी सर आएंगे इंग्लिश के, और मैम आएगी, तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके सारे बताएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आइए।
Hello children. So today, how was the paper? What do you feel about the paper? और आपको क्या लगता है कि आप कितने questions करके आए हैं इंग्लिश में? What would be the ideal score that you would be thinking? सुमित सर, आपको क्या लगता है पेपर देख के? मैम पेपर तो एज एक्सपेक्टेड बहुत टफ तो नहीं आया है। आई थिंक वही सीडीएस वाली बात है मैम। अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, नहीं करी है तो वेरी ट्रू। हाँ, सो जब हम पेपर देख रहे हैं, सो वी आर सीइंग दैट द पेपर कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय द सेम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम दोनों ने क्लास में आपको दोबारा बताई हैं, वेदर इट इज अबाउट द मेथड ऑफ एलिमिनेशन और वेदर इट इज अबाउट एनी अदर थिंग एक्सेट्रा। नाउ अगर हम सबसे पहले देखें, सो द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन गिवन हियर इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये लायन शेयर मैंने आपको तब भी बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कैसे इडियम्स को आपने करना है एंड कैसे हम एनिमल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं एंड हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द लायन शेयर, सो इट इज ऑब्वियसली द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, पहले बता दूं ये सेट बी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड डू नॉट गो बाय द ब्लैक वन बट द रेड वंस आर द करेक्ट आंसर दैट वी आर लुकिंग एट। ओके सर, व्हाट्स द नेक्स्ट वन? So next we have spill the beans to reveal a secret, to force to leave belongings. I think it's not clear. Saurabh sir? It's not. ऐसे ऐसे रख लो। Right. Right. So to spill the beans is to reveal a secret. When you reveal a secret, when you reveal something that you should not be telling to someone, that's when you use to spill the beans. The next one we have to cook someone's goose. Now, So cook someone's goose की जब हम बात कर रहे हैं, so what are the options? To assist others? Obviously not. Hypnotize others' mind? Definitely not. Inviting misfortune cannot be one because someone hurt him. So obviously the correct answer is to spoil others' plans. The next question says disappear into thin air. अब आपको disappear word से ही आंसर लग जाना चाहिए that it cannot be lost forever, it cannot be become forgetful or become uncaring, and the correct answer is disappear suddenly. What's the next question, sir? so next we have to put the screws on. Well, to put the screws on means to control someone psychologically. And when you're controlling someone psychologically, it is not given in the option. So something close to the actual answer is forcing someone to do what you want, right? Let us move on to our next question. What do we have next? To sit on the fence. Sit on the fence will mean to avoid taking sides. When two persons are having an argument and you do not want to take either of those sides, then what are you doing? You're sitting on the fence. That's what you're doing. Right. What do we have next? We have the next question as be as sharp as a tack. Now, the word itself is sharp. So it cannot be a clumsy person or it cannot be a talkative person. It can be a shrewd person or a clever person. So what do you think, sir, is the answer? Is it shrewd or clever? It is being used in some slightly negative sense, so I think the answer will be B. Yeah, right. So the answer is a shrewd person. The next question where you have the idiom is from pillar to post, और ये आप बहुत बारी सुन चुके हो. From pillar to post does not mean upside down, does not mean constructing a huge building because that is definitely out of the context. Jumping from the top of the mountain तो हो ही नहीं सकता. So what is the answer? Keep moving from one place to another. What's the next question, sir? The next one we have Heath Robinson. Heath Robinson is a very complicated idiom. You might not come across it on daily basis. The meaning to this question, the meaning to this idiom is a very complicated system. Very complicated system or machine for doing a simple task. That's what the answer to this is, right? Right. Then we have as thick as thieves. It is used for people who are very close to each other as friends, right? So we have an option close to that. Very close friends who are looked upon with suspicion right now. Yes. So I think the idioms and phrases were pretty clear, except for maybe one or two, and you should have been able to do almost all of them, at least if not all of them, at least 80% of them.
What's the next question, sir? The next we have 45. 45 का मतलब क्या होता है? 45 का मतलब होता है किसी चीज को strengthen करना. Now, what are we dealing with here? We are dealing with antonyms. So, if we are dealing with antonyms, the antonym to 45 will be weaken, right? Right. The next question that we have is, now we can have another dazzling, right? Dazzling, you know, you very well understand, dazzling is something that sparkles, that glows, that is very soothing to the eyes, right? So the opposite to it will be murky. That's the correct answer to this question. Right. What do So we the have? next question says of antonym, the group is some clandestine meetings to resolve a matter. Now, when you are looking at the word clandestine, so the clandestine meaning is where we are talking about secretive. So secretive is obviously the synonym here. Covert is again not in the open. Sneaky is again not in the open. So the correct answer is public. If we look at the next question, we say that in the winters, the countryside view is bleak and the house is drafty. So bleak again, if we are talking about, so bleak is something which is not spreading cheer all around. So answer cannot be cheerless that we are looking across as. It cannot be desolate or bare also. So the correct answer is going to be working. So next question we have commotion. Commotion का मतलब हसल मसल होता है, अफरा तफरी, बहुत ज़्यादा अगर कहीं शोर हो रहा है तो उसके लिए हम commotion word का इस्तेमाल करते हैं. ये बाकी के तीनों word are close to the meaning of the word commotion. The only word that is an antonym to the word commotion is feel tight, right? This is the answer. Question option number A. The next question that we have is, he had the audacity to blame him. Boldness, vigor, temerity, politeness. Boldness, vigor and temerity, all the three are synonym to audacity. Audacity का मतलब दुस्साहस होता है. तो अगर हम audacity का antonym देखेंगे, the answer to it will be politeness. Right. What do we have next? We have, they are making plans for the abatement of the nuisance within a specified time. Now, when we are looking at the word abatement, now abatement means that anything which is reducing in number. So again, by the process of elimination, subsidence, ebbing and mitigation are out of the context. So the correct answer is going to be accumulation. Now, the next question says there is exponential growth. Now, since we are talking about growth, even if you don't know the meaning, exponential means aggressive. So the answer is not going to be aggressive, rampant or augmented. So the answer will be neither. What's the next question, sir? The next we have, he is known for his sagacity. Sagacity comes from the word sagacious. Both of these words mean someone who has a lot of wisdom, someone who has a lot of intelligence. So someone who is not very intelligent is someone who is ignorant, right? So the antonym to sagacity will be ignorance. Then we have question number 20. The river Ganga culminates in the Bay of Bengal. Culminates means it falls, it ends. It kind of ends its journey in the Bay of Bengal. So what will be the opposite to culmination? It will be origination. So it originates in the Bay of, it culminates in the Bay of Bengal and it originates will be the antonym for this question. Right. So you see how the antonyms have been done, and if you had attended the classes regularly, you would have not found it difficult itself to understand the meaning of the words through one way or the other. Okay, let's move on to the next question. Over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of few kilometers. Now, if we are looking at this question, we find here the word is layers. And again, we are finding here layers of sediments and the word says builds up. So the correct answer should be layers of sediment builds up because sediment cannot be used in plural. So layers of sediment build up. Now, what is the next question that we have? When a gas is cooled down, it turns into a liquid from a process called condensation. Now, the spotting errors were very simple if you applied your brains here. So the correct answer is going to be remove earth from here because we are talking about gas. So the correct answer is option A. What's the next question, sir? So next we have, if you want to know the news, you can read a newspaper. Now this is something that I have taught the students a lot.
wrong use of noun, wrong use of words. Okay, not exactly grammatical error, but wrong use of words. So you don't know a news, you read a news, right? Right, sir. So the answer to this will be B. This is a wrong word that has been used over here. So you should understand, like we were discussing in the class over, and Sumit sir had also discussed it in the class, that you need to understand that the error is not only grammatically, but it could also be about a usage of word. What's the next question, sir? The next we have Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. I think it's very simple. It's a no-brainer, as I say. C. In Right, 1492. very clear. Right. Now, what is the next question? Whenever the sky is clear, you can see the stars in the night. Again, I will go by what Sumit sir said right now. It is a no-brainer because it's talking about in the night, but stars at the night. Whenever the sky is clear, you can see the stars at the night. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Again, this is the simplest question which could have been asked. The word here is saying tomorrow, and it is using had here. So obviously with tomorrow we cannot use had, so it has to be have. So the correct answer here has to be, so I don't have to get up early. What's the next question, sir? The next question we have is, she didn't tell anybody about her plans. This sentence seems to be absolutely fine. There is no error in this sentence. So the answer to this is D. Right. Moving forward, she wouldn't have has an accident. She wouldn't have has an accident नहीं होगा. बहुत simple है, पढ़ने में ही गलत लग रहा है. She wouldn't have had an accident Right. if she had driven carefully. Going forward, I will watch the film if I finish the work in time. All of us know that when we are talking about a precise set of time, we work, the preposition that will be used is on time and not in time. Right. What do we have next? Last question says, in 1989, the government did an about face and Iran restored its family planning program. Now, like we were talking about, it is not always about a question about the word. The word itself is used here wrongly and about face. So the error is in section B. Absolutely. Right, sir? So I'm sure spotting errors you would have been doing it easily. Like we told you, prepositions is very important. So you should concentrate a lot on your topic of prepositions. Okay, we start with synonyms, sir. Synonyms, we have indigent. Indigent means a person who is very poor, a person who is extremely poor, right? So the answer is A. Next we have jovial. Jovial is related to nature. Someone who is very happy all the time. Someone who is not soggy, right? So the answer for question number 32 will be, according to me, mirthful. Right. It is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather, 33 say. And we always use lunacy with a mad person. So obviously the option will not be prudency, normalcy or sanity, and it will be insanity where sane means sensible. So somebody who is not sensible is a lunatic person. The next question that we are talking about is operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. Now, like we were discussing कि अगर आप पेपर देने जाते हो और आपने meticulous planning नहीं करी, तो आपका सब कुछ पड़ा हुआ will go to waste. So meticulous will be not strong, will not be long, will not be playful, but the correct answer would be scrupulous. Okay, sir. The next word is exhilarating. Exhilarating word is something that you might have read. It is used a lot in newspaper articles. Exhilarating means exciting, something that gets your adrenaline rush going. So the answer to question number 35 is C. Going forward, what do we have next? We have the redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. Redemption, what do you do to redeem yourself? Right? You must have heard this. Redemption, redeem. So redemption is coming back from a position of loss, coming back from a position of distrust, coming back from a weak position and redeeming yourself. So the answer to this will be A, retrieval. Right. Okay. Now the next question says only 3 candidates are now in contention for the title. Now the word itself says contention here.
So we are talking not obviously involved in dispute, not in agreement with each other because they are fighting for the title, not amiable, which is friendly. So the correct answer is chance of winning. Similarly, all my fishing paraphernalia is in the card. Now, fishing paraphernalia, we use it very often, and it obviously means to whatever extra things we are taking. So the correct answer is accessories. Yes. Going forward, the public watched in astonishment as he took a sudden jump from the bridge. Astonishment, astonished, a very normal word that we have heard a lot. So the answer to this will be wonderment, right? Going forward, drinking inordinate amount of liquor is not good for health. Inordinate means a lot, okay? Inordinate means something that is done beyond the limits. So the most correct word that you can give from the options is exorbitant. Although exorbitant is used in sense of pricing, but it can be used here also because it is giving the same sense that the word inordinate wants to infer. I think we are down to the last section. Yeah, we have come to the last 10 questions and let us quickly discuss those 10 questions because these are ordering of words in a sentence. And I feel, sir, that they were pretty easy. Absolutely. You have absolutely come to the option because you know that there are no other three choices there. Absolutely. So question number 41 says S, R, Q, and P. Now S, I make at least 3 drafts of a song because I feel you remember it better when you write something. So obviously the correct answer is going to be option A, S, P, R, Q. Similarly, when we move on to question number 42, we are saying for hours in the shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of 10 lakhs. Now, S, R, Q, and P. Now, a gunman who held a hostage for hours in the shop demanded ransom. So, option number QR, which is option number C. Yes, sir. Going forward, living in Russia, country immediately, Ukraine has urged its citizens to leave the. So I have told this in the class also that when you're trying to solve ordering of words or sentences, look for a noun. When you look for a noun, you know what is the theme of that sentence, what is the theme of that passage. So we have Ukraine. So I believe we're going to start our sentences are. Ukraine has urged its citizens living in Russia to leave the country immediately. So the answer is RPSQ. Going forward, what do we have next? Question number 44. Ripping roofs of houses and raising fears, coast of Madagascar in early hours, cyclone 𝒂𝒐𝒏𝒍𝒐𝒂𝒅 crashed into southeastern flooding and food shortages in the region. Again, you can apply the technique that I have told you. We are talking about cyclone 𝒂𝒂𝒏𝒍𝒐. That's what I'm trying to make out of it. So this is the main noun. We can start from R. Cyclone 𝒂𝒂𝒏𝒍𝒐 crashed into the southeastern, ripping roofs of the houses and raising fears of coast of Madagascar in early hours, flooding and food shortages in the region. The answer is C, according to me. What do we have next? The next question says, ecology is protected and aquatic life thrives. We need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that it's natural. So by the options itself, we understand that the sentence has to start with Q. So we have only one option with Q, so the answer is QRSP. 46 question says, very difficult, the poor visibility made the movement of traffic due to fog. Now, when we are looking at the options S, R, and Q that we are talking about, so the poor visibility made the movement of traffic very difficult due to fog. So the correct answer here is going to be Q and R. So the correct answer is that we are talking about QRPS. Let us move on to the next question. So the next question is avenues for the patient to indict, but rarely is it the other way around. There are multiple legal, the doctors. So I feel we are going to start the sentence from R. There are multiple legal avenues. When we are talking about legal, we are talking about angles or avenues, right? There are multiple legal avenues for the patients to indict the doctors, but rarely is it the other way around. So I feel the answer is B, RPSQ. Flight and each person her own journey. Life is a solo, makes his or her.
Very simple, extremely simple sentence, right? Start with R because we have the noun, we have the main noun of the sentence. We have the main noun of the sentence, which is life. So life is a solo flight and each person makes his or her own journey. The answer is C. What do we have next now? Yes, the next question we have 49th is made it evolve technologies and equipment has into a rare center of excellence, adoption of the latest. Now you have P, R, S and Q. So adoption of the latest technologies and equipment. So we start from here and we move on here, and like I said, so the correct answer is option C. We've come to the last question here. Please mark the same. Question number 50. I'm not telling you to mark the answers. Please mark the same. Be made in response to this notice if you have any complaint to the concerned authority. So when we are saying if you have any complaint to the concerned authority, so we are starting with this R and S, or we are saying please mark the same, be made in response to this question. So the option that is correct is question number 50B. Now that we have discussed all the questions, let me remind you all that all of these things were done in both our classes, whether it was Sumit sir or whether it was me teaching. And let me also remind you that we are going to start with our online and offline batches on the 18th. So please do enroll as soon as possible so that you do not miss out on any of these things. At the same point of time, I would also like to tell all the students, whether they are students of the Cavalier or other, that please let us know in the comments if you have any problem and how was your paper, and after looking at the answer key, how much do you think you would have scored in the NDA GAT paper. So sir, how do you think they would have done the paper? Ma'am, I think it is a very subjective question. It depends on the amount of hard work that the student might have put in. UPSC will give you anything, but will not give it to you very easily. You have to work hard for it. Had they worked hard for it, we have guided them in the best possible way. Right. There is not. But when we are talking about, sorry to interrupt you, but when we are talking about English, Science, and GS, what do you think is the most easiest part in the GAT paper as such? Primarily speaking, being an English faculty, but I believe that English is the easiest section because static English is used a lot in NDA paper. So if you're investing your time in reading idioms, phrases, antonyms, synonyms, which we are doing in the class, you're learning them by heart. So 40% paper is static English. You don't have to apply your senses, you don't have to apply any formula. कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. जो क्लास में कराया गया है उसको जाके घर पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. 40% पेपर आप स्टैटिक तरीके से कर लो, बाकी पेपर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर लो. That is why I primarily believe that the English section in the GAT is the best scoring option for the students. Right, I will completely agree with Sumit sir, and I feel that English paper is the most scoring one, and I'm sure कि इस बार भी अपने best उसी में score किया होगा. And before we leave, we'll give it to Bhavani sir, who will discuss the GS portion right now. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. सो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के, और वो 4-5 क्वेश्चंस हमको देखते हुए फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फटाफट से अटेम्प्ट कर लेते हैं. आप उनके सॉल्यूशंस देख लीजिए, उनके आंसर्स देख लीजिए, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट है वो आगे बढ़ेगा. चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और सीधे सीधे ये कनेक्टेड है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक स्टेट असम के साथ. क्वेश्चन नंबर 35. थैंक यू सर. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट अ स्टेट ऑफ इंडिया. आपको एक स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको उस स्टेट को आइडेंटिफाई करना होगा. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स. अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक स्टेट है असम, वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो सेडिमेंट आता है उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है. जो आयरन का कंटेंट जो ज्यादा है यहाँ पर, वो इस रिवर को
इस रिवर को रेड रिवर का नाम देता है, और इस रिवर के आसपास की जो सॉइल है उसको भी इस आयरन से एनरिच करके रेड सॉइल या येलो सॉइल में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि लैंड ऑफ रेड रिवर है और ब्लू हिल्स है। तो ब्लू हिल्स का मतलब है कि यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स 3 of the 6 physiographic divisions of India. When we say physiographic divisions of India, इसका मतलब यह है कि लैंडफॉर्म के बेसिस पर हमारा इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, घाट्स और हिल्स, जो जैसा भी आप कहना चाहें। तो अकेले असम में हमारे पास हिल्स है, हमारे पास मेघालय प्लेट्यू का कुछ एक्सटेंशन है, और साथ ही साथ प्लेन एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास। तो असम इस डिस्क्रिप्शन को फुलफिल कर रहा है। साथ ही साथ इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन सी, असम। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है करंट अफेयर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विकी टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टीवर्ड आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉक बे, व्हिच मींस कि ये 3 एरियाज में घूम के आया है विकी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि विकी ने कौन सी कंट्री को विजिट किया है, व्हिच कंट्री डिड विकी विजिट। तो आंसर जो होगा ये स्टीवर्ड आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी और हॉक बे, तीनों के तीनों है न्यूजीलैंड में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन with regard to static part। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। देखिए ये स्टैटिक पार्ट है और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछा गया है कि मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, सो ही विल बी विजिटिंग, यानी कि मानव जो है दिल्ली के अपने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घूमना चाहता है, विजिट करना चाहता है। तो दिल्ली में कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मैं आपको बता दूं, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं स्टोन। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सी, ये हमारे दिल्ली में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी। नाउ वी हैव the question number 17, very basic question from drainage system of India. When we study the Ganga river system, we generally covers the cities which are situated on the banks of Ganga river. और हमने क्लास में भी किया है गंगा रिवर सिस्टम को कवर करते वक्त। सारे कैवेलियर के स्टूडेंट्स को मालूम है कि गंगा रिवर सिस्टम के अंदर हमने जब गंगा रिवर का रूट पढ़ा था तो वी स्टार्टेड फ्रॉम देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, उससे पहले कन्नौज है कानपुर से पहले, फिर प्रयागराज, वाराणसी, पटना, उसके बाद फरक्का, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो वहीं से एक सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from west to east? या अगर किसी आदमी को वेस्ट टू ईस्ट जाना है गंगा के किनारे किनारे, तो कौन कौन सी सिटीज आएंगी रास्ते में? तो देखिए ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर गंगा रिवर अगर इस तरह से बहकर आ रही है, मान लेते हैं ये गंगा रिवर है, इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम देवप्रयाग वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइंस ईच अदर टू फॉर्म गंगा। तो देवप्रयाग से शुरू हुआ, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से फिर यूपी में आ जाते हैं। उत्तराखंड में 3 सिटीज है, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। फिर यहाँ यूपी में कन्नौज, कानपुर, उसके बाद प्रयागराज और उसके बाद जाते हैं वाराणसी। वाराणसी के बाद बिहार के पटना में, पटना के बाद आता है भागलपुर,
पटना के बाद आता है भागलपुर ईस्टर्न बिहार में, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में एंटर होती है गंगा, जहां फरक्का में इट डिवाइड्स itself into two distributaries. One is Madhumati, which enters Bangladesh, and one is Hooghly, which reaches Kolkata and forms a delta, world's largest delta, Sundarban Delta. Now see, the sequence is Kannauj, Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Patna, Bhagalpur. अब देखिए, कानपुर, प्रयागराज, भागलपुर, पटना, ये तो उल्टा हो गया है। भागलपुर जो है पटना के बाद होना चाहिए, तो कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 117 सेट डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है 118, अगेन इंडिया के मैप पर बेस्ड है, और इंडिया के मैप को अगर आपने रफली भी देखा है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 118, which one among the following states has the longest extension in north south direction? भैया ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ टू साउथ या वर्टिकल है और सबसे लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है? तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा है रफली, तो आप देखोगे छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से एक्सपेंडेड है, इस तरह से छत्तीसगढ़ एक्सपेंडेड है नॉर्थ टू साउथ और लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है, तो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, इट इज 119 और कुछ डेज बताए हुए हैं और उनकी डेट्स दी हुई है, उनको बेसिकली आपको मैच करना है। देखिए 119, एक तरफ डेज है, एक तरफ डेट्स हैं, वी नीड टू मैच देम। सी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे can be matched with 2nd of February. International Tiger Day can be matched with 29th of July. अब अगर ये दोनों भी मालूम है तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बी के साथ वन देखो भाई लोग, बी और सी में है, यानी ए और डी को वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए के साथ 2, ए के साथ 3, तो बी के साथ 1 और ए के साथ 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 ऑफ मार्च को, और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ अप्रैल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 120। अगेन this question has come from the PDF we had provided to our Cavalier students. See the question number 20. Question number 20, which one of the following states or UTs is not among the top 5 in the performance grading index PGI published by the Ministry of Education for the year 2020-21? टॉप 5 में आप देखेंगे कि हमारे पास चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पंजाब है, पर केरल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन और करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा होता है। फटाफट से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पॉलिटी का जो क्वेश्चन है सेट डी में, it starts from this section of polity starts from 52nd question, I guess 52nd question, yes। और क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी थी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पढ़ी थी, तब हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, the highest law officer in the country and the legal advisor to the Indian government। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, this is the question, which one of the following statements about the Solicitor General of India is not correct?
बेसिकली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। और इसके बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये असिस्ट करते हैं, सही स्टेटमेंट है। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी ये है उनके बाद यही, तो सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। द पोस्ट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मैंने शुरुआत में बोला कि ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है, ये इनकरेक्ट है। एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है पॉलिटी का, कमिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, तो अगर आप पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ के ना भी गए हो, मॉक्स भी लगाया आपने सिर्फ, तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए which one of the following committees does not have the members from the Rajya Sabha? The Public Accounts Committee, the Committee on Public Undertakings, the Estimates Committee, the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Option C is correct answer. Estimates Committee में राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता, राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता। 54 क्वेश्चन देखिए, कैवेलियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताया गया था कि 2022 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, तो हाई चांस है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा। एंड हियर इज द क्वेश्चन, देखिए प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो देखिए, अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, पहला जो स्टेटमेंट है वही गलत है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, यही स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली यूनियन मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हो, वो सब एलिजिबल है प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, बाकी पढ़ने का तो कोई सेंस भी नहीं है, पर फिर भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, पर ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है और यही हमारा आंसर भी है 54 का ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए बड़ा सिंपल सा पूछा गया है, कैवेलियर स्टूडेंट्स सिटीजनशिप हमने की थी, सिटीजनशिप में हमने दो तरह से सिटीजनशिप को पढ़ा था, और आपको अच्छे से मालूम है कि हमने जब वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा तो हमने देखा था कि किस डेट को, किस ईयर को बेस डेट और बेस ईयर बनाया हुआ है सिटीजनशिप तय करने के लिए। हिंदुस्तान के नागरिकों की नागरिकता तय करने के लिए किस ईयर और डेट को बेस ईयर या बेस डेट बनाया हुआ है, हमने देखा था। The Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after, सबको मालूम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कौन हिंदुस्तान का नागरिक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम ये एक्ट लेके आए थे, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी ईयर इसी डेट के बेसिस पे उस टाइम पे इंडिया के लोगों की सिटीजनशिप डिसाइड की गई थी। अब हमारे पास पॉलिटी का अगला क्वेश्चन, पॉलिटी का जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 67। एक बार पॉलिटी हो जाए फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, which of the following conditions are necessary for the issue of a writ of certiorari in India? रिट्स मैंने आपको बताई थी, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, हमने सारी रिट्स पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। There should be a tribunal or an officer having legal authority to determine questions affecting rights of subjects and having a duty to act judicially.
Second statement, such a tribunal or officer has acted without jurisdiction. देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है which of the following conditions is are necessary, तो दोनों की दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं, both 1 and 2, both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 68 पॉलिटी का अगला क्वेश्चन है, who among the following chief justices of India orders the constitution of a special bench called social justice bench? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई सारे लोगों को पता होगा, कई सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो ठीक है, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर भी नहीं सकते, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर गलत अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए। तो आई होप कि आपने कोई गलत अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप नहीं पड़े होंगे। So who among the following chief justices of India ordered the constitution of a special bench called social justice bench? Answer है Justice H.L. Datta. Sorry, Justice H.L. Dattu. Justice H.L. Dattu. Now the next question with regard to polity. Next question with regard to polity is क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95 ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। फटाफट से इनके आंसर्स देखते हैं। 93 ये देखिए, which one among the following departments or authorities is not under the Ministry of Home Affairs? Is not under the Ministry of Home Affairs. भैया एमएचए के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी अथॉरिटी नहीं आती, वो आपको पता करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एमएचए के अंदर आती है। द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इट आल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, दिस अथॉरिटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है भाई लोग। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव 94, क्वेश्चन नंबर 94 सी। दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम शेड्यूल्स। थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, पर फिर भी कई सारे लोगों ने इसको कर लिया होगा ऑन the basis of elimination method. Who among the following is given discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribes advisory council? Tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas. तो इसका जो आंसर है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ही ये हक है कि वो ऐसे स्टेट में जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो हैं पर शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, वहां पर वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जोनल काउंसिल से क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज आर इंक्लूडेड इन द नदर्न जोनल काउंसिल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको नदर्न जोनल काउंसिल के जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसमें आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, then we can eliminate option C and D also। तो हमारे पास बच गया क्या? ऑप्शन बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नाउ with regard to polity, I don't think that we have further questions. Now we have the questions from economy section. एक बार देख लेते हैं इनको भी फटाफट से। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं
इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सेट डी का 51, यहां से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, पर ठीक है, जनरली जितने पूछते होते नहीं पूछे गए, थोड़े कम है इस बार। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 से इकोनॉमिक्स शुरू होती है, और वही सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, कई सारे क्वेश्चन वही आए हैं। Sorry, the questions from economics start from 61, not from 51, 61. See, this is the first question. Which of the following policies help to raise interest rate unambiguously and thereby lead to appreciation of currency? तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में लेते हैं, इसका आंसर अभी मार्क करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। तो आंसर है ऑप्शन ए। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, which among the following are the objective and objectives of the नीति आयोग? अगेन पॉलिटी में हमने कवर किया था नीति आयोग को। अब नीति आयोग को कवर किया, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, उससे पहले प्लानिंग कमीशन, क्यों नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ऑब्जेक्टिव्स देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स और यूटीज। फिर allocation of funds at national and state levels, design strategies and long-term policies and program frameworks। देखिए, यहां पर नीति आयोग का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 है। ये नीति आयोग स्टेट्स या यूटीज के ऊपर कोई पॉलिसीज इंपोज नहीं कर रहा है। नीति आयोग कोई अलोकेशन ऑफ फंड का काम भी नहीं करता। ये पहले काम होते थे प्लानिंग कमीशन के टाइम पर, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के थ्रू। और 2015 में ये नीति आयोग आया है, और इसका पर्पस सिर्फ यही है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। इसका काम पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को बनाना है, उनका फ्रेमवर्क तैयार करना है, ना कि उनको इंपोज करना। तो डिजाइन स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स। तो ऑप्शन डी, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64, the computation of poverty in terms of monthly per capita consumption expenditure MPCE based on the mixed reference period was recommended by the, basically किस कमिटी ने ये recommend किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर जो है वो तेंदुलकर कमिटी है। आंसर है तेंदुलकर कमिटी। ऑप्शन बी, तेंदुलकर कमिटी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 65 from economics section. Which of the following are the submissions of the National Skill Development Mission NSDM? तो बेसिकली यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके सबमिशंस के बारे में बात की जा रही है। तो पहला सबमिशन दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, देन सेकंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद है लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। 1, 2 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following strategies
is are adopted for implementing the पोषण अभियान. पोषण अभियान, देखिए अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के साथ मिला के दिया गया है आपके सामने. तो पहला स्टेटमेंट है इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. ये आपका यहाँ पर आंसर है सी. तो आई होप आपको ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए हो. कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनका जल्दी आपको आंसर जो है आंसर की में मिल जाएगा. हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है. अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ओके ठीक ठीक. तो हमारा तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस देख ही लिए. अब ये क्वेश्चंस जो है हम ये कहेंगे कि पेपर ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ना ही बहुत ज्यादा इजी था. ये मॉडरेट लेवल का पेपर है, पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स. ये ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे आप एज ले सकते थे. और कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है, जैसा बताया गया, जैसा गाइड किया गया वैसे किया है, तो वो आराम से कट ऑफ को बहुत अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर करने वाले हैं. तो आई होप आप अपने आंसर की को मैच कर लें हमारे आंसर की के साथ और देख लें कि किस तरह का स्कोर आपका आने वाला है, और उसी तरह से आगे की जो तैयारी है उसे आप प्लान करें, अकॉर्डिंगली प्लान करें. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट्स, अभी एनडीए का जो क्वेश्चन पेपर है जल्दी आपके सामने होगा. सीडीएस का जो डिस्कशन है वो ऑलमोस्ट हो गया है और स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को मैच कर लें. थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, थोड़े टाइम में हमारे जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके सामने मौजूद होंगे. और जैसा कि मैं ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, कई सारी चीजें ऐसी आई हैं जो बिल्कुल बेसिक है, और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों का अटकना वो थोड़ा सही नहीं लगता. और अगर आपने थोड़ा सीरियसली तैयारी की है तो आप क्वेश्चन पेपर को देख के बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए होंगे, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, ज्यादा टफ नहीं है. और आई होप कि कट ऑफ जो है इस बार थोड़ी सी ठीक रहेगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी इजी आया है और जीएस इतना ज्यादा टफ नहीं है. तो कट ऑफ जो है 107 और 8, मैं ओटीए की बात कर रहा हूँ, ओटी की अगर बात करें तो 107 और 108 के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है. तो इतना तो रहेगा आराम से, इतना रहेगा आराम से. और
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वो लगभग सारी चीजें कवर हुई है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा का सारा वो सब कुछ आ गया है जो हमने पढ़ाया है, वो तो पॉसिबल भी नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी को डिकोड कर लें कि यूपीएससी क्या देने वाली है एग्जाम में, तो फिर तो बात ही अलग है। तो इतना कुछ हमने पढ़ाया हुआ, इतना कुछ हमारे एग्जाम में आ गया है कि आप आराम से अच्छे मार्जिन के साथ कट ऑफ पार कर जाए अगर आपने सिंसियरली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव मार्किंग से आपने दूरी बनाए रखी है, लालच ना किया हो एग्जामिनेशन में कि भाई चलो ठीक है ये भी अटेम्प्ट कर लेते हैं वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तुक्के जो हैं यहाँ काम नहीं आएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में दिक्कत ही यही है कि आपके तुक्के काम नहीं आएंगे। चलिए, हमारे एनडीए के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाता हूँ सीडीएस के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करने के लिए हमारे सामने अभी हमारे मैथ्स फैकल्टी होंगे। सर प्लीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीडीएस का पेपर तो बताने की जरूरत नहीं है, मैथ्स का तो काफी इजी आया हुआ है, बैठ के कर ही रहते हैं। अभी सॉल्व हो चुका था बट बैठे हुए थे, बीच में कुछ क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के जो अभी हुए नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट तो मैं कर रहा था तो वैल्यूज तक याद थे मुझे, तो आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से एक बार। मैं जरा फोन भी ले आता हूँ, तो एक सेकंड। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो वाला सेट मेरे पास में है अभी वो पेपर को रेडी कर रहे हैं। पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। मोस्टली क्वेश्चन तो करवाए हुए थे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और तुम लोग देखोगे अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये तो इजी क्वेश्चन ही है जो ऑलमोस्ट हमने क्लास में डिस्कस किए हुए थे। उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, वो भी नहीं बोल सकता मैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट है बिल्कुल। अगर मैं इसमें से 10 क्वेश्चन माइनस कर दूं तो बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आंसर के साथ रटे हुए थे। तो एक बार इसको जरा रेडी कर ले हम लोग। यहाँ पे पीडीएफ अगर आ जाता है तो वी कैन स्टार्ट इट अर्ली। इट्स अ हेक्टिक डे फॉर मी एक्चुअली। काफी देर से क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस हो रहा था। पहले एनडीए के मैथ्स के 120 क्वेश्चंस थे, उसको भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था 100 के अराउंड क्वेश्चंस। नाउ इन सीडीएस इट इज 100 क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा डे टायरिंग हो गया है तो गला थोड़ा बैठा हुआ है मेरा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम पॉसिबल। आंसर की तुम लोगों को मिल जाएगा एज सुन एज दिस डिस्कशन पार्ट इज ओवर, क्योंकि डिस्कशन में पॉसिबल नहीं होता कई बार सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दूंगा डिस्कस। आउट ऑफ 100 आई गेस 80 क्वेश्चंस तो मैं तुम लोगों को अभी करवा दूंगा, विद इन 1-1.5 आवर के अंदर हो जाएंगे 80 क्वेश्चन। बाकियों के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। अभी देखते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर कभी रेडी नहीं हुआ है। बस स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में, विद इन 2 मिनट स्टार्ट हो जाएगा ये। एक एक करके देखते हुए जाओ।
सेट कौन सा है? सेट बी है। ओके, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट बी क्वेश्चन। अब आप पे पीडीएफ आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड बोथ ऑफ देम। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ट्रिक अभी डिस्कस करते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड करना है कि इनमें से वो कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देगा। अब इसमें करने का तरीका क्या है, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 35 और 91 को एक ऐसी वैल्यू के साथ में जो इन दोनों का एचसीएफ है। तो 35 और 91 का एचसीएफ 7 होगा, इसको लिख लो 2 की पावर 7 होल के पावर में 5 माइनस 1, और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 7 होल के पावर में 13 माइनस 1। अब इन दोनों में अगर तुम देखो तो 2 की पावर में 7 माइनस 1 वाला पार्ट जो है, अगर मैं उसको कॉमन निकाल लूं तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे कि ये दोनों वैल्यू डिविजिबल होगी। 2 की पावर 7 आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट 128 होता है, और 128 माइनस 1 127, दैट इज करेक्ट आंसर इसका सी हो। अगले क्वेश्चन में पावर ऑफ 10 लाने के लिए तुमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जितनी वैल्यूज है 1 से लेके 29 तक लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 से लेके 29 की पेयरिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ पेयर मैंने बनाए थे 25 20। एक्चुअली ये स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं, उसने बिल्कुल सही बनाया है। उसने क्या किया है, 5 के सारे मल्टीपल लिखे हैं, 5 10 15 20 एंड 25। अब इसको अगर हम मल्टीपल में ब्रेक करने जाएंगे तो हम लोग को टोटल 10 के पावर मिलने वाले हैं 6, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सो नो नीड टू रेक्टिफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 65 टू द पावर ऑफ 99 इज डिवाइडेड बाय 11। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि 65 जो होता है वो 11 के टेबल में नहीं आता, इसको हम लोग लिख लेंगे 66 माइनस 1 पूरे की पावर में 99, और इसको डिविजिबल बाय 11 बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखो 6 के पावर में चाहे कोई भी नंबर हो वो 6 पे ही खत्म होता है, और यहाँ से एक 1 और बच जाएगा। दैट मींस तुम्हारा आंसर तुम्हारा 10 ही बनेगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में हमने काम किया हुआ है क्लास में, तो तुमको इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है। दैट मींस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसको हमें लिखना पड़ेगा ax² + bx + c के फॉर्म में। अब ये बन गया है। अब हमारे पास में जो इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, उसका डिफरेंस दिया हुआ है 5, और इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट। एक बार चेक कर लेंगे फॉर्मूला को, अल्फा प्लस बीटा नहीं 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5। यू कैन चेक द फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा, और रूट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए था। अब हमें ये भी पता है थ्योरी के हिसाब से कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमेशा माइनस b/a के इक्वल होता है, जो कि इस क्वेश्चन में हो जाएगा ओनली b, और अल्फा इनटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा c-5। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे रख लेते हैं और रूट को हटा के वहां भेज देते हैं, 25 हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ c-5। खोलते चले जाओ, आंसर कुछ के बाद विजिबल हो जाएगा। b² माइनस 4c प्लस 20 is equals to 25। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, नो मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा था, 4 गया ना 5। फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है कि कहां गया क्वेश्चन, यस ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसकी प्लॉटिंग पहले करनी पड़ेगी, तुम्हें हल्की सी प्लॉटिंग करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टी चल रही है जिसमें 150 आदमी है, 150 पर्सन्स आर देयर इन अ पार्टी, और वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर मिल्क पीते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो यूनिवर्सल सेट 150 स्टूडेंट्स का है, पर्सन्स का है, 3 तरह के लोग हैं, तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स आ गया यहाँ पे। एक के ऊपर में लिख दो टी, एक के ऊपर में लिख दो सी, और एक के ऊपर लिख दो एम। टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी और एम फॉर मिल्क। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% टेक टी, तो इसको हम लोग ऊपर बाहर में लिख देंगे 75। उसके बाद 60% टेक कॉफी, कॉफी वाले के ऊपर में लिख दो 60, एंड 50% टेक मिल्क। ये कर दिया हमने। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी दिया हुआ है कि 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी दोनों पीने वाला, मतलब ये वाला रीजन तुमको 15 दिया हुआ है। बस आई थिंक इसके बाद और कोई डेटा हमारे पास है नहीं। साथ में उसने लेकिन एक लाइन और लिख दी है कि नो वन टेकिंग मिल्क
टेक्स टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिल्क के साथ साथ टी पीते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। इसका मतलब है कि ये दोनों जगह में जीरो आने वाला है, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मिल्क और टी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो वहां पे वो जीरो लिख देंगे। अब हम लोग को एक चीज यहाँ पे जो समझ में आ रही है वो ये है कि 75 में से 15 माइनस करके यहाँ बचेगा 60 और 60 में से 15 माइनस करके यहाँ बचेगा 45। हमें क्वेश्चन में ये नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी एंड मिल्क पीते हैं बट टी नहीं पीते। एक वो रीजन मिसिंग हो गया तुम्हारा और एक ओनली मिल्क वाला रीजन मिसिंग है, और क्वेश्चन तुमसे इन्हीं दोनों की वैल्यू मांग रहा है। तो एक बार अगर मैं सबको ऐड कर दूं और यहाँ पे रख लूं x और यहाँ पे रख लूं y, तो मुझे y का कैलकुलेशन करना है। तो इन टोटल इन सब का सम मिला के 150 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं रफली इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये बन रहा है 120 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 150, जहां से x प्लस y की वैल्यू निकल के आ गई समवेयर अराउंड 30। अब x प्लस y अगर 30 आया तो जब तक हम लोग को ये कंक्रीटली ना पता हो कि x के अंदर क्या है, तो देखो 50 और 40 तो इसका आंसर हो नहीं सकते। मैं 30 मान सकता था इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मुझे 20 के साथ जाना पड़ेगा और इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 20। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 लोग हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको तो भाई हमने ऐसे लॉजिक से ही कर लिया था। ये देखो ध्यान से, ए बी सी और डी और ई, ये 5 लोग बिजनेस में एंटर करते हैं और वो अपनी मनी लगा रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2 3 4 5 6। हाउएवर द टाइम इन्वेस्टेड बाय देम इज इन द रेशियो, मतलब जो 2 रुपए लगा रहा है वो 6 महीने तक पैसे को लगा रहा है, जो 3 रुपए लगा रहा है वो 5 महीने तक, 4 रुपए 4, उसके बाद 3 और ये 2। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि तुम इनके मनी के अमाउंट को और टाइम के अमाउंट को मल्टीप्लाई करके ये चेक कर लो कि कौन सा ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी इन्वेस्टेड। तो सीधी सी बात है भैया, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसी को सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो तुम देख सकते हो कि ये ए के लिए था, ये बी सी डी ई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इनके प्रॉफिट और टाइम को, मतलब जो पैसा ये लगा रहे हैं और जितने टाइम के लिए लगा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई किया, तो सी सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है, तो सी को सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये थोड़ा सा था, मैं काफी देर तक उलझा रहा, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा है जो फाइनली मैंने पाया, क्योंकि 437 19 के टेबल में कट हो जाता है और 1073 भी किसी के टेबल में जा रहा है, तो इन दोनों को छोड़ के 797 जो है वो ही सिर्फ प्राइम नंबर है, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें वो बोलता है कि ए किसी काम को ट्वाइस स्पीड से कर सकता है एज कंपेयर टू बी, और बी उसी काम को 1.5 स्पीड से 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी कर सकता है, और अगर तीनों को काम खत्म करने में 12 दिन लगे तो बताओ सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। सीधी सी बात है, तुम ए बी और सी को रेस्पेक्टिवली अगर कुछ टाइम दे देते हो, सपोज कर लो ए बी से दुगना बेहतर काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ए को अगर x डेज लगता है तो b को 2x डेज लगेगा। इस फिलॉसफी से तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, और b जो है वो 1.5 टाइम्स स्मार्टर है एज कंपेयर टू c, तो हम लोग को c को एक ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिसके साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई 2x डेज में b कर रहा हूं और उसको मैं c से 1.5 गुना ज्यादा बेहतर कह रहा हूं, तो यहाँ पे ये 2/3 करके इसको कर सकते हैं हम, और फिर इनका सम होता है, इसको टाइम के फॉर्मूला में डाल दो 1/t = 1/t1 + 1/t2 + 1/t3। तो यहाँ से तुम टाइम c के लिए निकाल सकते हो, जो कि सॉल्व करके बिल्कुल सही किया इसने, 1/2 1/4 1/6 को 1/12 के इक्वेट करके सॉल्व करने पे 66 डेज इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत पुराने हो गए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि तुम्हारे पास में एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 12 है, तो ऐसे नंबर से बहुत कम है। जैसे अगर मैं ऐसे सोच के लिखूं तो एक तो आ जाएगा 48 और एक आ जाएगा 57, और मुझे नहीं लगता हर एक 66 भी है। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 18, मतलब अगर मैं इन डिजिट्स को उल्टा करके लिख दूं तो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 18 का होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे 18 का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ज्यादा क्या है 26 के आसपास।
इसको उल्टा करता हूं तो ये डायरेक्ट मुझे आंसर दे रहा है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस दिख रहा है, ये तो सेम ही है तो ये तो 0 दे देगा। तो मेरा नंबर हो गया 57 और हमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, तो आंसर हो गया 2। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मेहनत से किया गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, इसके फिलहाल मैं इसका आंसर देके छोड़ रहा हूं सिर्फ। इसका आंसर मैंने निकाला था, ये आया था हमारा सी ऑप्शन, दैट इज 54 किलोमीटर। उसके बाद आके हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 11 यहाँ पे है डायरेक्ट हमारा, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये भी बच्चे ने बहुत सही किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास में ए बी सी डी ई और एस के बीच में रिलेशन दी हुई है। तो सबसे पहला काम, एक क्लास में मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब कुछ वैल्यूज आपस में इक्वल दिए हुए होते हैं तो उसको हम लोग सीधा इक्वेट कर देते हैं विद अ फिक्स्ड कांस्टेंट की। अब इससे क्या होगा, हम लोग अपने ए बी सी डी ई और एफ को एक कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो कि अगर 2a के इक्वल है तो के a की वैल्यू तुम वहां से निकाल सकते हो k/2। देखो यहीं पे डायरेक्ट उसने पुट कर दिया है, तो ये a हो गया k/2 और b हो गया k/2। नीचे में अपॉन में c की वैल्यू k/6, फिर k/9, k/12 और k/8। उसने क्वेश्चन को बीच में छोड़ दिया, मैं पूरा करके दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसा करने के बाद होगा क्या, तुम्हें इस रेशियो को सिंपलीफाई करके देखना था कि ये किसके इक्वल है। मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये मुझे फाइनली b2 के आंसर के इक्वल है। एक बार करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया, ऊपर आ जाएगा 5। नीचे वाले का एलसीएम लेने जाओगे 6 9 12 18 का, तो वो 36 होता है। तो 36 तुम नीचे लिख दोगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 6k, यहाँ पे आ जाएगा 4k, 10k, 13k, 15k बन जाएगा। अब तुम यहाँ से देख सकते हो तुम्हारा आंसर हो गया है 5k/6 into 36/15k। अब ये देखो यहाँ से 5 से ये काटेगा 3 में, जैसे कि यहाँ 6 3 18 होता है, 18 36 को पीट देगा 2 में, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है, क्लास में बच्चे एग्री कर जाएंगे इस चीज को। अरे सर ये तो आपने कितनी बार बोल बोल के पका दिया था। ये क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a + b + c की वैल्यू 0 होती है उसको साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात उसने पूछ दी है कि इसका रूट्स क्या होगा। मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, इसका रूट्स हमेशा 1 and c/a होता है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 13 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इसका भी आंसर मैंने निकाला था, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन में अभी दे नहीं पाऊंगा। इसका आंसर मैंने निकाला था, आया था आंसर मेरा सी, तो ये मैं यहाँ पे टिक मार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। इसमें तुमको दिया हुआ है ये दोनों वैल्यू है और इसका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट उसने बता दिया है। 5 + 3√2 into 5 - 3√2 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है अल्फा। तो एक बार तो इसको सॉल्व ही कर लो। a² - b² की वैल्यू आ जाएगी 25 - 18, दैट इज √7। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आई है वही √7 की। और तुमको क्या पूछा है कि व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 अल्फा। दैट मींस तुमको क्या करना है, 8 + 2 √7 का अंडर रूट निकालना है। ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। यहां से हम लोग अपने a और b की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा √7। दैट मींस ये पूरी वैल्यू जो है वो √7 + 1 का होल स्क्वायर। खत्म कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। when every even power of every odd integer greater than 1 is divided by 8, what is the remainder? अब इसके लिए तुम एक छोटा सा काम कर लो। कोई भी ऑड इंटीजर लेके उसका एक इवन पावर पकड़ लो। ऑड इंटीजर में उसने 1 को लेने के लिए मना किया, तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा मेरा 3। 3 के पावर में रख लो एक ऑड इंटीजर के नाम पे तुम ले सकते हो। एक इवन पावर लेना है तो 2 ले लो और इसको डिवाइड करना है 8 से। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को डिवाइड करोगे 8 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। खत्म हो गया, वैल्यू पुटिंग से हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तुमने किए हुए क्लास में। अभी ये देखो, ये फिर मैं वही बोलूंगा वैल्यू पुटिंग करने के लिए। इसमें तुमको बोल रहा है, कुछ और डेटा तो दिया नहीं है, सीधा उसने पूछा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो क्या n × n² + 2 होल डिवाइडेड बाय 3 भी एक नेचुरल नंबर हो। तो आप नेचुरल नंबर में सबसे फेवरेट, अगर और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो n को वैल्यू पकड़ा दो 1 का। और इसको यहां पुट करो 1 × 3/3 काट के बना 1। तो 1 तो आ ही रहा है, नेचुरल नंबर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, इफ m इज एन ऑड इंटीजर, अच्छा ऑड इंटीजर है, 1 लेने के लिए मना तो नहीं किया है, तो बहुत अच्छी बात है, 1 ही डाल दो। तो ये बन जाएगा 1 + 4 + 11 अपॉन 16। इसको सॉल्व करके ये आ रहा है 16/16, जो कि आंसर देगा 1। अच्छा 1 भी तो इंटीजर होता है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी, दैट इज बोथ 1 and 2। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एक सेकंड यहां पे आना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में तुमको थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग का सहारा इसमें भी लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इट इज गिवन दैट
5 does not divide n minus 1 n and n plus 1। तो एक n को ऐसी वैल्यू दो जिसको वहां रखते ही 5 में से किसी को भी डिवाइड ना करें, तो मैं n को मैंने सोच समझ के 3 वैल्यू दी। अब सोचो 3 minus 1 हो गया 2, फिर 3 और फिर ये बन गया तुम्हारा 4। तो 2 3 4 में से कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होता। अब इस n स्क्वायर का तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है मेरा, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं करता हूं और मैंने n को 3 दिया है, 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो गया और 5 डिवाइड्स 10 होता है, बिल्कुल सही आंसर है, खत्म हो गई बात। अगले क्वेश्चन में जाऊंगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज 11। मतलब तुमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 7 आए, 11 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर सेम आए। इसका एक डिटेल मेथड होता है, लेकिन जब ऑप्शन है तो करने की क्या जरूरत है। बच्चे ने बड़ी आराम से सी ऑप्शन को टिक मारा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी में यही कहता है, ये आराम से दिख रहा है कि 11 से डिवाइड करने पे ये चारों गायब हो जाएंगे, 7 बच जाएगा, और किसी ऑप्शन में ये चीज दिख नहीं रही है। 18 से डिवाइड कर लो फटाक से, ये भी दिख जाएगा कि 7 पे ही छूटेगा, तो कहानी खत्म है। 18 इसका करेक्ट। 19 का लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पे वर्क चल रहा है। वैसे तो है 12,000 रुपए उस पे लिए हैं 4 साल के लिए, और उसमें 5 साल के लिए 20,000 रुपए लिए थे। ये दोनों ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। करके देखा था मैंने, तो इसमें यही निकला था कि 6,000 का डिफरेंस पड़ रहा है, और फर्स्ट लाइन के हिसाब से अगर मैं ए का निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तुम्हारा कुछ बन जाता है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, उसमें आया तो था 6,000, 20,000 इंटू 5 साल में देना है इसको। हाँ, 5 साल 5% के इंटरेस्ट पे ये देना है ए ओस टू बी, माने ए को बी को देना है, ए को बी को देना। कितना बना ये देख लेते हैं एक बार। ये काट के बन रहा है 5 का 25, 5,000 रुपए देना था, 10 20। हाँ हाँ, उसके बाद बी ओस टू ए, बी को ए को देना है कितना, 12,000 4 साल के लिए 5% के इंटरेस्ट, 12,000। इसको कट करके देखो एक बार, ये तुम्हारा कुछ बन जा रहा है 20 24, ये 2400 बन रहा है। तो 2600 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा आइडिया क्लियर नहीं हो रहा था कौन सा है, तो थोड़ा सा मैं वर्क करके बताऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैच नहीं किया। अच्छा, अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज तुमको मालूम है। अब देखो कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी क्या हुई है कि उसने आगे जाके तुमको ये बोल दिया है कि एक नंबर जो होना चाहिए था, क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन इफ इट वाज डिटेक्टेड दैट एन एंट्री ऑफ 47 मार्क्स, एक एंट्री जो कि 47 मार्क्स की होनी चाहिए थी, वो गलती से क्या हो गई है तुम्हारी, अबे जो 47 जो 47 होना चाहिए था उसको हमने 74 लिख दिया। इसका मतलब है कि जो लोचा हुआ है हमारा 74 माइनस 47 का होगा, 27 नंबर का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि ए सेक्शन के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, तो वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 65 30 करने पे 1950 बन रहा है, और बी सेक्शन में 35 स्टूडेंट से 70 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन जा रहा है 2450। अब इन दोनों को ऐड करके जितने का डिफरेंस है उसको पहले भगा दो, यहाँ से 27 होगा, उसको डिफरेंस करके ये वैल्यू उसने लिखी है 4373, बिल्कुल सही है ये। 4373 लिखने के बाद जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दोनों सेक्शन के, वो है तुम्हारे 30 और 35, 30 एंड 35, तो उससे डिवाइड कर देंगे 135, उससे करके 67.28 टिक मारा, इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 21, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा तुम्हारे सामने ही किया हुआ है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें तुमको अल्फा और बीटा उसके रूट्स दिए हैं। सबको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के हिसाब से 7 के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए के हिसाब से अल्फा बीटा 1 के इक्वल होगा। तुम्हें पूछा है अल्फा के पावर में 4 प्लस बीटा के पावर में 4 की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ से कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है हम लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से इसको निकालना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा 4 प्लस बीटा। और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा सब कुछ गिवन है, सॉल्व करके 2207 निकाला, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हां, 3 एंड 360 के फैक्टर्स मैंने लिख के काउंट किए थे, 360 के 24 फैक्टर्स निकालते हैं, और पावर में एक्सप्रेस करके काउंट करोगे तो वो सम जो है वो 1170 का भी बन रहा है। तो ये दोनों आंसर्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। यहाँ पे सीधी सी बात है, तुमको नंबर को ऐसे रखना है xy 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 xy। तो उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, 1 2 1 2 1 2 1 2 को चेक कर लिया और ये किसी की बात है कि 3 7 13 37 सबसे डिविजिबल है, तो सीधा डी ऑप्शन को टिक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये तुम्हारा एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको तुमको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रेक करते समय कुछ रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तुम इसको ब्रेक कर लो। तो 3 स्क्वायर दोनों में आ रहा है, इसमें 3 की पावर 29 है, यहाँ पे 3 की पावर 33 है। 11 के टेबल में ब्रेक करते हुए जाओ, फाइनली तुम्हारा आंसर 3 की पावर 11 -9 आएगा और वही तुम्हारा सही आंसर। ये शॉर्टकट मैंने क्लास में कई बार तुम लोगों को बताया हुआ है कि रूट के नीचे अगर कोई वैल्यू रिपीट होते हुए जा रही है मल्टीप्लिकेशन में आपको इंफिनिटी, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू वही x रहेगी। उसने इसको लॉजिकली प्रूफ भी किया है। इफ यू वांट टू सी इट फ्रॉम देयर इट्स ओके, अदरवाइज को ऐसे ट्रिक ले सकते हो कि कोई भी वैल्यू अगर यहां रूट के नीचे मल्टीप्लिकेशन में आपको इंफिनिटी जा रही है तो उसका नेक्स्ट आंसर जो होता है वो 4 ही होता है, या जो नंबर है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 26। इसमें उसने बोला है कि m और n दो नेचुरल नंबर है। What is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121? तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तुमको मिनिमम वैल्यू ऑफ m plus n चाहिए, तो m और n को मिनिमम वैल्यू तुमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा 33m है, यहाँ पे m की जगह चिपका दो 3 और n की जगह 22 के साथ 22 छोटी वैल्यू के साथ चिपका दो 1। तो ये टोटल देखो नेट कैलकुलेट करके आ रहा है 211। इससे इसको डिवाइड करोगे 121 से, ये डिविजिबल होगा। उसके बाद तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1 4 होता है, दैट विल बी द मिनिमम। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, इसमें एक काम कर सकते हैं, तुमको दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इक्वल्स टू 2160। ये बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया तो है, लेकिन कुछ अलग तरीके से किया। मैं तुमको ऐसे बता देता हूं। xy की वैल्यू दे रखी है 2160 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स x² + y² की वैल्यू दे रखी है तुमको 4896। और तुमको क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुन लो, व्हाट इज द मीन ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि तुमको x + y निकाल के बाय 2 करना है। अब तुम्हारे पास में देखो ऑलरेडी सब कुछ है, तुमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। जो मैंने बोला मैं फिर से लिखता हूं उसको। एक तो x y की वैल्यू दे रखी है, एक सेकंड स्क्रॉल कर दिया ऊपर, एक मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ये तुमको दे रखा था 2160 और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो दे रखा है वो x² + y² = 4896। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले x + y तक पहुंचना है, जिसका अपने पास में फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + 2x। x² + y² यहाँ पे तुमको पता है क्या है, 2xy की वैल्यू यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट करके देखा था, तो x + y की वैल्यू आ गई थी 96। लेकिन तुमको तो इसका एवरेज निकालना है, y2 कर दो, y2 करते ही 48 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 28 नंबर। 28 नंबर में मूव करते हैं। ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन कर लोगे आराम से, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इसे बोल रहा है कि एज ऑफ क्यू एक्सीड्स पी, मतलब पी एज ऑफ क्यू एक्सीड्स पी, मतलब क्यू बड़ा है, पी बड़ा है, क्यू बड़ा है पी से बाय 3 इयर्स। ये पहले लिख लेते हैं, एज ऑफ क्यू एक्सीड्स एज ऑफ पी बाय 3 इयर्स। अच्छा, आर की एज ट्वाइस ऑफ पी है, और क्या दिया हुआ है, क्यू की एज ट्वाइस ऑफ एस है, और क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ आर एंड एस इज 30। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उसको क्या चाहिए, पी और क्यू का सम का एज का सम चाहिए ना, तो हम लोग आर और एस को पी के टर्म्स में कर लेंगे। आर और एस को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो आर तो पहले ही मुझे दिख गया, दिस इज 2p, और एस के जगह में लिख देते हैं q/2 = 30। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है 4p - q = 60, और यहाँ पे क्या है, q - p = 30। ये मैंने करके देख लिया था, इसमें से रिस्पेक्टिवली पी और क्यू की एज जो आ रही है वो 30 और 15 की आ रही है, और यहाँ से तुम अपना आंसर टिक कर सकते हो। 45 इज द करेक्ट आंसर। मैं चेक करवा देता हूँ, देख लेता हूँ इसका आंसर देने के लिए। 45 ही है, 28 का डी बिल्कुल सही आंसर है, ये आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये हमेशा याद रखना, एक थ्योरी होती है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, तो अगर वो √a + √b - √c पूछ रहा है, ये पॉजिटिव ही आएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तुम्हारे पास में 4 बेल्स हैं जो कि बजते हैं एट द इंटरवल ऑफ 15, 25, 35 और 45 मिनट। तो अगर ये चारों बेल 9 बजे एक साथ बजे हैं, तो 3
दिन के अंदर ऐसा कितनी बार होगा, नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब 3 दिन में ऐसा कितनी बार होगा कि ये चारों बेल एक साथ बजेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तुम क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। इसने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, कैसे निकाला है पता नहीं, 5 से काटना चाहिए था, उल्टा सीधा लिख रहा है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ फिर से। 15, 25, 35, 45, 5 के टेबल से काटते हैं इसको, 3, 5, 7, 9 और एक बार और 3 से काट लो, 1, 5, 7, 3। तो ये कितना हो गया देख लेते हैं ना, 225 इंटू 7, ये बन गया 5, 7, 1575 का। ठीक है इसको, हाँ 1575 इसका वैल्यू आया है। 1575 को डिवाइड कर लो, ये कितना मिनट्स है ना, पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2, 120, 375, 26। इसका मतलब है कि 26 घंटे में एक बार ये बचेगा, 72 घंटे, 26, 52, दो बार इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2 बार ये बचेगा 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 31, 32, 33, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 31 में उसने तुमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 वैल्यूज है पॉजिटिव वाले, A, B, C, D, जिसका सम है 100। हमेशा याद रखना ये चीज, थ्योरी कहती है कि 4 इवन नंबर का सम या फिर 4 ऑड नंबर का सम या फिर 2 इवन और 2 ऑड का सम ही मिला के एक इवन नंबर बन सकता है। ये थ्योरी पहले अपने दिमाग के अंदर भर लो। इसका मतलब है कि जब तुम s की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे, which is equals to -1 to the power of a, -1 to the power of b, plus -1 to the power of c, plus -1 to the power of d, तो इसकी वैल्यूज मैंने क्या बोला अभी, या तो चारों पॉजिटिव हो, मतलब चारों इवन अगर हो तो ये सम हो जाता है 1 + 1 + 1 + 1 दैट मींस 4, या चारों ऑड हो तो ये सम हो जाता है -1 -1 -1 दैट मींस -4, और अगर 2 इवन और 2 ऑड तो ये हो जाएगा -1 -1 +1 +1 दैट मींस ये जो s है ये 3 वैल्यूज ले सकता है, 1 is 4, 1 is -4 एंड 1 is 0। इसका आंसर हो गया। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 97 टू द पावर ऑफ 30, ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी किया था। 97 टू द पावर ऑफ 30 - 14 टू द पावर ऑफ 30 इज डिविजिबल बाय, तो इसको ब्रेक कर लो ना, इसको ऐसे खोल दे, 97 के पावर में 2 और उसके पावर में 15 और 14 के पावर में 2 उसके पावर में 15, और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो एक में 97 - 14 मिलेगा, एक में 97 + 14 मिलेगा। तो अब ये तुम देख लो 97 - 14 83 होता है, उससे तो होगा ही होगा, और 97 + 14 111 होता है जो कि 37 के टेबल में आता है, तो बोथ 37 एंड 83। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट सम है, लॉग अगर पढ़े हो तो आराम से कर लोगे। क्या दिया हुआ है, log 50 to the base of 10 इज एन रैशनल नंबर। log 50 to the base of 10 को तुमको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। इसको ऐसे लिख लो 100/2, 50 होता है और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बन जाएगा log 100 के बेस में 10 माइनस log 2 के बेस में 10। इसकी वैल्यू होती है 2, उसकी वैल्यू होती है 0.3010, तो इसकी नेट वैल्यू जो आएगी 1.69 कुछ आएगी, जो कि तुम आराम से उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सही है, ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी दिक्कत होने वाली है कि उसने इसको इरेशनल बोल दिया है। log 10 के बेस पे 100 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये रैशनल तो हो नहीं सकता, इसलिए खाली पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दैट मींस 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी को कंपेयर करना, आई थिंक इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन हमने क्लास में इस तरह के किए हुए हैं, पर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 17 वुमेन एंड 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो एक साइड में ये बन गया N1 D1, दूसरे साइड में 12 वुमेन एंड 23 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। ये दूसरे साइड से बन गया। अब तुमको वुमेन और मैन के बीच रिलेशन चाहिए, वो हम लोग को दिख जाएगा सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 85 वुमेन प्लस 120 मैन इज इक्वल्स टू 72 वुमेन प्लस 130 मैन। अब सबको फेंको एक तरफ, मैन वाले लोग को एक तरफ करो, वुमेन वाले लोग को एक तरफ करो, इसको फेंक दो पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 वुमेन साफ साफ दिख रहा है, एफिशिएंसी ऑफ 13 वुमेन, उधर ले जाओगे तो ये 18 मैन। पहला ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर, एफिशिएंसी ऑफ 13 मैन इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ 18 मैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 34 के बाद आता है 35। ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन था, मैंने किया नहीं अभी, इसलिए आंसर नहीं बोल सकता। ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन अभी तो मैंने किया हुआ है, जितने डेज में काम खत्म होता है उसके इनवर्स रेशियो में तुमको मिलने वाला है मान। तो अगर ध्यान से देखिए तो ए को किसी काम को करने के लिए x डेज लगता है,
बी को उसी काम को करने के लिए 1.5x डेज लगता है और सी को उसी काम को करने के लिए 2x डेज लगता है। तो ये मत सोचना कि ए सबसे बढ़िया है, बी कम है, सी है। मैंने इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि सबसे कम डेज ए को लग रहा है, बी को उससे ज्यादा, सी को सबसे ज्यादा, तो प्रॉफिट इसके ठीक इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/x रेशियो 1/1.5x रेशियो 1/2x। बाद में x उड़ा दो, ये हो जाएगा 1 रेशियो 3/2 और ये हो जाए 3/2 को उल्टा करके आएगा ना, ये 3/2 तो ऐसे ही आएगा, उल्टा करके 2/3 और यहाँ पे 1/2। तो एलसीएम ले लो 643 का रेशियो बन जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 36 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा। 37। अरे भैया ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पेपर में। वो पूछता है कि n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। n को एक वैल्यू पकड़ा दो, कुछ तो दिया नहीं है, n का वैल्यू दे दो 2। n को अगर मैं 2 वैल्यू देता हूं तो 2 का क्यूब होता है 8। 8 - 2 6। बिल्कुल सही आंसर। 2 की पावर 5 कर लें, ठीक है। 2 की पावर 5 है या 6 है? तो 2 की पावर 5 ही होगा सर। 37 हां 2 की पावर 5 तो 32 - 2 30 डिविजिबल बाय 5 बिल्कुल सही है। अच्छा उसके बाद वाला देखते हैं 32 - 40 + 8 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों सही, 1 2 8 3 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, अब यूनिट डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन। इसमें हमने क्या सीखा था कि कोई भी ऑड नंबर है अगर और उसके पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल है तो हमेशा 1 पे खत्म होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को लगाते हुए जाएंगे। तो 9 ऑड नंबर है लेकिन 27 4 के टेबल में आने वाला नंबर नहीं, तो इसको ब्रेक करके लिख लो 9 की पावर 24 * 9 का क्यूब। सेम उसी तरीके से 27 ऑड नंबर है लेकिन 9 नहीं है, 4 का मल्टीपल नियरेस्ट है 8 और एक 27 की पावर में। अच्छा एनी ऑड नंबर टू द पावर ऑफ 4 एंड ऑलवेज हैव 180 यूनिट्स प्लेस। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 पे खत्म होगा 729। इसका 1 हो गया 7 6 है क्या? बिल्कुल सही आंसर है, 9 + 7 16 होता है। ओके उसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन लेकिन इजी है, ऐसा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो कोई ये वैल्यू पता होनी चाहिए। x³ - y³ यहां सॉल्व कर रहा हूं, देख लो फॉर्मूला लगेगा। x³ - y³ का फॉर्मूला होता है दैट इज x - y दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y²। अब सोचो यहाँ पे कि xy जो है ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। +1 को तो बिल्कुल साइड कर दो, ये xy + 1 के लिए। यहाँ पे पहला टर्म बन गया √3 + 1 √3 - 1 माइनस √3 - 1 √3 + 1। इसका ब्रैकेट बंद कर दो। अब बचा x² + y², उसका फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर -2xy, तो -2 ही रहेगा तो टोटल -1। अब x + y निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये x - y पहले निकाल लेते हैं। सब कुछ कर पूरा के इसका आंसर 30√3 बनेगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तुमको बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है तुमको 15 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ये जितने टाइम में कवर करता है उतने ही टाइम में 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम करता है। ऑब्वियस सी बात है अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मौका नहीं मिलेगा और डाउनस्ट्रीम में चूंकि उसको स्ट्रीम के साथ चलना है तो ज्यादा वो कवर कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइम अप इज इक्वल्स टू टाइम डाउन बट द डिस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो टाइम अप ने उसने कितना किया 28/15 - b स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और दूसरे साइड में 42/15 + b। तुमको b निकालना है। 14 के टेबल में काट कर 3 में चले जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। 30 + 2b = 45 - 3b। यही बन रहा है ना, देख लेते हैं। तो 30 + 2b = 45 - 3b। हाँ तो ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ देख लो 5b की वैल्यू हो गई 15 के बराबर, b हो गया 3 किलोमीटर/आवर है। ऑप्शन में बिल्कुल सही है, मारा हुआ इसमें, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 40 के बाद आता है 41। डिफरेंस बिटवीन ci एंड si। वैसे तो ये हो जाता है लेकिन यहाँ तो उसमें थोड़ा सा मस्ती जरूर की होगी, हाफ ईयरली बोल दिया है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इससे किया हुआ तो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लेते हैं। आंसर इसका सही है मेरे ख्याल से। देखो हाफ ईयरली में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के ऊपर वो मार्क करना है, तो डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। 10,000 into 20 into हाफ ईयरली मतलब 1/2 into 100 माइनस, और फिर यहाँ पे सीआई के लिए तुमको 10,000 माइनस, और फिर ओपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10,000 into 1 + r/400 20/200 के पावर में 2n। ये करना पड़ेगा 2, ये काट के 641 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ, इसको खोल के देखो, खोलने पे तुमको क्या दिखेगा कि एक्स स्क्वायर वाले जितने भी टर्म आ रहे हैं उनका कोएफिशिएंट 0 ही आ रहा है। सही है, इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ab माइनस ac और वहां पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस xc माइनस bx प्लस bc। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये पैराबोला है। अभी देखो एक्स स्क्वायर के साइड में क्या आ रहा है, ab माइनस ac। उसी तरह से जब तुम इसको खोलेगा तो bc माइनस ba और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस x c माइनस एक्स ए प्लस ए सी। ये चीज को ध्यान से देखना, मैं बस इतना ही करके छोड़ दूंगा, बाकी वहीं से कैसे करवा दूंगा। और ये सी ए माइनस सी बी, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी। अभी स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, पहले क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों से भी हो रहा है और इन दोनों से भी हो रहा है। लेकिन जब तुम इसको ऐड करने जाएगा तो ए बी बी ए से, ए सी सी ए से और बी सी सी बी से कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट आ रहा है b माइनस सी, यहाँ से x का कोएफिशिएंट आ रहा है c माइनस a और यहाँ से x का कोएफिशिएंट आ रहा है a माइनस b। तो उसने जो बोला है उसके हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखो, एक सेकंड, माइनस cx माइनस यहाँ से x, तो क्या बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x इज a माइनस b b माइनस माइनस का बाहर खींच ले। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही स्टेटमेंट, इसके दोनों आंसर सही हो गए, 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट कौन सा वाला है, हाँ इसमें भी देखो वैल्यू ही डालना पड़ेगा। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है सब वैल्यू से ही होते हैं। अरे छोटा हो जा। हाँ इसमें दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n पकड़ाओ यार भाई, n को 1 पकड़ाओ। चलो n को 1 पकड़ाते ही ये क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, जो कि खुद ही फॉर्मूला होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर लिख लो 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो उसने क्या बोला है कि इट इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर है, और x की पावर में तुम जो भी डालेगा उससे डिविजिबल होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट तुम्हारा सही जा रहा है, इट इज सी बोथ 1 एंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में उसने बोला है, ये दिया हुआ है तो mx स्क्वायर प्लस mx प्लस 8x प्लस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुमको m का कौन कौन सा वैल्यू लेना अलाउड है। तो मेरे हिसाब से इसमें 4 और 16 वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 और 16 दोनों को पुट करके जब उसको सॉल्व करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये इसने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 64 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रिड्यूस होने पे m की वैल्यू 16 और 4 आएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा इसमें तुमको वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ पड़ा, उसने कटिंग ज्यादा कर दी है। तो इसमें एक काम कर सकते हो, जैसा कि उसने यहाँ पे किया हुआ है, देखो ध्यान से, a को 1 और b को 2 डाल के इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। ये सॉल्व हो गया, तुम्हारा आंसर कुछ 4 और बन रहा है, जो कि b स्क्वायर 4 आया था, इसमें b 2 माना था तुमने, तो 2 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसमें 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से तुम्हारे मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएंगे, इजीली क्वेश्चन सबके। तो एक बार इसको कंडेंस करके लेके आते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये तो हो गया ना। सबसे पहली चीज है cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करके हम लोग इतना बना सकते हैं, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर लो, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, ये 1 हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेप पर प्रूफ होगा, चाहे जो भी करके देख लो, इसका मतलब है कि इसका सही आंसर बनेगा 2 एंड 3, इसका गलत है, 2 एंड 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, sin थीटा की वैल्यू दिए रहे भैया, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं। sin थीटा की वैल्यू 12/13 है, बना लो, थीटा बना लो, इसको 12 यहाँ 13 यहाँ 5 यहाँ। कुछ बच्चे अभी मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो देख सकते हैं, 10th क्लास के हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इजी रहेगा। tan थीटा की वैल्यू 12/5, sec थीटा की वैल्यू 13/5, पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये 25 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा के साथ। तो cosec थीटा तो यहीं से देख लो, 13/12 माइनस cot थीटा tan थीटा 12/5 निकाला था ना, तो ये हो जाएगा 5/2 इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दे, -2 है, उल्टा कर देंगे, 12/13 माइनस, ये आराम से 225/4 बनेगा, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 48, इसमें थीटा को पकड़ा दो 45, वैल्यू पुटिंग चलाएंगे इसके अंदर में। थीटा की वैल्यू लेंगे 45 डिग्री, tan 45 cot 45 दोनों 1 1 होता है, 1 की पावर में 1 1 ही होगा, 1 की पावर 8 1 की पावर 8 होता है, m की वैल्यू हो गई।
अब तुम यहाँ पे थीटा डाल के सॉल्व करेगा 2 आ जाएगा। अब तुमको ऑप्शन में सिर्फ उस आंसर को चेक करना है जहाँ पे m की जगह 2 डालने पे 2 डाल दो, ये बिल्कुल सही आंसर, और कोई भी आंसर सही नहीं बैठे। What is the minimum value of 6 minus 4 sin theta when theta lies from 0 से pi/2 including 0 pi/2? सीधी सी बात है, sin थीटा को मैक्सिमम वैल्यू दे दो क्योंकि माइनस का साइन है। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 6 minus 4 हो गया 2, इससे छोटी वैल्यू आएगी नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 50 नंबर है वैल्यू, तुमको मालूम है, टेबल खोलो करते चले जाओ। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे 3/4, 2x sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लिकेशन में, cot स्क्वायर 30 cot 30 tan 30 cot √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस 6 tan 15 tan 75, ये तो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो गोली मारो जी, ये दोनों कट गए, -9 + 3 -6 2x 6 बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 6 आएगी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, ये भी वही है, cos स्क्वायर 32 को sin स्क्वायर 58 लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 हो गया, cot स्क्वायर 40 को tan स्क्वायर 50 लिख सकते हैं, ये भी 1 हो गया, यहाँ से बचा 1 प्लस ये tan 13 का पेयर बन जाएगा 77 के साथ 1 tan 37 tan 53 1 1 + 4 रह गया, 5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। यहाँ थीटा की वैल्यू डालो, उससे कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, 45 डिग्री ले लो, 1 + 1 2 1 + 1/√2 1 - 1/√2 1 - 1/2 और हाफ आएगा, तो 1 + 1 2 ऑफ 1 बचा, माइनस 1 + 1 2 1 0 आएगा, बिल्कुल सही। वैल्यू पुट कर लो, pi/6 इधर डालो, टिक मारा हुआ है, pi/6 यहाँ डाल लो, pi/6 की वैल्यू cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये काट के 3/2 हो गया, sin थीटा 1/2 -2 3/2 -2 1/2 ही होता है, कट जाएंगे सारे कुछ, pi/6 को आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 53 के बाद आते हैं 54 में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, द पर्सन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, यहां खड़ा करो एक आदमी को, ये आदमी खड़ा है, अब ये देख रहा है कार इसकी तरफ मूव करता हो रहा है, ये कार बना हुआ है, ये कार है, और it takes 6 minutes for this car to change its angle of depression from 30 degree to 45 degree। पहले ये 30 डिग्री पे था ए पॉइंट पे, और ये बी पॉइंट पे पहुंचा है 45 डिग्री पे, और ये डिस्टेंस इसने कवर किया है कितने मिनट, 6 मिनट। तो अगर मैं इसके कार की स्पीड को x मान लूं तो 6x डिस्टेंस इसने कवर किया। अब उसके फिर ये लिखा है एंड फर्दर टेक t मिनट्स टू रीच द, यहां से यहां तक tx। हाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें ये बताना है कि t का रेंज क्या होगा, इसलिए हमारा है जो मैं चेक कर लेता हूं, इसी को चेक कर लेता हूं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई h/tx, तो h = tx, ठीक है। अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल tan 30 का, और यहां पर रख लेते हैं tx अपॉन में tx + 6x = tan का 30, दैट इज 1/3। x को उड़ा लेते हैं कॉमन लेके, √3t √3t = t + 6 हो जाएगा, t को यहां खींच के ले आओ, √3 - 1 √3 - 1 = 6, t की वैल्यू आ गई 6 अपॉन √3 - 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73 -1 0.73, 73 100 चला गया ऊपर, 600/73 8 से ऊपर आएगा, बस बहुत बढ़िया, 8 से 8.3, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 55, कौन सा क्वेश्चन है? ए मैन स्टैंडिंग ऑन द, अरे ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इसको ये से देख लो, ये है पानी का, ये इसके कौन है, हां, तो वुमेन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, इसको मान लो डेक ऑफ अ शिप which is h meter above the sea level, ठीक है, h meter above the sea level, ठीक है। she observes the angle of elevation of the top of the tower as 60 degree, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे डाल दिया 30 डिग्री का, हाइट ऑफ द टावर बताना है, ठीक है। 60 30 ये दोनों h है, ये x है, tan 30 की वैल्यू पहले निकाल ली, tan 30 h/y, y = √3, जिसको उसने y लिया हुआ, और फिर tan 60 के हिसाब से चलेंगे, tan 60 x अपॉन √3h, x की वैल्यू 3h आ गई, ये 3h + h करेंगे 4h, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद आते हैं 56 में, इसमें दिया हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड है 5 12 13, 5 12 13 वाले ट्रायंगल में खूब बनाए हुए हैं, ट्रायंगल उसने बना ही लिया, यहाँ पे P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ किया है तुमने, फ्रॉम वर्टेक्स A, ये दोनों को बीसी रखो, ठीक है। अब तुमको इसी की 13 की बतानी है, भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाफ के हिसाब से, हाफ 5 × 12, और दूसरे साइड से देखोगे तो हाफ × 13p, और मेरे ख्याल से 13p पूछा है, हाफ हाफ कट गया, 60 का आंसर है, बिल्कुल सही है। 57 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने भी किया नहीं है, तो ये तुम लोग करोगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, if p is the percentage increase in its length, then which one of the following is correct? सरफेस एरिया को हमने 25% बढ़ा दिया है, तो इसको थोड़ा सा इसको वैल्यू लेके करना पड़ेगा।
सॉलिड क्यूब ये वाला क्वेश्चन तो बाकी रहते हैं। इस पे आ जाओ, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड फॉर्मूला होता है अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, इसकी वैल्यू 11 दी हुई है, उसने कर दिया 120। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 * LB प्लस BH प्लस HL, इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को क्वेश्चन में 240, जो कि काट के दे देगा वो 120। अब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर है, अगर तुम चाहो तो 2 LB प्लस BH प्लस HL कोई रख लो, 240 है, तुम्हें सम निकालना है L प्लस B प्लस H, तो सीधा क्या करो स्क्वायरिंग से स्टार्ट करो। तो पहला टर्म तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस स्क्वायर 121 हो गया, और 2 * LB प्लस BH प्लस HL इसकी वैल्यू दी हुई है 240, दोनों को ऐड करोगे 361 आ रहा है, हमें तो L प्लस B प्लस H चाहिए, 19 का स्क्वायर होता है 361 का। तो क्वेश्चन अब चलते हैं 61 में। 61 नंबर क्वेश्चन, अरे क्या हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द, कहां गया, हाँ, what is the area of the circle approximately inscribed in a triangle with sides 12, 16 and 21 centimeter, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लिखो पहले, इंस्क्राइब बोला है ना, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसमें आर निकालने का शॉर्टकट होता है a प्लस b माइनस c बाई 2, और फिर उसका स्क्वायर भी करना है। a इज द a and b आर द परपेंडिकुलर बेस, और c होता है हाइपोटेन्यूज। 12 प्लस 16 28, 28 माइनस 28 और 8/2 4 पाई 22/7, ये तुमने सर गलत कर दिया, अप्रोक्सीमेट, अच्छा अप्रोक्सीमेट ठीक, कोई बात नहीं। तो 3.14 लेके चल लेते हैं। आज का वाले क्या बोला मैंने, 12 प्लस 16 कितना हो गया 28 माइनस 28, 8/2 4 का स्क्वायर 16, हाँ तो 50 के आसपास है, बिल्कुल सही है। 16 3 48 होगा, कुछ पार्ट तो वहां से भी आएगा, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 2 टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, 2 * 2 पाई r h प्लस r, क्या हुआ उसके ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल सही किया है। इस 3 टाइम्स इट्स कट सरफेस एरिया, 3 * 2 पाई r h, 2 पाई गया, और क्या बच गया, एक r उड़ा देगा, हां थोड़ा, तो ये बच गया 2h + 2r इज इक्वल टू 3h, h इक्वल टू 2r, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 63, हां ये क्वेश्चन हमने एचसीएफ एलसीएम में पढ़ा था, इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो उसको सबसे पहला काम क्या करो, उसने किया आधा में छोड़ दिया मुझे लग रहा है। एक फ्लोर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो पूरा का पूरा सेंटीमीटर, मतलब 3060 सेंटीमीटर हो, और इसका जो ब्रेड्थ है वो तुमको दिया हुआ है 23 मीटर 40 सेंटीमीटर, दैट मींस 2340 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको हमें प्लेस करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स और सेम साइज, तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उसने यही भी गलती की है, एचसीएफ निकालते समय जब एचसीएफ ढंग से निकालते हैं तो ये 180 आता, जो कि हर स्क्वायर टाइल का डायमेंशन। अब इस 180 को क्या करना है, हमें मिनिमम टाइल चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फ्लोर, जिसकी डायमेंशन का मतलब है 3060 * 2340, और ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज 180। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 64, एक आदमी है जिसको एक स्क्वायर फीट के चारों ओर घूमना है, और एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फीट का 25 हेक्टेयर। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये जो भी फील्ड है उसका एरिया आ गया 25,000 से भी ज्यादा, 2,50,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ईच साइड होगा वो 500 का होगा, राइट। तो 500 500 500 अगर इसके चारों ओर घूमेगा मतलब 2000 मीटर घूमना है इसको, और ये क्या करता है 5 किलोमीटर पर आवर में घूमता है, तो इसको कितने टाइम लगेगा, मतलब 60 मिनट्स में अगर ये 5000 किलोमीटर घूमता है तो उसको घूमना 2000 है। 2000 मतलब इसका तुम क्या कर रहे हो, इसका 2/5 कर रहे हो मेरे ख्याल से ना, हाँ 2/5, तो 60 का भी 2/5 कर दो, 60 का 2/5 क्या हुआ 24 मिनट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कर रहा था उसी समय टाइम हो गया था। लेट x बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अच्छा तो एक स्क्वायर बना ले पहले, एक स्क्वायर बनाया, लेट x बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यहां पे अगर हम लोग देखें तो हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर्कल ऑफ रेडियस r है ना, हाफ इनटू 2r कर लेते हैं, हाफ इनटू 2r इनटू 2r, सॉरी हाफ इनटू 2r इनटू 2r, तो ये तुम्हारा कटकटा के आ गया a इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। x बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर निकालते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कैपिटल R का फॉर्मूला हो जाता है a/√3, ये मैंने बताया हुआ है क्लास में, तो a हो जाएगा √3r
और √3r√3/4 a स्क्वायर का एरिया निकाले तो √3/4 into 3r² हो गया, तो ये टोटल आ गया 3√3/4r²। ये y की वैल्यू है, y = 3√3/4r²। अब हम लोग यहाँ से दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो 2 = 3√3, x की वैल्यू आ गई। ये मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर आएगा 27x² = 9x² = 16y²। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a rectangle is increased by 66.2/3%, कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हम वाला शॉर्टकट लगाते हैं, परसेंटेज चेंज का जो शॉर्टकट होता है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, x + x ± x ± y ± xy अपॉन 100%। बट यहाँ तो एरिया को चेंज करना ही नहीं है, लेंथ को तुमने 66.2/3% बढ़ाया है, मतलब 200/3 तुम्हारा है, -y - 200y/3 × 100, ये तुमको फाइंड करना है। ये काट के 2/3y हुआ, दोनों को यहाँ पे तो 5y/3 = 200/3, 3 से 3 क्या 40%। 40% अगर तुम कम कर देते हो विड्थ को तो वो मेंटेन कर देगा। ये तो पता चलेगा थोड़ी देर के बाद ही। 67 नंबर। अब आते हैं 68 भी करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लेना। 69 सॉलिड आयरन बॉल इज मेल्टेड एंड 64 स्मॉलर। अच्छा, सीधी सी बात है, एक सॉलिड आयरन बॉल मतलब 4/3 πr³ को तुमने क्या किया, छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट किया, और हर किसी का रेडियस है, तो 4/3 पाई 64 से मल्टीप्लाई करके r², तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 4r की। ठीक है, अब तुमको रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर बॉल, मतलब 4πr² अपॉन 4πr² सम, मतलब 64 भी आएगा। 4π उड़ गया, r/r का रेशियो तुम्हारा दिया हुआ था, तो ये तुम्हारा बन जाएगा r 4 टाइम्स है ना, 16/64 आएगा। 16/64 मतलब 1/4, आंसर इज 0.2। उसके बाद वाला क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन सब सर बताएंगे, तुम लोग कभी नेक्स्ट आ रहे हैं सर वो भी कराएंगे कुछ क्वेश्चन, ये मैंने स्किप किया है। अच्छा, मीन मीडियन वाले क्वेश्चंस को तुम लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो। मॉड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सिर्फ मॉड निकालने का फॉर्मूला अगर तुम्हें मालूम है, यहाँ पे उसने अच्छे से किया हुआ है, L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 into h, जिसमें से L होता है मॉडल क्लास को मैंने डिसाइड करना था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास होता है, और उसी का लोअर क्लास लिमिट को L बनाना है। 60 यहाँ पे आ गया, 7 हो गया, f0 होता है उससे पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स 7, ये सॉल्व करके वैल्यू आई थी 70। फिर इसका एक सेकंड पार्ट था, मीडियन को भी ला रहा है बीच में, वो बोलता है कि मीडियन को p से डिनोट कर दो और मॉड को q से डिनोट कर दो। मैंने मीडियन निकाला था, मीडियन की एक वैल्यू आई थी, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर बना रहा था 6, इसलिए यहाँ पे किया नहीं है ढंग से, थोड़ा गलत हो गया उसका। उसके बाद मीन निकालने वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मीन निकालना सबको आता है, ये सॉल्व करके 56 ही आएगा, इसमें नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, ये क्या है, व्हाट इज द वैल्यू मीडियन। मीडियन भी तुम निकाल सकते हैं सेम तरीके से 160। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - कैपिटल F अपॉन स्मॉल f into h। इससे तुम अपना मीडियन तक पहुंच सकता है। 160 बिल्कुल सही है। 85 ऑनवर्ड सर पिकअप कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये थोड़े से क्वेश्चन रह जाते हैं, ये सर यहाँ से पिकअप कर लेंगे। सर कर लोगे 85 ऑनवर्ड्स, आप खींच लो क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक तुमने देखा 80 to 85 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं आराम से। आई थिंक आई हैव टेकन लेस देन 1 hour ओनली, सर विल टेक ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 क्वेश्चंस, सर खत्म करेंगे। ठीक है, 85 से स्टार्ट, मैंने यहाँ तक करवा दिया। हाँ, ये 72, नहीं वो तो करना है पहले, तो 68 70 से लेके 80, और फिर पीछे की तरफ ये कुछ क्वेश्चन। चलो ठीक है, बैक से स्टार्ट करें। हाँ, बैक से कुछ क्वेश्चन मैंने ये से लेके नहीं बताया, बैक आंसर है मॉडिक भी होगा ना, राइटिंग पेन में वही कोई नहीं, अरे हो गया क्या करें। नमस्कार सभी को, अरविंद कुमार सिंह। तो ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए
देखो, सबसे पहले मैं बैक सबने स्टार्टिंग से किया है, मैं पीछे से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100। तो ये फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल POA x, एंगल POA ये वाला x डिग्री है, एंगल OQB y, एंगल OQB ये वाला y डिग्री है, और अगर OB एंड BQ आर इक्वल, OB एंड BQ ये दोनों इक्वल हैं, तो बस ये सारी सिचुएशंस गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, इस x और y में क्या रिलेशन है। चलो देखा जाए, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इट मींस ये y तो ये भी y, और जब ये दोनों y है तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो y प्लस y ये वाला पार्ट 2y हो जाएगा, राइट। ये 2y, अब ये सर्कल का दोनों रेडियस है OB और OA, तो ये 2y तो ये भी 2y बनेगा। अब 2y ये वाला बीच वाला एंगल ट्रायंगल का तीसरा एंगल है, और तीसरा एंगल बनेगा 180 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज द 4 टाइम्स y। अब इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल को ऐड कर दें तो दैट विल बी 180, x को 180 माइनस 4 टाइम्स y को और y को सबको ऐड करेंगे 180 डिग्री बनेगा। 180 कैंसिल आउट, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3y माइनस 4y प्लस y, दैट इज माइनस 3y गोज दैट साइड 3y, तो x इक्वल टू 3y। ये 99th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, y की वैल्यू 15 देन व्हाट इज एंगल ACB इक्वल टू, ऑप्शन है 30 40 45 60, y की वैल्यू 15 है, एंगल ACB निकालनी है हमारे को। एंगल ACB ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी ये वाला हमने डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट, और ये आया हुआ था 180 माइनस 4y। यू नो सर्कल के सेंटर का एंगल का हाफ सर्कुलर एंगल होता है, तो सर्कुलर एंगल ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा, दैट वुड बी 90 माइनस 2y। यही हमें निकालना है कि ये कितना होगा। अगर y 15 है तो 15 डिग्री पुट कर लो यहाँ पर, योर आंसर 90 माइनस 2 टाइम्स 15 दैट इज 30 डिग्री, मींस आंसर आया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन होगा, आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर 60, डी पार्ट इज द आंसर। तो लास्ट के दो क्वेश्चन थे 99 एंड 100। इसके पीछे के क्वेश्चन को देखकर 97 एंड 98। 97 के लिए कंडीशन जो गिवन है, consider the following for the next two questions. In the following figure, a rectangle ABCD is inscribed. इसमें ABCD एक रेक्टेंगल है सर्कल के अंदर जिसका रेडियस r गिवन है। एंगल DAE 30 डिग्री, एंगल DAE ये वाला पार्ट 30 डिग्री है। एंगल ACD, एंगल ACD ये वाला 30, बस ये 30 और ये 30 ये दो पार्ट गिवन है। तो आपको क्या फाइंड क्या करना था हमारे को, ये सिचुएशंस गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो देखना है, यानी सर्कल का रेशियो ऊपर और रेक्टेंगल के रेशियो नीचे। फिर से चेक करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल को ऊपर लेना है, रेक्टेंगल के एरिया को नीचे लेना है, ये कंडीशन है। चलो सॉल्व करते हैं। ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री में एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये रेशियो रहता है। ये रेशियो हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, ये 90 है तो ये भी 30 डिग्री होगा।
अब ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3, ठीक है। और ये चीज वैल्यू, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक r गिवन है, ये रेडियस r यहाँ से यहाँ तक रेडियस गिवन है, ये भी पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस r ऑब्वियसली। ये 30 डिग्री है, ये 60 होगा, ये 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दें ये एंगल 90 है। ये जो एंगल होगा 30 या 60 है, तो ये इस बच्चे ने गलती से लिखा हुआ है 90, ये होना क्या चाहिए, 60 को माइनस करो तो ये एंगल 120 होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। हमें एरिया ऑफ सर्कल अगर लेना है तो एरिया ऑफ सर्कल हम सिंपली ले लेते हैं πr²। अब नीचे लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमारे को ये साइड चाहिए कि इस साइड की और इस साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि ये चीज कैसे होगी। तो ये पार्ट 120 है, अगर मैं यहां से देखो ये जो 1 2 √3 है ना, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 90 के सामने ये 2r है, 90 के सामने 2r, तो 30 के सामने r होगा, और 30 के सामने r होगा तो 60 के सामने √3r होगा। अच्छी तरह से देख लो इस बात को कि यहां पर अगर आप 90 के सामने ये 2r ले रखे हो, ये पूरा यहां से यहां तक 2r है, तो 90 के आगे ये 2 है, तो 30 के आगे 1 होगा, यानी इसका हाफ। तो ये 30 डिग्री के सामने इस 2r का हाफ यहां से यहां तक ये r होगा, और 30 के सामने जितना होता है 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है। देन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट में 30 के सामने का √3 टाइम्स, तो ये r है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा √3r होगा। अब आप नीचे ये निकाल लो ये चीज, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है √3r और ब्रेड्थ है r, तो r² कैंसिल, आंसर इज π/√3, आंसर इज π/√3। तो ये पार्ट था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, π/√3। दूसरा पार्ट है 97 के बाद 98, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। ये सारे ऑप्शंस हैं r²/√3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन फिगर में क्या था, AEC पूछा गया था, AEC एक बार फिर से चेक कर लें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। यस AEC इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। आप रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर लो तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, उसमें से इस वाले को माइनस कर लो, बट ये काफी लंबा सा है, ये काम करते हैं। अगर मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करूं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये मतलब कि ये यहाँ से मिलाओगे तो ये इक्वल आ रहा है, यानी ये r इक्वल है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसे आप ये ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, मीडियन जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। देन ये 90 है, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, तो ये r है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो होगा ये 60 के सामने r है, तो 30 के सामने r/√3 होगा, r/√3। तो इस तरह से अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, इंटू परपेंडिकुलर ये वाला निकालोगे तो ये आ जाएगा r/√3, r² कैंसिल, आंसर इज r²/√3। दूसरे कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका ये r आया हुआ था तो यह भी r, यहाँ से यहाँ ये भी r है, और जब ये चीज r है, 60 के सामने r है, तो 30 के सामने वाला पार्ट जो होगा वो r/√3 होगा। तो इस वाले ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हो, इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू r/√3, मींस r/2/2√3 इसका एरिया आ गया, ये छोटे से ट्रायंगल का आ गया।
पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या आया हुआ था, √3r इंटू आर, मतलब कि √3r²। और इसको अगर आधा कर देते हो तो ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया आ गया। अब उसमें से इसको माइनस कर दो, क्या चीज था ये, √3/2r² में से माइनस कर दो इस r²/2√3 को। तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो दिस इज 2√3 टेकिंग एलसीएम, ये 2 से आएगा √3 3r² माइनस r², 2r², फाइनली 2 टू कैंसिल आउट r²/3। दोनों तरीके से यहाँ पर हमें देख लिया गया। अगर आप ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हो तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप इस छोटे से ट्रायंगल के एरिया को हाफ ऑफ द रेक्टेंगल में से माइनस कर लो, यू गेट द आंसर। चलो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। 94, ये बहुत अच्छा फिगर है, इसको देखते हैं क्या चीज है। इसमें क्या कर रहे हैं, कंसीडर फॉलोइंग, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है इसके ऊपर। ये एक बड़ा सा सर्कल है, PQRS एक बड़ा सर्कल है, सर्कल के अराउंड ये स्क्वायर है। एक रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर P पर जो 4/2 का है, ये 4/2 का एक छोटा सा रेक्टेंगल है एंड स्क्वायर एट द कॉर्नर R के ऊपर एक स्क्वायर है। तो ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एरिया निकालना है और क्या क्या करना है हमारे को, और क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन बाद देखेंगे, फिलहाल इसको इस फिगर के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, ये 4 यहाँ ये सेंटर है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया, ये बिल्कुल सेंटर को है। मान लो थोड़ी देर के रेडियस r है, ओके। अगर रेडियस इसकी r है तो ये चीज ज्वाइन करो इससे, ये इससे, तो ये 4 पार्ट है और ये r है, यानी ये भी r, तो ये वाला पार्ट r-4 है, r-4। ये टोटल r है, ये 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है ये r, ये 2 यूनिट है, तो ये वाला पार्ट जो है r-2 होगा। देखो ये वाला रेडियस है r, तो ये जो तीनों चीजें हैं r, r-2, r-4, ध्यान रखते हैं जब भी पाइथागोरस थ्योरम की बात आती है और तीनों साइड्स में कंटीन्यूअस डिफरेंस हो तो आप इस ट्रिपलेट को इस्तेमाल किया करो हमेशा, 3, 4, 5 का। इसमें 1, 1, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर 2, 2, 2 का डिफरेंस है, और जब 2, 2, 2 का डिफरेंस है तो इसको आप डबल कर लो तो 6, 8, 10 आ जाएगा। 6, 8, 10, 2, 2, 2 का डिफरेंस आ गया। तो इससे क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू 10 आ गई और जो बड़ा छोटा है 6 और 8 है, यानी कि ये जो पार्ट है ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये पार्ट 8 आ गया और ये पार्ट ये वाला 6 आ गया। तो इस तरीके से अब हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, रेडियस गिवन है तो रेडियस पाई r स्क्वायर इसका एरिया लेंगे। r कितनी लेनी है हमें, 10 लेनी है, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, पाई इंटू 10 स्क्वायर, तो 100 पाई इज द आंसर, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगले में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटे से स्क्वायर के बारे में, देखते हैं क्या है। 94 क्वेश्चन है ये। 94 के बाद 95 क्वेश्चन किधर गया, ये अगले पेज पर यहाँ पर, ये 95 क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वन, वो जो छोटा वाला सा था ना स्क्वायर, उसका निकालना है। तो वहां के लिए अब हम क्या करेंगे, और एक बार वापस आ जाए उस फिगर पे, शायद नीचे की तरफ था, ये वाला है। तो एक बार देखो फिर से, दोबारा से वही काम करते हैं, इसको इससे मिलाया और इसको ऐसे सीधे जा रहे हैं, यूं सीधे, ये पूरा का पूरा आर होता, ये जो चीज है ये ए है तो ये भी ए है, मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक r-a है और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट ये भी हिस्सा r-a है और ये r है, तो ये दो पार्ट इक्वल है। जब भी दो पार्ट इक्वल होता है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें 1, 1√2 ये रेशियो रहता है, मतलब कि इस पार्ट का √2 टाइम्स ये होगा। तो इसको अप्लाई कर लो, क्या कि r इज इक्वल टू
2 times the smaller part यानी r minus a, राइट। अब r इक्वल टू √2r माइनस √2a, √2a को इधर ले आओ, पॉजिटिव आ जाएगा √2a, उधर आ जाएगा √2r माइनस r, r टेकिंग कॉमन, ब्रैकेट में √2 माइनस 1 इंटू r। अब r की वैल्यू 10 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिलहाल a इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 इतना इंटू r की वैल्यू 10 ले लो। अब ये कह रहा है कि ये जो a है तो इसका स्क्वायर का एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर लो। √2 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 √2 होगा, इंटू 100 अपॉन 2 करोगे 50 आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लो, 50 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 √2। फिर से एक बात समझ लो कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 45 होंगे, क्योंकि ये दो पार्ट इक्वल है। 90 45 45 वाले में हमेशा जब भी आपको कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले, ये 45 है 45 है, तो आपने हमेशा 1 1 √2 मतलब छोटे वाले साइड को √2 टाइम्स करोगे, बड़ा साइड मिल जाएगा, उसको अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमारा छोटा साइड क्या था, r माइनस a, बड़ा साइड क्या है, r है, तो r को √2 टाइम्स r माइनस a करते हैं, r इक्वल टू √2r माइनस √2a। इसको और इसको एक साइड ले लो, इसको इधर ले आओ, तो √2a इक्वल टू √2 माइनस 1 टाइम्स r, देन a इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई √2 इंटू r, r की जगह पर 10 पुट कर दिया जो पीछे आपने निकाला था। तो a स्क्वायर की ये वैल्यू है, a की वैल्यू थी, a स्क्वायर की इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। हमने तीनों टर्म को अलग अलग किया, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, 100 बाई 2 50 आ गया। इधर √2 माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो यूजिंग a माइनस b द होल स्क्वायर इट्स 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 मींस 3 माइनस 2 √2। तो दिस इज द आंसर। अभी तीसरा पार्ट इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस साइड में क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और ये तीन ऑप्शन है। चलो शेडेड रीजन पे बात करते हैं कि ये शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे। फिर से देखो, अगर इसको मैं सेंटर ले लेता हूं, इसको ये ज्वाइन कर दूं, तो जैसा कि हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि r की वैल्यू 10 आ रखी है, तो ये 10 ले लो, ये 10 ले लो, तो 10 साइड का एक स्क्वायर हो गया, तो 10 साइड का एक स्क्वायर हो गया। और इस स्क्वायर में से ये देखो सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, तो स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट को जो व्हाइट पार्ट है माइनस कर दो, तो ये ब्लैक एंड ये पार्ट आ जाएगा। तो इस ब्लैक पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले मैं स्क्वायर के एरिया ले लेता हूं, जो कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आएगा, ठीक है। इस 100 में से ये वाला व्हाइट माइनस कर देता हूं, यानी 4 2 जा 8 माइनस कर लिया। अच्छा बच्चे, इसके बाद अगर आप करने की इच्छा ना भी हो तो 4 ऑप्शन में चले जाना, क्योंकि 100 माइनस 8 92 होता है, और 92 माइनस समथिंग जो आएगा, तो 4 ऑप्शन को देखोगे, उसके हिसाब से इजीली आंसर टिक कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 95 है, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके अंदर जो 96 है, 92 माइनस से 2 ऑप्शन है, एक 25 पाई है, एक 16 पाई है, तो फिर प्रॉब्लम उलझ गई, हमें आगे भी करना पड़ेगा। पूरे सर्कल के एरिया 10 पाई का स्क्वायर यानी कि 100 पाई, सर्कल का एरिया था 100 पाई, ये सर्कल का, तो क्वाड्रेंट का यानी कि 1/4 का, इसका 1/4 करोगे तो 25 पाई आ जाएगा, इट्स 25 पाई, राइट ना, 25 पाई। तो 25 पाई इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। तो इसमें से आपने 25 पाई को माइनस कर लेना, आपका आंसर आ गया 92 माइनस 25 पाई। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। दैट्स ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और यहाँ पर आगे बढ़ते ही नहीं बल्कि कहा जाए पीछे बढ़ते हैं। तो 96 94 ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब 91 92 का इंतजार है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। The perimeter of sector of circle of radius 5.2 is 16.4. What is the area of the circle? पता नहीं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 90।
Perimeter of sector of circle of radius 5.2 is 16.4. अब यहाँ पे आपको क्या चीज देखना है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, अब एक इसके पैरामीटर इसकी सेक्टर के बारे में सोचते हैं। तो सेक्टर में क्या होता है, ये आर होता है, ये आर होता है और ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। इन तीनों का सम ये एल ले लेता हूँ, आर प्लस एल, ये पेरीमीटर होता है। ये पेरीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितना, 16.4। और ये आर जो रेडियस है वो दे रखा है 5.2, तो 5.2 और एल दिस इज इक्वल टू 16.4। तो 5.2 और 5.2 ऐड करोगे तो 10.4 आएगा, 10.4 को उधर माइनस कर लोगे तो इस तरह से एल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16.4 में से आपको माइनस करना है 10.4 को, तो 10.4 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ गई एल की वैल्यू। अब ये एंगल है यहाँ पर क्या, थीटा। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 5.2 का स्क्वायर कर लो इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो थीटा के लिए यहाँ पे आ जाओ, इसके लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क 6 आया है, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 180। ये फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। यहाँ से थीटा की वैल्यू करोगे 6 इंटू 180 अपॉन पाई आर, तो थीटा की वैल्यू करने जा रहे हो आप 180 इंटू 6 अपॉन पाई इंटू आर। आर का मतलब क्या है, 5.2 से है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 भी करना है। अब ये कैलकुलेट करना है, पाई से पाई कैंसिल आउट नजर आ रहा है, 5.2 और 5.2 कैंसिल आउट हो गया, 180 से 360 को कट करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 से कटोगे 3 टाइम, 3 को 5.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इस तरह से एक से दूसरे का रिजल्ट हम निकाल देते हैं। 90 नेक्स्ट 91 कहाँ हो गया, 91 शायद यहाँ पे है, 92 91 व्हाट इज द लेंथ ऑफ QC। ये फिर से एक सिचुएशन डाल दिया गया है और क्वेश्चन का है इन दिस ट्रायंगल ACB, ये एंगल ACB है, AB की वैल्यू 6, ये वाला 6 है, BC की वैल्यू 8 है, ये वाला पूरा पार्ट 8 है, ये 10 है, ये वाला 10 है, 6 8 10। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम B मीट्स द साइड्स ACF। यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला गया जिसकी जो कि इसको D पॉइंट पे मिल रहा है। सर्कल ऑफ रेडियस BD, ये BD रेडियस है सर्कल का, तो कट्स AB एंड BC एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन दिस फिगर। चलो ये है क्वेश्चन हमारे पास, ये 6 है, ये है 10 है, ये बच्चे ने निकाल रखा है 4.2। शायद इस बच्चे को पहले से आइडिया होगा इस बात का। तो याद रखें कि किसी भी राइट एंगल से अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है P into B upon H। ठीक है, नहीं याद हो तो आप ऐसे सोच सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों इक्वेट कर दो तो वहां से भी आ जाएगा। और ये कैलकुलेट P B और H को कैलकुलेट करोगे यू गेट द 4.8। तो 4.8 आया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ QC, इसने पूछा है QC के लेंथ के बारे में कि QC कितनी होगी। तो BC ये देखो, अब इसको 4.8 ये वाला पार्ट है, ये 4.8 है, ये चीज अगर आप निकालना चाहो तो ये 8 है और ये 4.8 जो है रेडियस है, तो रेडियस 4.8 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये लेंथ क्या होगी, 8 में से 4.8 को माइनस कर लो तो इट वुड बी 3.2। तो 3.2 ये इसके आगे के ऑप्शन में होगा, 3.2 जो है QC की वैल्यू आ जाती है। फिर आपसे रेडियस पूछेगा तो रेडियस 4.8 कर लें। देखिए और क्या पूछा जा रहा है, आई थिंक क्लियर आप लोगों को। ये परपेंडिकुलर निकालने का मेथड होता है PB अपॉन H, या फिर जैसे कि इस बच्चे ने कर रखा है 6 into 8 वही होगा जो 4.8 into 10 होगा। ठीक है, x अज्यूम कर रखा है इसने, तो x into 10 कर लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 8 जा 48 में 10 कर लो 4.8। ये 4.8 है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो गया, तो टोटल 8 में से इसको माइनस कर दो, यू गेट 3.2।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है इसमें 3.2 आंसर था। 91 के बाद 92 में एंगल एबीडी थीटा है, व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू, थीटा कहां पे है, एंगल एबीडी, एंगल एबीडी ये वाला पर्सन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट अपॉन ये 6, तो 6 नीचे आ जाएगा। अब एडी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो एडी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या कांसेप्ट है आपके पास, एक तो आप नॉर्मल पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, 6 के स्क्वायर में से 4.8 का स्क्वायर माइनस कर दो, वो एडी निकल जाएगा, राइट ना। तो एडी निकालने के लिए क्या कहा, 6 के स्क्वायर में से 4.8 का स्क्वायर माइनस कर दो। 4.8 का स्क्वायर थोड़ा सा कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन 4.8 को हम 2 × 2.4 कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर, ये तो आप लोगों को याद आई थिंक याद होना चाहिए, ये 1024 2 × 2 × 1.2 और छोटा कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 1.2 का स्क्वायर हो गया 1.44, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा। तो आप एक काम करो, इस एडी की वैल्यू के लिए एक ज्योमेट्रिकल रूल आप लोगों को बताया गया होगा, उस चीज को जी सर यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, बट एक्चुअली रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे आया एक्चुअली 2 रीजन की वजह से हूँ। पहला रीजन तो मैं बता दूं, मॉर्निंग से पढ़ा के मेरा गला बैठ गया। देयर इज समवन कॉल्ड सागर सिंह इन दैट चैट बॉक्स, जो कि ये कह रहा है कि सर आप जो भी पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ बच्चे के ऑप्शन को ही टिक कराते हुए चले जा रहे हो। तो पहले मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है जितना तुमने बोल दिया हुआ था। आई कैन पुट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू एंड आई कैन टेक नेसेसरी एक्शन ऑल्सो, ठीक है। और अभी जो सर क्वेश्चन जहाँ पे बीच में छोड़ रहे हैं, मैं उसका एक बहुत आसान तरीका तुम लोगों को बताने वाला। सो दैट डजंट मीन देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू व्हिच हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ये तो हम लोग अपने पे उतरेंगे ना, तो तुम लोग जैसे को तो ऐसे ही लपेट के फेंक देंगे। सागर सिंह गायब हो जाओ वहां से, ठीक है ना। औकात में आती पढ़ाएगा तू मुझे, गधा कहेगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ये एंगल जो हमें दिया हुआ है थीटा, तो अगर हम लोग को साइन थीटा निकालना है तो हम लोग पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से चले तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज 4.8/6, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 48/60। 12 के टेबल में ये कट जाएगा 4/5 और ये आंसर आ जाएगा 0.8। और अगर 0.8 नहीं भी निकालना चाहो तो 4/5 पे ही छोड़ दो, क्योंकि sin थीटा फिर हो जाएगा 3/5 और sin थीटा 3/5 मतलब sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो हम लोग को फिर और किसी चीज की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर भी मॉर्निंग से लगे हुए हैं, मैं भी मॉर्निंग से लगा हुआ हूं, और वहां मैंने चैट में तुमको क्लियरली लिख दिया है कि टिक के ऊपर आंसर इसलिए पुट अप कर दिया जा रहा था क्योंकि उस बच्चे को मैंने डेलिबरेटली बोला था कि भैया तू पढ़ने में ठीक ठाक है, पेपर जब देगा या सबमिट करेगा तो उसमें कुछ आंसर टिक कर देना, सो दैट, क्योंकि हमारे पास में टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे अभी सर बैठे हुए हैं मॉर्निंग से 12 बजे से आके बैठ के, मैं भी 12 बजे से लगा हुआ हूँ। पहले हमने एनडीए का पेपर किया, सीडीएस का पेपर किया, तो वहां पे हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बाकी टीचर्स को भी टाइम लगे कि वो आराम से क्लियर होके जा सके। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें स्किप करना पड़ता है, या फिर उस ऑप्शन को हम लोग बोल देते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो बच्चा तो अपना ही है ना, हम से तो पढ़ के गया और कहाँ से जाएगा। तुमने शायद कभी किसी टीचर से ढंग से पढ़ाई की नहीं होगी, और अगर की भी होगी तो इज्जत करना तुम्हारे घर में तुमको सिखाया नहीं गया होगा, इसलिए तुम उछल रहे हो पे बैठ के। तुम आ जाओ यहाँ पे पढ़ा के दिखा दो मुझे। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो, चैट बॉक्स में घुस के कुछ भी बोल दो। चलो दैट्स इट। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा प्रॉपर वे में रहना चाहिए, कि हम लोग इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हम लोग मीन्स वी इंडियंस, ओके। एनीवे, हाँ चीज़ें बहुत आसान है। 4.8 है, 6 है, आप रेशियो चेक करोगे तो ये 4 है, 5 है तो ये 3 आएगा, तो वहाँ से भी आप साइन थीटा 3/5 ले सकते हो। अदरवाइज जैसे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बता रहा था, ज्योमेट्री पढ़ते हुए दिमाग सारा ज्योमेट्रिकल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 91, 92, ओके, 93 भी आई थिंक होगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस 4.8 था, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, इस बात को डिस्कस किया जा चुका है। आगे 90 के बैक साइड में 89, देखो ये एक क्वेश्चन है कि x इक्वल टू, सेट थ्योरी क्वेश्चन है कि x is such that x इक्वल टू x 2 + 4k, वेयर k की वैल्यू है 0 से लेकर 24। तो हमें ऐसा करना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टू एलिमेंट्स s इज 100।
क्या कहना चाहता है कि जो अगर x की वैल्यू को आप लेना शुरू करोगे, जैसे 0 पुट किया तो 0 पुट करने में पहला वैल्यू 2 आ गया, 1 पुट करोगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 × 8 + 2 10 आ जाएगा, डैश 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 लास्ट वैल्यू देखते हैं 24 पुट करोगे तो 96 + 2 98 आ जाएगा। अब कह रहा है कि आप S एक ऐसा सेट दो जिसमें कि सम 100 आए, जैसे मैंने 2 ले लिया और 98 ले लिया तो ये 100 आ गया, राइट ना। अगर मैं एक और ले लूं 6 ले लूं 94 ले लूं तब भी ये 100 आ गया। तो आप ऐसे ऐसे S कितने ले सकते हो? तो S ये क्या है कि ये पेयर लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि पेयर कितने बनेंगे। भाई 25 नंबर है, 24 और 1 25 नंबर है, 25 में पेयर कितने बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे, दैट्स द आंसर। पीछे हटो 89 के पहले 88। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 36 and 54 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो पैरामीटर और एरिया है 36 और 54। तो अब क्या करना है कि ये PBH तीनों का सम आएगा 36 और 54 आएगा कैसे? हाफ इंटू P इंटू B इक्वल टू कितना आएगा? 54। तो एक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ बन रहा है, एक इक्वेशन P + B + H = 36 आ रहा है। दोनों इक्वेशन को H इक्वल टू क्या होता है? h² = p² + b²। कुल मिलाकर के इक्वेशंस का अच्छा खासा बोझ होगा, उस चीज को तुम सॉल्व आउट करोगे एंड यू गेट द आंसर। क्या आंसर आएगा आपका? अब देखो यहाँ पर यह PBH के बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर लो तो ज्यादा सही है। जैसे कि मान लो थोड़ी देर मैं 12 ले लेता हूँ, इसको H को 12 ले लेता हूँ, तो 12 लेने का मतलब P + B 24 होंगे, P + B जो होंगे 24 होंगे। 24 से कोई सेट हमारा बनता नहीं है। 14 आगे 15 पर जाता हूं तो 15 लेने के बाद ये 15 माइनस कर लोगे तो 36 - 15 ये 21 आ जा रहा है। अब 21 के बाद 21 यस 21 के बाद अब P और B देख लो कि P और B को कितना लिया जाए कि ये आंसर 54 का मतलब P × B तुम्हारा 108। सोचो ना 108 प्रोडक्ट होना चाहिए और सम तुम्हारा 21 होना चाहिए। क्या है कोई ऐसी चीज जिसका कि सम 28 आए, 21 आ जाए और प्रोडक्ट जो है 108 आए? तो ये फिगर बन रहा है 18 3 नो yes 12 9 12 और 9 12 9 जा that is the 108 और 12 + 9 is 21। तो 12 और 9 आ जाएगा। ये चीज सेटिस्फाई कर रही है तो इसको टिक करोगे आप, ठीक है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होते हैं लेकिन फिर उसके लिए आप कोर ऑफ द ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, उसको छोड़ दो आप और पीछे चलते हैं। The volume of a cuboid 3600 cubic meter and area of two adjacent faces। देखो जब एक क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H होता है, राइट ना। अब जब भी हम किसी क्यूबॉइड के एडजेसेंट साइड्स को देखते हैं तो उनके वॉल्यूम उनका एरिया LB, BH और HL ये हो जाता है, राइट ना। तीन जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनका प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो ये B² के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें गिवन है, तीसरा निकालना है। तो ये दोनों गिवन है, दोनों को नीचे लेके चले जाओ। तो B² का मतलब क्या होगा? 3600 × 3600, राइट। डिवाइड कर लो इन दोनों का। दोनों क्या क्या चीजें गिवन थी? 225 और 144, 225 और 144। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 144 36 के टेबल में लेते हो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 100 टाइम्स आ जाएगा। 4 से लेते हो 900 आ जाएगा और 225 से 4 हो गया। 4 × 100 400 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, B² = ये तीनों एडजेसेंट साइड्स के एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो पीछे 87 88 आई थिंक हो गया, हाँ 87 86 83 आ गया,
A square sheet of side 44 is rolled along the sides of form a cylinder making opposite edges. तो क्या कह रहा है ये कि एक स्क्वायर शीट है 44 का, है ना, इसको हमने फोल्ड कर दिया। जब इसको फोल्ड करेंगे, या चलो ऐसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो हाइट तो इसका यही 44 रहेगा, और ये जो पार्ट हो गया ये भी 44 हो गया। यू नो 44 2 पाई आर हो गया, यहाँ से आर निकालोगे 7 आ जाएगा। वॉल्यूम पूछा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर पुट करोगे आर, तो ये 154 होगा, इनटू में 44 कर लो, 144 कैलकुलेट करने में कितना देना, 4 4 16, लास्ट में 6 वाले को टिक कर दिया करो। 6 वाले कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंपल को। 86 के पहले 85 the plinth of a house has an area of 200 square meter। एक घर है जिसका की बेस है 200 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ और ब्रेड्थ में 2:1 है, तो 2x into x equal to 200 है, राइट। तो 2 से काटोगे 100 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब कह रहा है कि 10 का मतलब क्या हुआ, 10 और 20, तो लेंथ और ब्रेड्थ 10 है और हाइट कितनी 20। इस बंदे ने ऊपर में घर में एक टेरेस पे 1-1 मीटर चारों साइड से बढ़ा दिया, तो 10 मीटर वाला 2 मीटर बढ़ के 12 हो जाएगा, और 20 वाला जो बढ़ करके 22 हो जाएगा। तो 22 और 12 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 22 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 2 26 264, तो 200 से 264 हो गया, यानी 64 की ग्रोथ हो गई। 200 में 64 तो 100 में कितना, 32% इज द ग्रोथ, 32% इसका परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है। m is the median, what is the value of 3m। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन है ये इसका 84 के लिए हमारे को, ये चलो ये पहले ये देख लेते हैं ये क्या चीज है। क्वेश्चन है कि ये 0 30 30 66 में ये एक टेबल दे रखा है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोड के लिए आप लोग क्या क्या चीज करते हो, सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हो 7, तो 7 के सामने जो ये क्या होगा फॉर्मूला L प्लस, अब आगे किस तरीके से लिखते हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं f0 minus f1 upon twice of f0 minus f1 minus f2 into h, कुछ बच्चे f0 की जगह पर f1 f2 f3 भी लिखते हैं। तो वो चीज अगर आप अप्लाई करते हो तो L क्या है 60 है, ठीक है, f0 minus f1 करोगे 7 minus 5 आ जाएगा, अपॉन करोगे 7 टू 14 minus 5 minus 4 into 30, ये कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा आ गया 72, तो 72 इज द आंसर। ये आपका मोड है, सब करवा दिया, वो लास्ट 85 तक था। ओके, तो अब मुझे कहाँ डील करना है, ये तो हो गया, 70 to 80 करवा दिया, 70 to 80 वाला जो पार्ट था, हाँ 70 to 80 70 आ गया था शायद। अब इसमें देखो ये चीज, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये, कि चूज दिस ऑप्शन अगर आंसर कैन बी सॉल्व वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन नॉट बाय अदर, सिर्फ एक स्टेटमेंट काफी हो, दूसरे की जरूरत नहीं हो, तो ए करेंगे, याद कर लो माइंड में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैन बी आंसर्ड आइदर स्टेटमेंट अलोन, कोई भी आइदर, या तो ए से या बी से किसी से भी सॉल्व होता है तो कर दोगे। सी कहता है चूज द ऑप्शन आंसर्ड यूजिंग टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों की जरूरत है, दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई करोगे तब होगा। एंड लास्ट वाला जो है वो किसी से भी सॉल्व नहीं होता है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 25। देखिए बच्चे, जब 25 से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू या तो 2 या 7 होना जरूरी है। 25 या 75 हो तभी वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब बीच में मतलब y पे तो क्लियर हो गया, y 2 या 7 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 का मतलब क्या हुआ, 2 + 7 9 होता है, इसको हटा दो। फिर अगर ये 7 और 5 दो तो 7 + 5 क्या होता है 12, 12 यानी कि 3 ज्यादा है 9 से, तो एक तो 3 आ गया। अब 3 प्लस में क्या लें, 2 लें 7 लें, मतलब कि अब हमारे सामने एक क्लू की कम से कम और जरूरत है, क्योंकि अभी तो इन दोनों में क्लियर नहीं है कि कौन सा लें। ऊपर से x के बारे में भी सोचना है, अगर ये हिंट्स भी हमें मिल जाता है
तो ये हमें इशारा कर देता है x की वैल्यू आपको 6, 7, 8, 9 यही सब कुछ लेना है। तो ये अगर फिक्स हो जाता है, जैसे मान लो 2 ले लेते हो आप, 2 ले लेते हो तो 3 + 2 क्या हुआ 5, 5 के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए 9 के लिए, कोई सा भी नहीं चलेगा, 5 में इनमें कोई भी ऐड करने पे 9 नहीं आएगा, तो इसलिए 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। 7 ले लो, अब 7 ले लेते हो तो 3 + 7 10, 10 के साथ इसमें से क्या लोगे, आई थिंक क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हो रही है, 2 + 7 9 हो गया, 7 + 5 12, 12 के लिए 3 आ गया, 3 प्लस अब हम यहाँ पे लेते हैं मान लो 2 ले लेते हैं, 3 + 2 5, 5 के साथ इनमें से कोई सा भी नहीं बन रहा है, 3 + 7 10 हो गया, 10 के साथ इनमें कौन सा ले लेंगे, यस 8, 10 के साथ ये आ रहा है 8 लेने पर बात बनेगी। तो आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसलिए जो दोनों वाला था, बोथ वाला था, उसको टिक करोगे। आपके पीडीएफ में सॉल्व कर दिया हमने, जो है वो आप प्रॉपर आंसर लगा दो। नेक्स्ट 71 के बाद 72 दिख ही नहीं रहा है, इसी को देख लेते हैं जब तक जो सामने है, p² + q² + q ऑड नंबर है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 2p + q इज ऑड। समझिए बात को, 2p हमेशा इवन होता है, अगर इसको ऑड होना है तो q 100% क्या हो गया, ऑड हो गया। अब अगर q ऑड है तो ये ऑड होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन हो गया। अब p डिपेंड करता है, p अगर इवन है तो इवन प्लस इवन होल वे विल बी इवन, अगर ये ऑड है तो ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड प्लस इवन दैट इज लेकिन ये टोटल मिलाकर ये क्या क्या डिमांड कर रहा है, ऑड। तो ऑड के लिए ये चीज क्या होना चाहिए, ऑड, p ऑड होना चाहिए। तो अब आगे p ऑड होने के लिए हमें स्टेटमेंट 2 की भी फिर जरूरत पड़ेगी, तो दोनों स्टेटमेंट आपको निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड के कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, q ऑड हो गया, q ऑड होने से p वाला क्या हो रहा है, अगर ये ऑड है तो ऑड होने का मतलब कि ये चूंकि इवन हो या ऑड हो, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑड। कन्फर्म है इस स्टेटमेंट से कि q ऑड है, q ऑड है तो ये ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो अब बचा p², तो p² चाहे इवन हो या ऑड हो, उसके हिसाब से उस टोटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरे स्टेटमेंट की भी जरूरत है, इसीलिए आपको यहाँ भी ए स्टेटमेंट 1, 2 दोनों रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सी, आर्क का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, एंगल है 30 डिग्री। जी समझे, अगर एक सर्कल में आर्क है 7, यहां से यहां तक 7 है और ये एंगल करता है 30 डिग्री, बच्चे 7 क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है ना, तो यहां से आर निकल जाएगा, आर पता, थीटा पता है, तो यू कैन गेट इजीली कि सर्कल का एरिया क्या रहेगा। दूसरा है कि लेंथ है 10, कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 10 है, और सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री, बेटा ये 90 है, ये 10 है, तो ये 10, ये 5/2, ये 5/2, यानी कि इससे भी, तो इससे भी एरिया निकल जाएगा, इससे भी एरिया निकल, तो आइदर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा कि पहले से या दूसरे केस से भी निकाल सकते हो। इसको देखो कि लेंथ ऑफ द टू लॉन्गर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 25 एंड 24, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। बच्चे आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है कि अगर ये 25 और 24 है तो ये 7 आएगा, ठीक है, आप 25 24 से 7 इजीली निकाल सकते हो, और निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, दोनों को ऐड कर लो 49, दोनों को माइनस कर लो 1 मल्टीप्लाई करो, अनरूट करो, दैट इज द 7, ठीक है। जब भी लार्जर साइड गिवन हो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस कर दो, इनटू करके अनरूट कर दो, यू गेट। अब कह रहा है कि एक इसमें पूछा गया था द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ट्रायंगल इज 6.72, जो राइट एंगल से लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ करोगे, आपको बता रखा है p * b/h, ये कैलकुलेट करोगे तो ये 6.72 आएगा, तो ये स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 2 से भी ये निकाल सकते हो। ये एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1 to 3, बेटे 1 to 3 राइट एंगल तो उसको जरूर करता है, ध्यान रखना है इस बात को, तो लेकिन ये हमेशा और हमेशा क्या कर रहा है,
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल के लिए ले रहा है कि हमेशा यही रेशियो होना चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि इस चीज में यही एंगल का रेशियो बने, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज एनफ, 1 स्टेटमेंट वाले को आप ओके करोगे। नेक्स्ट है ये 75 x and y आर द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब 1 3 5 7 करके है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, x + y होल रेज़ टू पावर 4 = 256, ये स्टेटमेंट को। तो देखो यहाँ पर 256 का मतलब ये हुआ ये चीज 4 होने चाहिए। 4 का मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 ले लोगे, तो 1 + 3 या 3 + 1 ऐसे करोगे। ये स्टेटमेंट 2 में देख लो कि ये 16 से लेस देन और ये क्यूब नंबर है, तो क्यूब नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 8 का मतलब x + y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और अगर ऑड नंबर सोचोगे तो ये 1 ये वाला ऑड नंबर बनेगा नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ये 71 75 ये चीज हो गया आपका। 74 कैन ए सर्कल बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये क्वेश्चन। भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट ही चाहिए, ठीक है। तो ए बी बी सी सी ए तीनों गिवन है, तो यू कैन ड्रॉ सर्कल। ए बी बी सी सी ए तीनों साइड गिवन है, यू कैन ड्रॉ सर्कल। तो दोनों में कोई भी एक रेखा कर सकते हो, एनी वन स्टेटमेंट इज एनफ, ठीक है। आगे चले। सर हो गए क्या सारे? हो गया। लेंथ ऑफ द लॉन्ग साइड ऑफ ये हो गया। एक बार वो पीछे वाला क्वेश्चन वो से चेंज कर देते हैं। 50 80 व्हाट इज द रेडियस, एक सेकंड साइड ये रह गया। PQ divides into 2 segments such that 3 times the area of the major segment, 4 times the area of the minor segment। तो ये कह रहा है क्या कि इसमें 3 टाइम्स 2 टाइम्स, एक को कह रहा है 66, एक को कह रहा है 88। बेटा 22 का ये 3 टाइम्स है और ये वाला ये शायद उल्टा लिख दिया, हम ठीक तो है, ये वाला 4 टाइम्स है और ये वाला 3 टाइम्स है, राइट। 66 का 4 टाइम्स करोगे, 22 का 4 टाइम्स करोगे तो ये 4 टाइम्स करोगे 88 आएगा, 3 टाइम्स करोगे ये। तो ये जो स्टेटमेंट बैठ रहा है कि 4 टाइम्स स्मॉलर इक्वल टू 3 टाइम्स लार्जर, वो बिल्कुल ठीक है। तो या तो इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी, किसी एक से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज लास्ट वाला में करना था वो उससे। चलो ये डन। हां सर अब बताओ सर, नीचे जो भी देना हो इस पे ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसके जो 2 साइड है उसका सम नहीं ट्रायंगल की जरूरी है। तो आप बोल रहे हो ना ट्रायंगल बनेगा तभी सर्कल बनेगा, तो इन डायमेंशन में इसका ट्रायंगल बन ही नहीं सकता होगा, क्योंकि 2 साइड का सम दूसरे के बराबर हो जा रहा है। ट्रायंगल इक्वालिटी हम इस चीज को बनाओ नहीं करेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम, ये एक आंसर गलत जा रहा था जो मैंने आपको बताया था। आप यह चीज ध्यान से देखो, ए बी बी सी सी ए ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 साइड को ऐड करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। 3 + 4 मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इससे सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। सर्कल सिर्फ इससे बनेगा, स्टेटमेंट 1 वाले को करोगे। चलो सर को थैंक यू, इन्होंने बीच में उस चीज को कर दिया। चलो तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे पेपर करा दिए गए हैं। फिर भी कुछ चीज होते हैं तो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी तरह से उम्मीद है पेपर का जो भी अच्छा रिजल्ट है वो देकर के आप लोग जरूर सूचित करें। ऑल द बेस्ट।